Hmm. Concept provides the clean and simple way to write. Some problems can inherently recursive a tree travels a tower of an for each problem, it is preferred to write a recursive code. We can write such code also iteratively with the help of a stack data structure. For example, refer in order tree traversal without requiring an athletic tower of energy. What are the disadvantages of recursive programming over iterative programming? Not every recursive program can be written iteratively and vice versa also true. Recursive programming typically have more space requirement and also more to maintain the recursion constant. Recursion can make the code more difficult to understand and debug since it requires thinking about multiple levels of function calls. Fibonacci with recursion. Write a program and recurrence station to find the Fibonacci series of n where n is greater than 0. So n, if n is equal to 0, or n is equal to 1, on other hand, Fibonacci n is equal to Fibonacci n minus 1 by n minus 2. So recurrence equation is this. So if I want to find the 5th Fibonacci, okay. So if I want to find the Fibonacci, so if I want to create a Fibonacci, I want to create a Fibonacci. 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 So what I see here is okay, if I want to find the Fibonacci of 5, then it can be generated using 4th Fibonacci. Okay, so 5th Fibonacci is 4th Fibonacci plus 3rd Fibonacci, and 4th Fibonacci is 3rd Fibonacci plus 2nd Fibonacci number, and 3rd Fibonacci is 2nd and 1st, and it can be generated using 3rd Fibonacci is 2nd Fibonacci and 1st Fibonacci. Second one is 1st and 0 Fibonacci, and this is also 0 and 1. This is 0, 0, and this is 1.
So at max, so if I want to know what I know is that n of 0 equals to 0, and first Fibonacci is 1. And the second Fibonacci is sum of previous two, means 0 plus 1, which is 1. Now n is equals to 3. It is basically the 1 plus 1 plus 1 previous one 2. So what I've seen here is, okay, so if Fibonacci of, of 1 is Fibonacci of 0 is equals to 0. Fibonacci of 1 is equals to 1. Now Fibonacci of second Fibonacci is equals to sum of previous two. So Fibonacci of 0 plus Fibonacci of Fibonacci of 1. Now Fibonacci of 2. So second Fibonacci, and third Fibonacci is second Fibonacci. Okay, Fibonacci of, sorry, second Fibonacci plus first Fibonacci. Mm. So it means that if Fibonacci of n is equals to Fibonacci of s minus n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2. Yeah, and right. Now if 5 Fibonacci 4 3, Fibonacci 4 3 2, Fibonacci 3 2 1, equal to 2 1, and Fibonacci 2 1 0, 2 1 1 0. Common application of tree-traversal sorting algorithm like quicksort, mergesort divide data into subarrays, sort them recursively, and merge them, divide and conquer. Algorithms like binary search break problem with smaller problem. Fractal generation. Recursion helps generating fractal patterns such as Mandelbrot set by repeatedly applying a recursive formula. A backtracking algorithm used for problem requires a sequence of decisions involving caching results of recursive function calls to avoid recomputing expensive subproblem. Memorization may be used at that time. There are these are just a few examples of many applications of recursion in computer science and programming. Recursion is a versatile and powerful tool that can be used to solve many different types of problems. Summary, there are two types of case in recursive case and base case. The base case is used to terminate the recursive function when the case turns out to be true. Each recursive call make a new copy of that method in a stack memory. Infinite recursion may lead to running out of stack memory. Example of this. So I will try to solve some basic question. So explain the functionality of following. So basically what this will do is that given 5 comma 2. So let's try this. So given 5 comma 2, mm,
Okay, so this is given right. There is a function initially x, okay, so initially the x equals to 0, x is equals to 0, and then y is the same, x is equals to 5, and y is equals to 2, 5. Now, look, okay, there is a function I will check, okay, x is equals to 5, no, x is not equals to 5, so I will create a stack memory inside this. The function will be stored first this main function, main one, and then f1, f1 with x is equals to x is equals to x is equals to 5, and y is equals to, okay, let's try. Mm, mm, it is given in the question is that there is a call stack. Okay, I will create a call stack. Initially, there is a main function. I will call that main function first. There is main function. Fine. Now after that, the another function is called that is func1, and with x is equals to 5 and y is equals to 2. I will say okay, x is equals to 0, no. So I will return a function, another function is called. Okay, so another function is called f with x is equals to 4, x is equals to 4 and y is equals to whatever the, okay, now what y will become. So when this will be called, y is equals to whatever the x value plus current y value, which is 7. Okay, now this function is called, I will see whatever x is 0, no. So again function is called x is equals to, we'll see if the x is 1, x is now becomes 3, and now what y is equals to, I will see that what x plus y is, so 7 plus 4 which is 11. So again I call function f and with one less value. With s is equals to 2, y will become as ever the s value 11, 50, 40. Now again this function will be called and x is equals to 1. Now y becomes 60. Now again this function will be called, now x is equals to 0. And y is equals to what? Y is equals to 16 plus 1, 17. So we'll see that okay, 17 is there. So and now x becomes 0. So y will be returned. Now y will be returned. Again, this will be returned as there is no function to execute after that. Then this will return, this will return, this will return, and this is also returned. And this main function will print y is equals to 17. Am I right? Yeah, it's 17. Okay, try next question. Mm,
I will create another recursion state, another recursion state. Okay, so there is main, there is main function. I will call it. I will pass 8 from it. So I will see that okay, my n value. I will call the function and n is equals to 8 here. Now as 8 here, I will say okay, is this equals to 0 or n is equals to 1? No. So I will, what I will do, I will write 1 plus and call this same function with a half value, like whatever the n 4. So I will call it 4. I will see, okay, there is function again called and n is equals to 4. So I will see, okay, 4 is there. It is equals to 1, no. So I will return 1 plus whatever the half value of this. So function 2. So I will call with 2. Now I will jump to again call this function. After calling this function, I will see that okay, n is equals to 2 here. So what I will do, 1 plus whatever the half of it. So I will call it with half. I will see, okay, 1 is there. Now I will see that, okay, there is a function and now n becomes 1. So when n becomes 1, I will return 0. So the 0 will be returned here and this will become 1 plus 0, which is 1. Now 1 will return here. Now 1 plus 1, it will become equals to 2. Now 2 will return here. It will be 1 plus, hmm, hmm, हाँ, n square, n plus 1 by 2. Hmm. तो 3 का स्क्वायर है 3 और 4 2, हाँ ठीक है 6 बनेंगे। Hmm. So, okay, तो ये 3 हो गया होगा। बस 3 होने के बाद like what I will do is okay, I will have 3 as an answer. Now this 3 will be written here and this main will print 3. So the answer of this is 3. Function 1 is in 4. Function 1. Okay, I will see that. Okay. There is 8. I will pass 8. So current value is 8 and I will call the function with 1 plus 4. So this will be 4. I will call with it and with 1 plus f by 2. F by 2. So this will be 2. I will call it with 2. So here n is equal to 2. 1 plus f1. So this will be called. Now when I reach here, I will say okay, n is equal to 1. So I will return 0. So when I return 0, this will become 1 plus 1, 1. After that, this 1 will be returned here and 1 plus 1 becomes 2. So 2 here. Okay. And after that, what I will see is okay. Uh, when I jump here, what I will see? I will see okay, 1 plus f4 here 2 and it becomes total equals to 3. So after that, I will jump here. Okay. So 1 plus 2 which is equals to 3 and when I jump here, I will see okay, this will be 3. Now it will be 4. Function principles independent log to n. Log to n is to 3. Okay, if n is between 8 and 15, then function is 23. बस पढ़ने लगे थे then function नहीं is जाएंगे क्या जैसे ही हम जाते हैं उसे ही पढ़ने लगते हैं मेरे सामने ही बस मेरा खून खत्म करता है तुम्हारे सामने ही नहीं पढ़ता है छुपा के पढ़ता है सीक्रेट पढ़ाई
Okay, there is another question. Let's try that. Mm-hmm. So there is again a recursion step. What I will see is okay. First, there is a main function. Main function is there. So I will call it with 21. So there is a main function. And अबे वहाँ कॉपी रखा है देखेगा ओए ये रखा है अच्छा serious okay 21 so I will check okay n is equals to initially 21 and will it equals to 0 no so what I will do I will call another function I will call the another function with just half of this value so 21 by 2 which is called mm, which is called 10.5 or 10 so I call it with 10 so now another function is called so now n become 10 fine so I will see it is equals to 0 no so I will call the another function with half of this value so it will become n5 now I will call another function so when I call another function I will see okay n is equals to 5 will it be equals to 0 no if this is not equals to 0 I call it with half of this value so I call with 2.5 which is 2 so I will see okay what is n here n is equals to 2 here so I'll see it is equals to 0 no so I will halve it so f of half of 1 so I call it again I will see that okay n is equals to a1 will it be equals to 0 no so I again call it with half of this value which is 0 so again n is equals to 0 I will see okay will this be equals to 0 yeah so I will return when I return back I will print 1 modulus 2 which is equals to 1 so I will print 1 now this will be finished so again I track back here I will see what is the n value so n value is 2 2 modulus 2 which is equals to 1 so I will again track back I will see what is the n value so n is 5 5 modulus 2 which is equals to 1 sorry 2 modulus 2 is equals to 0 0 I will see 5 is there it is 0 okay, so this will be over. I will see, okay, 10 is there. 10 modulus 2 is equals to 0. Print is 0. This function is removed. I will see 21. 21 modulus 2, which is equals to 1. 1 will printed, and this will be removed. And this is the answer. 10101. Fine. Again, after print the output of the following. Mhm. Okay, so I have to create a recursion step in which I will see that okay a is equals to 4 so initially main is there and what I will see is okay x is equals to 4 here
Fine. So after that, for the function, I will say, okay, if x is greater than 0, I will call another function f with minus minus x. Means first I will decrease the value and it will become 3. Okay, it will become 3 and I will call it. So now I will jump up to x is equals to 3. I will see if this is greater than 0. Yeah, it's greater than 0. So I will say, okay, there it is. So what I will do, I will call it with 2. Again, I jump up to next one, which is x is equals to 2. Okay. So I will see, okay, this is greater than 0. So I again decrease one value. And now I will jump up to next one. So I will see, okay, x is equals to 1. And now what I will do, I will decrease the value and pass it inside another function. So now after that, I will call it with x is equals to 0. I will see, okay, x is greater than 0. No, this is not greater than 0, and I will reach up to last and this function will return. So when this function will return, now this will be printed. After that, whatever the current x is, this will be printed. So the current x will be 1. So it means that 1 is printed. 1 is printed, and after that, from this, another function is called with whatever the x value is. So I will again call, okay, I will create another string. So from here, this will be called. So initially x is equals to 1. So I will print 1 and call it with f0. So I will see, okay, x is greater than 0. So whole program is executed. And whole program is executed. And I will reach it to last line and I will see, okay, this will be executed and this will be over. And as this will be over, this is also get over. Now I jump up to this. I will see, okay, what's the value is. So I will see, okay, 2 is there. So I'll print 2 and again call this with minus minus x. Okay, minus minus x. Minus minus x is what is the current value of x. The current value of x is 2. Called, okay, x is equals to 2. X is equal to 2. I will say, okay, sorry, I will decrease one value, right? I will see, okay, x will be equal to 0, whatever the value is. So I will again call it with, uh, now for x is equals to 1, I again call it for 1. Okay. Or will I do the same thing? Doesn't matter. So basically, I understand that what I have to do. What I have to do. This is function 3 and then print 3, then function 2, then print 0 and 1. Then function 2, print 2, then for 0 and then minus 1. So for 3, yeah, for 4, I will call function 3. Like here 4, and for that I call function 3, then print 3, then function 2. 2. Okay. ऐसा जरूरी तो नहीं है. हम्म. एक
स्लाइडिंग विंडो मोस्टली जब यूज होती है जब किए हुए कुछ लिखा हो या मिनिमम मैक्सिमम की बात कर दे कि मिनिमम सवेरे मैक्सिमम सवेरे। नंबर ऑफ सवेरे में नहीं। नंबर ऑफ सवेरे। हाँ। हाँ, तब तो सोचूंगा और क्या। वही। कौन सा क्वेश्चन है? क्या? 3348? नंबर ऑफ नंबर ऑफ जीरो filled समय। ये तो खुल जाए पहले 4 घंटे में। Understand. हाँ, कोई बात नहीं। मैं तो चालू करके छोड़ देता हूँ बस। चलने दो। रात के 11 बजे तक चलेगा, कोई तो आएगा। 6-7 घंटे तक ऑन रखो, वाईफाई है ही, कोई दिक्कत है नहीं। चलते रहेगा। मेरा टारगेट रहता है 10 व्यूज का। 10 से ज्यादा आ गए अच्छी बात। 10 व्यूज आने चाहिए। क्या है? पूरा करेंस ऑफ जीरो। Zero as a survey, there are two people associated. So when we say more than two with a zero, therefore we return six. Hmm. And also return the number of survey filled with a zero. देखूंगा अभी, देखूंगा। In x in x equals to function x minus x होगा। अबे मेरी स्क्रीन दिख रही है? हम्म, ये देखो। ये इंट x इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। और ये दो फंक्शन मैंने कॉल किए हैं। ये दोनों फंक्शन में वैल्यू क्या क्या जाएगी? दोनों में? अच्छा ये बताओ। तू ये बोल रहा है ना 10? अब तुम बताना। है? क्या? हाँ, तो इधर क्या जाएगा, इस वाले फंक्शन में क्या जाएगा और इस वाले में क्या जाएगा? ठीक है। और इसमें? तो इसमें 2 और इसमें 1।
चल, इसमें 1 जाएगा और इसमें 0 जाएगा। हाँ, ये रिकर्जन का बेसिक, ये पिगमंगे ने बता रखा है, क्वेश्चन दिया था एक। ये मैं फंस गया, मुझे लगा दोनों है। हाँ, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, मैंने दोनों में एक ही चला दिया, फिर पता चला कि नहीं, यहाँ अलग जाता है, यहाँ अलग जाता है, उसी के अंदर चेंजेस हो जाते हैं ओरिजिनल में। हम्म। ये वाला लफड़ा है। बेसिक क्लियर नहीं है, खेल हो गया मेरा भी। मेरा खेल हो गया, तभी मैंने तुमसे पूछा। अरे भाई, ठीक है। हेलो वर्ड सी प्लस, अरे अरे यार, सी प्लस प्लस और जावा विच इज गुड फॉर डीएसए। और हिंदी इज गुड। हिंदी इज गुड। अब यार देखो, कोई भी लैंग्वेज में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डीएसए कोई लैंग्वेज ओरिएंटेड चीज नहीं है, वो बेसिकली मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स किसी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती। So, बस ये मानो, डीएसए इज ऑल अबाउट मैथ्स। हाँ। भाई, किसी में भी कर लो। मतलब ये है कि अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग साइड जा रहे हो तो सी प्लस प्लस प्रेफरेबल है बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और अदरवाइज तुम जावा में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। So let's explain the functionality of below recursive functionality. Okay, int I is equals to 0 and n minus 1 के साथ, okay, n mature वर्ग कॉल कर दिया, ठीक है। So basically, if I see, mm, let's dry run this. Hmm. Hmm. Okay, there is a function and there is a recursion. Oh, what are they? Yeah. There is a recursion stack. So initially the main call with function, okay, function, and there is 4 past. So this will call this, and now initially the n will be equals to 4. I will see n equals to 4. So initially here I is equals to 0. So when I is equals to 0, I will see that okay, n is greater than 1. Yeah, this is greater than 1. So I will call another function with one less value. So I will see, okay, I will call it with 3. So f is called, sorry, mm, so I will call it with n is equals to 3 here. Okay, again I will see, okay, I is equals to 0, and I will see, okay, will n is greater than 1? Yes. So I will again call another function with f is equals to less than the current n. Okay. So I will see, okay, there is 2. Now if I see 2 here, I will see, okay, I is equals to 0, and again I will see, okay, will n is greater than 1? Yeah, n is greater than 1. So I will see, okay, 1 is there, and if 1 is there, I will call again with n is equals to 1. So now if n is equals to 1, I will see, okay, initialize I with 0, and now finally what I will see is, okay, this function is fully executed because n is not greater than 1. So as n is not greater than 1, what will happen? So I will see that, okay, this is a block, another block, and this is another block.
So I will see, okay, now n is not greater than 1. So I will not call the function again. And what I will do, I will run the loop n number of times. So initially when I is equals to 0, I will see, okay, uh, I is equals to 0. So I will start it from 0 and run till I is less than 1. So it means that first star is printed and now this loop get executed. After that, when I jump on to next loop, what I will see, okay, I will already check this. Now here n is equals to 2, I will start from 0. As I will start from 0, what I will see is, okay, 0 from, so it means that 2 star is printed because n is 2 and it will run next to max up till n minus 1. Now after that this will also execute and now I'll jump to n is equals to 3. So I will see, okay, then I will goes till less than 3 and print number of stars. So I will print, okay, this 3 stars will be printed. After that, what I will see is, okay, this function executed and I will see, okay, n is 4. So I will print 4 stars and this 4 stars will be printed. And now this is also executed and then I jump to main. This is main and now whole call stack gets terminated and I will got this answer. Yeah, I've got this answer and this is it. So the total number of star printed is equals to the 1, 2 plus n minus 2 n minus 1, which is n into n plus 1 by 2. So if I see here that if n is equals to 4, then 4 by 5, 4 by 5 by 2, 4 multiply 5 by 2, I will cut and I will get total 10 stars. And if I see 4, 3, 7, and 3, 10. So there are total 10 stars. This is the basics, and now I will do some easy questions. Practice easy, and let's jump up to, before jumping up to medium question, analyze the recursion. The analysis of recursion involves finding an asymptotic upper bound on the running time. Many algorithms use recursion in analyzing their time complexity, often leading to the recurrence relation. A recurrence relation expresses the running time for an input of size n in terms of running time for smaller input size. Merge sort. A array is divided into two halves. Each half is divided, sorted recursively, and resulting are then merged. This led to the recurrence relation 2t n by 2 plus cn, where the term cn represents the time required to merge the two sorted halves. We guess the form of solution and prove it using mathematical induction, and there is a, this method represents the recurrence as a tree computing the two. The recurrence tree method is used to analyze the time complexity of recursive algorithm by visualizing representation the recurrence of a tree. Each node of the tree represents the work done in a single recursive call, and each level represents one stage of recursion. Each node of the tree represents the work done in single recursive call, and each level represents one stage of recursion. Below are the steps used to find the complexity using recursion tree method. Draw a recursive tree for given recurrence relation. Calculate the cost at each level and count the total number of levels in the recurrence tree. Sum of the cost of all the levels in the recursive tree.
Note, if the summing of all the levels become complex, we can find an upper bound by considering the perfectly full tree and or infinite geometrical series. The ratio is typically less than 1. Let us take the below example code to understand the step of. Like here, when n is less than 1, I will return, otherwise I will call the function by dividing it by half. Understand the recursion for this. The function making two recursive calls such as subproblem of size n by 2. So both recursive call return it perform a loop that will print GFG exactly n time, which is linear work for each function call. The recursion is stopped when n is less than 1. Writing the recursion for function call make two recursive call a size n by 2 and performs linear work after the recursion. The recurrence relation is Tn is equals to 2t n by 2 plus n. So Cn n by 2 n by 2 and Cn, after that I will pass n by 2 n by 2, so it will become n by 4 and so on. So level 3 contribute cost will be cost of n node. Then subproblem are size of n by 2 n by 2. So Cn by 2 Cn by 2, which is also Cn. There are four subproblems of size n by 4. So continue this way, the work at each levels remains Cn. Total work is equals to total work across all levels. The input size half at each level and recursion stop when the size become constant. Okay, hence the height of the recursion tree is log n. Since each level contribute a cost of Cn. Okay, so maybe tree below है. So it is given in the question that there is a tree and the function will be fn by 2, fn by 2 and again fn by 2, fn by 2. So if there is 2 fn by 2, what I will see here is okay. So basically this will perform 10 operations. Okay, so this function will perform 10 operation and after that I will initially wait. There is a function n I will pass and after that I will divide it into n by 2. So this will perform n by 2 and this is also perform n by 2. Now after that I will again call it with half n by 4, n by 4, n by 4, n by 4. So this will perform some work into n. This will also perform some work into n by 2 means total work is equals to this plus c into n by 2. And now this will be total equals to Cn. Now this is also become Cn. So it means that Cn plus Cn plus Cn up to Cn. How many times? Log n times. So if I so it means that Cn multiplied by log n. Log n. Now if I find the complexity of this, it will be n log n. Right? N log n. Another example. Another example is unequal subproblems. Understand the recursion for this code.
one with input n by 4 and one with input n by 2. Tn by 4, Tn by 2. So there is a function, what it will do. In each operation, it will perform n squared. In each operation, what it will do? It will do n square operations. So issue with recursion tree everyone equals the problem. In recursion tree, where the problem does not split into equal sized subproblem, the recursion tree is not uniform across all branches. In the given example, one recursion call reduce the problem size by n by 2 and another by n by 4. So some branches of the recursion tree terminate early, while others continue deeper. Because of this imbalance, some leaf node appear lower level of recursion tree, other leaf node appear at higher level, make the tree uneven. Now we apply a geometric progression method to sum the cost across level. We implicitly assume that all subproblems continue until the same level. This assumption is not strictly true for recurrence with unequal subproblem size. However, to simplify the analysis and will a valid asymptotic bound, we take the upper bound approach. Assume that all recursive bounds continue until the deepest level of recursion tree. This assumption may overestimate the total work, but it ensures that computed complexity is correct upper bound. To find Tn, Cn square n by 2, we will do 1 by 5 by 16. The same pattern repeats the total cost by 2 by 56, up to so on. And I will see that this is less than 1, so it will converge. And as this will converge, what I will do is okay, let's see what is the time complexity of this.
अगर मेरे को इसका रिकर्जन स्टैक बनाना पड़ेगा, रिकर्जन ट्री, तो क्या पता है ये क्या होगा, ये होगा एन, फिर ये कॉल हो रहा है n/4 के साथ, ये हो रहा है n/2 के साथ, फिर ये भी n/4 के साथ हो रहा है, तो ये n/16 हो गया, और ये भी हो गया n/16। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा हूँ, मेरी बात, एन आया, n/4 के साथ कौन हुआ, हर स्टेप पे वर्क कितना हो रहा है, n² टाइम्स, तो ये n², ठीक है। फिर ये कॉल हुआ एक दूसरे फंक्शन के साथ, जो कि 4 कर दे रहा है, तो ये कॉल हुआ n/4 के साथ, और उसका स्क्वायर, और ये कॉल हुआ n/2 के साथ, और उसका स्क्वायर, ठीक है, हर स्टेप का वर्क। फिर ये भी फिर ये भी ऐसा ही हुआ, फिर ये कॉल हुआ n/4 का n/16 का स्क्वायर, और ये कॉल हुआ 2 से डिवाइड किया तो n/8 के साथ का स्क्वायर, तो ये अनइवन सा बन रहा है। अनइवन सा बनना तो हम करते हुए हैं कि हर लेवल का सम करते हैं, हर लेवल का सम करते रहते हैं। अब तो बेसिकली इस लेवल का सम किया तो ये आ गया n², इस लेवल का सम किया तो ये आ गया n² प्लस 16 प्लस n²/4, फिर इस लेवल का किया तो n²/16 का 256, तो ये n², और देखो इस स्टेप पे, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है n²/256 प्लस n²/64 एंड प्लस सो ऑन। तो मैं जब सबका कॉमन निकालूंगा तो n² कॉमन आएगा, और +1 + 1/16 +1/4 +1/256 अप टू सो ऑन। तो ये जो भी है आएगा एक कांस्टेंट ही सी। तो कॉम्प्लेक्सिटी निकालने जाऊंगा तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी n², तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n²। हाँ, ऐसे करके हो जाएगा। हम्म, ऐसे करके हो जाएगा, और अब बढ़ते हैं आगे। इक्वेशन एनालिसिस और मास्टर थ्योरम क्या है, अरे फॉर्मूले थोड़ी रखना है, ये कौन याद रखेगा, एक फॉर्मूले बाद में रखना है।
Even or odd? Easy math, easy problem. Hmm. पहली चीज इवन और odd. ये तो इजी है, चीज इवन और odd मॉडुलस 2 कर दो. एक रिमाइंडर और एक बिटवाइज. बिटवाइज में तो हम ये करते हैं एंड कर देते हैं 1 से. Sufficient of a bitwise operator. The last bit of all odd is always 1. So end 1 करें अगर वो 0 आ रहा. While for every number so it is 0. So when performing bitwise end operation with 1 or give 1 and even number gives 0. And 0 तो ये तो बेसिक्स है. सम ऑफ नेचुरल्स. सम ऑफ नेचुरल निकालने का लूप वाला तरीका है. ठीक है, एक रिकर्जन वाला वे है और एक फॉर्मूला बेस्ड है. और चलो भाई करते हैं. तो सबसे पहले इन अगर मेरे को इवन नंबर लगाना है इवन तो इन दिया हुआ. ठीक है, तो एक ऐसा होता है कि इन एंड वन इक्वल टू 0 वाला. तो तो रिटर्न और सी आउट कर दो ऑड. वैसे एल्स इवन. इवन. ठीक है. इवन के बाद रेफरेंस दे रहा. into sum into n. If n is equals to 0, return 0, else return n plus sum of n minus 1. एक ये तरीका सम दूसरा तरीका है कि just sum is equals to 0 or in I is equals to 0 server का with 0 thing equals to n. N plus equals to n. I return sum. और तीसरा int sum 2 is equals to int n. Return n into n plus 1 by 2. Return.
Seven, two, three, two, two, one to dot, one to dot. Yeah, no, let's do this. Even one, even to last two, even one, two, three. Closest number given to integer n and m. Find the number closest close to n indivisible by n. Okay, give closer to n indivisible by n. एक नंबर जो n से डिवाइड होता हो और n के पास हो given to integer n and n. मेरे को दिया इंटीजर n और n दिए हुए और मुझे उन्होंने n जीरो नहीं हो सकता फिर कुछ नंबर फाइंड करना है जो कि n से पास हो n से डिविजिबल हो तो there is more than one such number then output the one have maximum absolute value. तो जैसे कि n is equals to 13 दिया और n is equals to 4 है तो आउटपुट 12 जो क्लोजेस्ट है 13 के और जो कि डिविजिबल है 4 से -15 और n is equals to 6 18 जो है वो तो -12 -18 जो कि 6 से डिवाइड होते हैं और क्लोज्ड है लेकिन maximum absolute डिफरेंस निकालूंगा but eating has maximum absolute difference. So अगर मेरे को ऐसा कुछ निकालना हो तो मैं क्या करूँगा बेसिक आइडिया to start checking from n minus m to n plus m one by one and take the closest number. The basic idea is to start checking from n. Find a number closest to n that is divisible using a now approach. You essentially perform a search around n to identify the nearest multiple. The now approach involves exploring integer incrementally moving away from n in both directions, upward and downward, until you encounter the first number divisible by n. Start at n, जो कि closest to n के whole second number starting from n. Search outward simultaneously check n plus 1 n minus 1 n plus 2 n minus 2. Okay, check divisibility for each number x. You check evaluate it x mod by n is equals to 0. Identify the closest. The first number that satisfy the combination is a candidate.
To what it is given, it is that okay, I have some number in. Okay, then let's take the example 13 and n is equals to 4, n is equals to 13 and n is equals to 4. So I have to find the smallest, I have to find the number that is closest to n and divisible by n. So the now approach is that I can consider 13 here. So that is closest to n. So what I will do is I will check. I have to check in both the direction because what I want the absolute difference to be a maximum. So I will consider okay 13 is there. So first my x number is suppose if I take 13. So I will see okay will 13 is closest to n? Yeah. Okay. And is 13 divisible by 4? No. So I will cut it. So after that I will check okay I have two values 12 and 11. And after that I will check okay x if I consider x is equals to 13. Okay, x is equals to 11. Will it divisible by 4? No. So I will not consider this. Now I will check will x is equals to 12. Is it divisible by 4? Yes. So if this is the only number divisible by 4, what I will do is just consider this x is equals to 12 to be an answer. Because I want the closest, so I will start it from that point only. So now after that another question is okay, n is equals to 15, n is equals to 6. N is equals to 15, n is equals to 6. So I have to find the closest value near to 15. So I will see. Hmm? Is 15. And now what I have to do, I have to check what all are the closest value. So the closest values are minus 14 and minus 16. So I will check will, okay, accept will. Now I will divide both. Wait, will 14 divided by 6, 14 divided by 6, no. Will 16 divided by 6, no. After that, I will check what the next values are. So I will see, okay, I will see the 13 is there and 15, 16, now the 17 is there. Minus 17 is there. So I will see, oh, will 13 divided by 6, no. 17 divided by 6, no. After that, I will see, okay, now I get minus 12 and minus 18. So will 12 divided by 6, yes. So, and will 18 divided by 6, yes. So now my current value is 12 and 18. And now I will find the absolute difference from this point. So the absolute difference is 15 minus 12, minus 15 minus 12, which is 27. And 15 plus 18, which is, wait, 15 and 27 and 8 5 8 5 13 33. So 27 or 33. So what I will do, if there is more than one such value, then output the output has maximum absolute. So I will return 18 here. Yeah. Hello, buddy. Hello. Hello. So enter closest value.
I have to find, so I have given a closed value into left closest which is equal to n and right closest which is equals to n. So find left closest modulus n is equals to 0. So there is m also. जब तक नहीं है तब तक क्या करते रहो, लेफ्ट क्लोजेस्ट को माइनस माइनस के चले जाते रहो और वाइल राइट क्लोजेस्ट मॉडुलस टू मॉडुलस n नॉट इक्वल्स टू 0, राइट क्लोजेस्ट प्लस प्लस इसको आगे ले आते रहो राइट साइड पे. And if what I have to return, if left closest is equals to right closest, okay, find the absolute difference. Difference. So in ABS1 is equals to absolute difference from n minus left closest absolute difference minus और इधर कर दूंगा तो ये तो प्लस हो जाएगा. मेरी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बड़ी डिफरेंस कैसे निकालते हो, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू. तो लेफ्ट वाले में जा रहा हूँ तो बड़ी माइनस छोटी और राइट वाले में छोटी माइनस बड़ी. तो पहले वहाँ पे राइट क्लोजेस्ट आएगा और माइनस एन आएगा. फिर ये निकालो, अगर ये दोनों बराबर ही है, this one is these two. अरे नहीं, यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, जब तक मूव कर रहा हूँ, जब तक मूव करते रहो एक पॉइंट से पीछे भी से दोनों को अलग अलग क्यों करना है, एक ही में करते रहो. And right closest modulus n equals to 0. Right closest equals to, तो ये दोनों साइड मूव करते रहो और दोनों साइड मूव करने के बाद एक पॉइंट पे आके रुक जाएंगे. अब ये देख लो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के. एक सेकेंड, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के क्या देख सकते हैं. एक पॉइंट पे आ रहा हूँ और लेफ्ट का भी कर रहा हूँ, राइट का भी कर रहा हूँ और ये रास्ते से दोनों ही डिविजिबल हो गए. तो अब मैं ये देखूंगा कि इफ अगर ऐसा होता है कि अभी जो लेफ्ट क्लोजेस्ट आया है और मॉडुलस है इक्वल टू 0 है, एंड
राइट क्लोजेस्ट जो भी आ रहा है प्रॉब्लम है वो भी इक्वल टू जीरो है। एंड ऐसा होता है कि लेफ्ट क्लोजेस्ट ऐसा होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेफ्ट एन माइनस लेफ्ट क्लोजेस्ट अगर बराबर है अगर दोनों में डिवाइड हो गए इसका करना रिटर्न कर देना मैक्सिमम रीडियस ऑफ एन माइनस लेफ्ट क्लोजेस्ट और रीडियस ऑफ राइट क्लोजेस्ट माइनस एन ये रिटर्न कर देना। और एल इसका होगा एल से सिर्फ अगर ऐसा होता है कि लेफ्ट क्लोजेस्ट लेफ्ट क्लोजेस्ट मॉडुलस एन इक्वल टू जीरो है सिर्फ यही है तो रिटर्न लेफ्ट क्लोजेस्ट एल्स रिटर्न right closet. Mhm. 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 Comma. Closet. So if I take an space, where is that question? Yeah, we'll take n is equals to 13 and n is equals to 4 will get 13. So this is wrong. Till modulus and till is not equals to, but 4 got 12 minus 15 and 6 got 3. गलत आ रहा है visualize resistance so handle the trivial things. So in the first phase that will come is okay. And the closest value that is divisible and if I see that okay, if I divide n not by n 0 to the very closest value is otherwise I will start it with 0. And I will fill this position I can do. But what I will do, I will practice I in n minus. Now I will create a function which is
is up divisible. Okay, so what I will do, I will take this number and take the modulus within. I will see, okay, if this is equals to 0 and the other one is equals to 0 or not. So it will return me if this is modulus equals to 0. If both are divisible, then I will take whatever the value which is greater. Okay, and if up is divisible, I will return up, and if that down is divisible, I will return down. And then I will again increment I and check did I not found this value. If it's, oh, I can understand this that what I want. Okay, int closest int closest and I got n comma int m. Initially the edge case will be what to if I want to find the closest, and if I take n modulus n, then it will become 0. If this will become 0, what I will do, I will return that this will be my answer. Otherwise, I don't know till which point I have to run the loop. So, as I don't know, I have marked this as true that I don't know. Now I will find left, and now left is what? Left is whatever my n value plus I value. And then I will find it's not plus, it's minus. After this, I will find the right value and the right value. Now check that the value which is found is correct or not. Okay, so what I will do, I will check uh, left. So I will select bold left divisible divisible left divisible. How will I check that? I will take left and take the modulus at the end, and I will check if this is equals to 0, and same for right. Right divisible, I will check for right divisible, and now after that I will check if left divisible and right divisible for both. Then what I will do, then I will check if what I will check the absolute difference of n minus left. If n minus left is greater than equals to abs of right minus n, then what I will do, I will return uh, left and not n minus left. I will return left, else I will return right. And the second possibility is if left divisible only from the left divisible, then I will return left and return right divisible.
Is I will see. Okay, there is minus 50, and then there is 6. So I will get minus 15, which is wrong. Is wrong. I will get minus 15. That's wrong. I can make some absolute difference now. So I will check what is the absolute difference. So rather than checking left and right, I will check what if this left absolute is equal to the right one. So I will check it with I plus I, one, which is greater. Like this or this. Value which is greater absolute difference will be considered to be an answer. So minus 15 and 6. I get okay. Remove it. Till the point I will not get something I plus plus. I plus plus. 15. And 6 minus 15. So 50 over 2 million. Over 3. Okay. Is constant. Why can I listen now is specifically in Now for the future period in the location and communication is because it's an operative cerebral interval of waiting. Even multiple times 10 0 10 0 10 20. Because this multiple times 2 to 20 same unit apart, any integer must fall somewhere between two indicated multiples again. Here this two multiples will end. The one this particular is shaped to end and R and when this above all is shaped to end. But what? Um, yes, VS Code theme name. Uh, theme name.
Hello, buddy. Hello. Yeah, yeah. Pretty much it. This is a GitHub theme. GitHub theme. Yeah, this one. GitHub theme. So, first time complexity is given to search space is kept at n by 2. It helps to visualize the distribution of multiples of m on a number line. The distribution principle, multiple of m occur at fixed regular interval of size n. If m is equal to 10, the multiples are minus 10, 0, 10, 20. Because these multiples are spaced exactly m units apart, any integer n must fall somewhere between two consecutive multiple of m. Let these two multiple be L and R. Must fall somewhere between two consecutive multiple of m. And suppose if they consider the two multiples to be L and R. The total distance between L and R is exactly m. Since L is somewhere between L and R, the distance from L to nearest multiple cannot exceed half the gap between the two multiples. Why am I to imagine the gap between two multiples L and R as the segment of length n? If n is exactly in the middle of the segment at the distance m by 2 from both L and R, you have to look n by 2 steps in either direction to find the multiple. If n is anywhere else, it is closer to one of the two multiples than m by 2. Therefore, in the worst case scenario, when n is exactly half away between two multiples, you will need to search more. You will never need to search more than n by 2 steps in either direction before hitting a multiple. Okay, I understand. I understand. If we define n in the terms of n is equals to q into m plus r, and r is the remainder. My closed multiple is q and the distance is r. I understand. I understand what I have to do actually. Now, if I why this is 9, the approach is considered 9 because it relies on iterative searching rather than mathematical calculation. While it is easy to implement it intuitively, what I know is if I have given some m and n, I know that if I have to find some number which is closest to n and which is divisible by n. What I know is that closest number is somewhere between a range. So okay, still, while it is easy to implement intuitive, it is inefficient for a very large variable. An optimal approach would be constant. Calculate Q, which is m divided by n. Consider the two closest multiple, m into q, m into q plus 1 or q minus 1 depending on size.
in optimization. ओके, अगर मेरे को एक m दे देता है और एक m एक कोई x वैल्यू है और m एक y वैल्यू है, तो मुझे x एक एक क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढनी है x की और n की एक closest value ढूंढनी है. I have to find a some closest value near n uh which is divisible of what? Divisible of m. So what I understand here is that there is some x, and that is if this is multiple of m, it means that it will be m into some number q. And if I consider n here, what is n? That okay, uh, from n there is some distance of x, right? That some distance will be considered as integer. So it means that n is equals to some multiple of m plus there are some remainder. So I understand this. Now Q is the quotient using integer division and R is the remainder. Okay, two potential candidates for closest multiples are lower multiple q into m and the higher multiple q plus 1. Now, this is one of the intuition. I got the equation. Now, what I know is this q is the multiple of m. What I know is that if m is the multiple, m is multiple, right? Then what I know is there is some number. Okay, what I know is if m is the multiple, mm, I want to find some number which is multiple of. Okay, I have to find some number which is multiple of m, which is closest to m. So as I know this, what I know is, okay, m has some range, which starts from q and it goes till q plus 1, right? This is some range. And the range is exactly equals to m. And there is some n or some x which lies between this, and the distance between them is not more than n by 2, not more than n by 2. So I have observed this, that okay, so one thing what I analyze is, okay, I know that if I want to find some number which is closest to n and which is multiple of n, what I know is as the multiple is left has some range. Okay, the multiple has some range. In that range, the number will be present. Okay, that number will be present. If that number is present, now what I've seen here is the distance between them is not more than m by 2. Right, the distance between them is not more than m by 2. That's why I got the complexity to be m. Now what I observe here is it's not n by 2, it's m by 2. So there is a quotient. The two potential candidates whose multiples are lower multiple is equals to q into m and higher multiple I already know it.
Now simply compare the absolute difference to see which is smaller. ये कैसे आया? ये लॉजिक The logic behind the optimizing math relies on division algorithm. Any integer n lies between two consecutive multiple of m. Finding the quotient. In C++, when you perform q is equal to n minus, it perform integer division, which truncate the result towards 0. This gives a multiple of m that is closest to n from the inside of the interval. Now what I've seen here is that, okay, n is equals to m into q, m into q plus r. Now what is q here? What is q here? How will I know that if this is a q? So if r is equals to 0, it means that remainder is 0. Then how will I know that what is uh what is exactly the n, or what is the exact multiple uh that I multiply it with m to get n? So if I want to know that, how will I know that? I know that by this. Okay. So q is equals to n by m when r is equals to 0. To know the closest multiple or exact multiple. So I will know, okay, this is the multiple now, and I want to find the remainder. That how will I find the remainder here? So how will I find the remainder now? So if I want to find the remainder with the method, what the hell? Understand this code easily. And what the hell is this? Now after that, hmm, after finding the quotient, what I will do is I will check that after knowing the quotient, I will check that what is the range. That what is the range. After knowing the range, consider the two closest multiple. So after dividing it by how will this work? Let's take some example. 13 and 4. ब्रो सिंगल लिस्ट के बाद कौन कौन से लिंक लिस्ट इम्पोर्टेंट है? डब्ल्यू सर्कुलर में बहुत है उसमें, and also सिंगल लिंक लिस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं? भाई सिंगली के बाद डबली, बस डबली और सर्कुलर, यही दो इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन तो आई थिंक यूट्यूब पे इसके सॉल्यूशन देख लो ना, क्वेश्चन तो किसी को हो ना। अरे वो तो ठीक है, मैं उसका देख तो लूंगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं रहते, तो फिर वो समझने में दिक्कत आएगी। तो बेसिकली मैं रिलाई ही नहीं कर रहा लेक्चर पे, वो तो इजीली समझा देगा और वो एक तरीका बता देगा।
वो मैं रट लूंगा फिर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी के समझ समझ रहा हूँ कैसे क्या किया गया। पोथी पतरा खोल रहा हूँ इसका पूरा। सो ओके, q इज इक्वल्स टू n बाई m व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, और अगर मेरे को n इज इक्वल्स टू 13 दिया गया है। हाँ बस वही है, ये सही है। आ, अगर मेरे को n इज इक्वल्स टू 13 दिया गया है और m इज इक्वल्स टू 6 आई हैव गिवन। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड। भाई डेवलपमेंट में हाथ सेट कैसे करोगे अगर हाथ ढीले हो जाएंगे? भाई डेवलपमेंट में तो पूरा ही हाथ सेट है। था मतलब, अभी भी है। करने जाऊंगा तो हो जाएगा। हम्म, इतना डीएसए करने में डेव करे को टाइम नहीं मिलता होगा ना। और डेवलपमेंट पहले ही कर ली, खत्म हो गई डेवलपमेंट। उसमें कुछ बचा ही नहीं है करने को। एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज, दो लैंग्वेज बच रही है, वो भी सीख लूंगा, गोलैंग और जावा। Okay, so what I have to do is that I want to find the closest multiple. I know that if this is an n, this will lie in some multiple of m. This will lie in some multiple of n, like the first multiple will be L and second multiple will be R. Okay, so how will I know that what is L and R? Right? Because I want to know what is the range in which this n is equals to 13 will lie. So what I will do is, okay, uh, लग ऐसा रहा है नेक्स्ट प्लेसमेंट सीओ सिर्फ 20 लाख का था। थैंक्स बडी, थैंक यू सो मच। So, uh, what I have to do, I have to find that what is this L. So how will I, okay, wait, how will I know this what, how will I know that what is this L? So I know that to find this L at this point, this will, this, there is some M, right? If there is some M, and this M is equals to exactly N. So, okay, I know this. And what I also know that at this point the remainder will be 0, because if this is a multiple and if this is some number, suppose let's remove this. If I consider this to be some x value, right? What I know is if this is a multiple of n, the remainder will be 0. Fine. And here also the remainder will be 0. Now I want, if I consider this to be n, so how will I know that what is the n value? So maybe if I consider the range, the n must lie in this range, right? So I want to find out what is this range. So to know this range, what I will do is first I will find that what is x. So I know that x is equals to n is equals to m into some multiple of q and plus r. And at this point, when r is 0, so I will remove this, and what I will know that, okay, q is equals to n by n. So this is x. So I know that, and what I know is, okay, this is q, so basically this is q plus 1. Now I know this is q plus 1. So basically I know the range. Okay, so I know the range, okay, it will be starting from n by m to n by m plus 1. I know this. This will be range. Now n will lie. Now what I want to know is that what is the closest multiple of f. So the basically if I know that what is n here,
So how will I know that what is n here? It is given in the question is okay. Then consider the two closest multiple n1. Okay. So after that, what I want? I know the value of n. Okay. And now I also know this value that this is some n by m and this is also some n by m plus 1, right? This is it. Now I want to find the closest value. So I will find the distance between this point from this to this and this to this and find which is larger. So I will return that larger one. अरे मनोज अरे मनोज नहीं हेलो ओके आवाज आ रही है हाँ कुछ कर रहे हो क्वेश्चन है हम्म तो क्वेश्चन ये है कि हमें एक n दिया हुआ है ठीक है और n की वैल्यू 13 और एक m दिया हुआ है m की वैल्यू है 6 ठीक है और हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है जो कि n के पास हो और m से डिवाइड होती तो कैसे होगी क्वेश्चन समझा दूं पूरा क्या है कि समझ में आ गया इसका आंसर आएगा 12 ठीक है बट वो कैसे आएगा ये पता करना है What, 13 modulus 6 के n से माइनस कर दूं ओके ठीक है तो और एक सेकेंड 6 और जैसे कि ये n दिया हुआ है -15 और m दिया हुआ है 6 नहीं 6 दिया है क्या दिया है एक सेकेंड हाँ 6 ही दिया हुआ है ठीक है m 6 ही दिया हुआ है तो मेरे को बताना है ये क्या है -18 इसका आंसर -18 आ रहा है क्या तो माइनस मॉडुलस करने पे तो माइनस देता है हम्म हम्म तो ये करूं कि मॉडुलस करके प्लस कर दूं एंड में हाँ बट ओवरऑल इसमें एक और चीज है कि ये -18 इसलिए आ पाया है मुझे इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू बतानी है अब यहाँ पे क्लोजेस्ट
हाँ, तो क्लोजेस्ट -12 भी हो सकता है, -18 भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम्म हम्म तो वो दोनों वैल्यू लेनी है और दोनों में से जिसके एब्सोल्यूट डिफरेंस ज्यादा है वो आंसर होगा। तो 18 का ज्यादा था तो इसलिए 18 है। हम्म तो इसमें क्या करोगे, मतलब लूप लगाओगे वगैरह वगैरह कुछ? हम्म 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 यार कहाँ की ये वाला वैसे लॉजिक तो गलत है, ये कहीं पे तो फेल होता है, बट कहाँ फेल होता है, रुको। इसका लॉजिक जो तुमने बताया मॉडुलस वगैरह करके, वैसा तो कुछ है ही नहीं। वो तो तुक्के में ये दोनों सही होगा। एक सेकेंड। जीएफजी में तो एक सॉल्यूशन लिखा है कि क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढनी है, तो सबसे ब्रूट अप्रोच ये है कि पहले उसी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, एन पे। फिर एन पे खड़े होके दोनों साइड जाओ। ठीक है, दोनों साइड जाओ और जाते जाते अब ये चेक करो कि ये जो नंबर आया, ठीक है, ये नंबर क्या मॉडुलस हो रहा है एम से, जीरो दे रहा है ये? तो अगर ऐसा होता है कि दोनों जीरो दे देते हैं, ठीक है, तो फिर मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूंगा कि दोनों में से एब्सोल्यूट डिफरेंस ज्यादा किसका है। तो जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस ज्यादा होगा वो रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद अगर उसके बाद ऐसा होगा कि या फिर तो सिर्फ एक ही का आ रहा होगा, या तो लेफ्ट का या राइट का, इन दोनों में से कोई एक ही डिवाइड हुआ होगा। तो जो जिसने डिवाइड किया है बस वही रिटर्न कर दूंगा कि यही डिवाइड हुआ था, ये वाला नंबर। तो ये हो गया बिग ओ ऑफ एम अप्रोच। और ये बिग ऑफ एम अप्रोच आई से कॉम्प्लेक्सिटी में। तो इसमें एक लॉजिक है कि ये लूप कितनी बार चला होगा। तो लूप चला होगा m/2 टाइम्स, उससे ज्यादा चलेगा ही नहीं। m/2 टाइम्स क्यों चला होगा, इसमें एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, अब भाई यहाँ मैथ घुस गई थोड़ी। तो मेरे को क्या पता है कि एक मेरे को n नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे क्या पता है कि n में कुछ जोड़ के या घटा के ऐसा होता है कि ये मेरे m के बराबर बन जाता है, मतलब m से मॉडुलस हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो n है ये मल्टीपल होगा m का। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ सकता हूँ कि ये m/q और प्लस इसमें कुछ रिमाइंडर जुड़ता होगा। ठीक है, ऐसा होता होगा। तो बेसिकली मेरे को क्या दिया हुआ है कि एक अगर कोई एक m है, सॉरी n है, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है m से। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होगा ही होगा कि मैं एक m का कोई मल्टीपल लूं, ठीक है, और एक दूसरा मल्टीपल लूं m/q+1। ठीक है, तो बेसिकली ये जो भी n है ये इसके बीच में ही आएगा हमेशा। तो ये ज्यादा से ज्यादा किसी भी मल्टीपल से कितना दूर होगा,
क्लोजेस्ट मल्टीपल से। हाँ हेलो। हेलो। अबे हेलो। हेलो हेलो। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे कि क्या हुआ कि मेरे को ये पता चला कि ये जो एन आएगा ये एक रेंज में आने वाला है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये एम क्यू और एल एम क्यू प्लस वन एक एल और एक आर है। ठीक है, इसी के बीच में आने वाला है। अब ये कहीं पे भी आए, तो मान लो कि अगर ये यहाँ पे आया, ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगी वो एम बाई टू से कम ही होगी। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है कि ये एन के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढनी है जो एम के मल्टीपल हो। तो वो जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू होगी वो मैक्स टू मैक्स, अगर मान लो कि मेरा एम जो है, सॉरी जो एन है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है बीच में। ठीक है, तो इसकी मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस कितनी आ सकती है, एम बाई टू, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही करना है कि अब मुझे बिग O वन ऑपरेशन में पता लगाना है कि भाई ये बताओ कि इसका क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, तो अगर मुझे क्लोजेस्ट मल्टीपल पता लगाना है तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो n है, ठीक है, ये जो n है ये m का मल्टीपल है कि नहीं, और m का मल्टीपल बनाना है तो क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन क्या दी हुई है कि n इक्वल टू m इंटू क्यू प्लस आर, तो अगर n एग्जैक्टली m का मल्टीपल होता तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो हो जाता। ठीक है, तो अब मुझे मल्टीपल निकालना है, तो मैं मल्टीपल कैसे निकालूंगा, रिमाइंडर जीरो हो गया तो q इक्वल्स टू एन बाई एम, है ना। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो एम क्यू लिखा हुआ है ये क्या होगा, एन इंटू एम। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, एन इंटू एम प्लस वन। ठीक है ना। हेलो। हाँ समझ में नहीं है। नहीं। हम्म। ठीक है, तो ये एन बाई एम और ये एन बाई एम प्लस वन, ये दो चीजें आ गई। अब जब ये दोनों चीजें निकल के आ गई और एन इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये जो नंबर आया है एन बाई एम ये क्या है, एम का मल्टीपल, और ये भी एम का मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एम के मल्टीपल है तो बस मैं इसकी डिफरेंस निकाल लूँ, ये डिफरेंस कितना है और ये डिफरेंस कितना है, और उसमें से जिसका डिफरेंस बड़ा होगा वो रिटर्न कर दूं, वही आंसर होगा। है। अब देखो, अब जैसे कि एन इक्वल्स टू मेरा क्या दिया हुआ है, 12। ठीक है, और मेरा सॉरी 30, और एम इक्वल्स टू दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कि इसका फैक्टर क्या है। ठीक है, कि सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है जो एन के क्लोजेस्ट है और जो कि एम की मल्टीपल है। ठीक है, तो मेरे को क्या देखा कि ठीक है 13 है, 13 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी 13/4 12, और 3 आ जाएगी। ठीक है, ये मेरी 3 आ गई। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा कि एक सेकेंड, ये मेरी क्यू की वैल्यू 3 आ गई, ऐसे कुछ करता हूँ पे, और फिर यहाँ पे मेरा इसके बीच में ही ये क्यू मल्टीपल आ रहा होगा। अ, ऐसे ही करके तो था। वेट कर दूं। हम्म।
हाँ। अब तुमने एग्जैक्टली चीज बोली क्या है, क्योंकि तुम्हारी आवाज भी कट गई है बीच में। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ हाँ, ये भी पॉसिबल सॉल्यूशन तो है। अरे अभी आई है आवाज, उस टाइम पे कट रही थी आवाज, तो मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने क्या बोला है। लेट्स, एक सेकेंड। इन करके जो रिमाइंडर है उसी को प्लस माइनस करके चेक कर लो क्लोजेस्ट। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अपोज सॉर्टेड रिमाइंडर आर मॉडल्स का यूज करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो आपको एन से कितने पीछे या कितने आगे जाना है। वो वाला ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर हाँ ठीक है, हाँ कर सकते हैं। हम्म। अप्रोच करा जा सकता है, ठीक है। मैथमेटिकली और बाकी बाकी अरे सालों ने वही काम किया है करके। सो एन मॉडुलस एन, और बाकी मैं इस वाले का चाह क्लोजेस्ट वैल्यू निकाल लूँ, और क्लोजेस्ट वैल्यू निकालने के बाद मैं ये, ठीक है ठीक है, क्लोजेस्ट वैल्यू निकाल लूँ और यहाँ से मैं रिमाइंडर निकाल लूँ। ये बड़ी हेलो। सो मैं क्या करूँ कि मैं रिमाइंडर निकाल लूँ। मैं एक सेकेंड, मेरे को एक नंबर दिया है, ठीक है, जैसे कि 13 दिया है। 13 का मॉडुलस कर दूँ 6 से, ठीक है, तो रिमाइंडर कुछ आ गया। अब ठीक है, अब ये रिमाइंडर कुछ भी आ गया, तो ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को हटाना है, तभी मल्टीपल निकल पाएगा। तो मल्टीपल निकल पाएगा, सही बात है। तो ये जो मल्टीपल निकलेगा ये आगे भी निकल सकता है, पीछे भी निकल सकता है। और जो भी ये रिमाइंडर निकले, तो मतलब मल्टीपल निकले, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देख लो, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ रही है, और जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है उसमें जो बड़ी है वो रिटर्न कर दो। तो मतलब कि ये तरीका है। इन द क्लोजेस्ट, ठीक है, तो मैं एक रिमाइंडर निकालता हूँ जो कि एन मॉडुलस एन है। फिर इंट वैल्यू वन निकाल लेता हूँ, जो कि एन प्लस आर ये में, और दूसरी एन माइनस आर ये में। ये वैल्यू टू है। और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, एब्सोल्यूट ऑफ वैल वन इज ग्रेटर देन
एब्सोल्यूट ऑफ वेल्थ टू, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न वेल वन और एल वेरिफिकेशन। तो दोनों का बराबर ही आ गया। बड़ा या बराबर आ गया। उसमें देख दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस ही बराबर आ गया। तो क्या रिटर्न करूंगा यहाँ पे? तो यार अपना पड़ता जैसे चिपक। नीचे वाला मल्टीपल ऊपर वाला मल्टीपल। ऊपर वाला मल्टीपल नीचे वाला मल्टीपल निकालने के लिए तो रिमाइंडर से माइनस कर दो। ऊपर वाला मल्टीपल निकालने के लिए अगर पहले तो देखो कि n अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरा ऊपर जो भी मेरा एक सेकेंड n1 है, एक बार ये निकाल लिया वैल्यू वन, तो वैल्यू वन नीचे वाला मल्टीपल आ गया और नीचे प्लस m करूँगा। पॉजिटिव में भी प्लस m करूँगा और नेगेटिव में अगर लेस देन जीरो हुआ तो n1 जो आया है उसमें माइनस कर दूंगा। n1 प्लस m और इसमें n1 माइनस m में से एक आया 12। माइनस आने से वहाँ चलेंगे और तीसरा मल्टीपल निकालना है तो n1 में m जोड़ा, तो मेरे को फिर डाउन ऑन पॉजिटिव n अगर नेगेटिव हो गया, अच्छा n ही अगर नेगेटिव हो जैसे कि -3, n अगर 0 हो गया तो the code multiple that is less than or equals to nt is equals to n into 2 plus 1 or p2 is 3 into 2। ये सबसे छोटा मल्टीपल है, क्यों निकालते हैं? 2 plus 1 is 2 minus 1 निकाल लो। ठीक है, नेगेटिव टू टू और नेगेटिव में अगर मैं चला जाता हूँ n अगर नेगेटिव हो जाता है
जैसे कि इसमें क्या नेगेटिव होगा, जैसे कि इनिशियली -15 है, तो -15 की ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, -18, एन यहाँ पे -18, जो भी है तो एन उठाएगा, ये तीसरी वैल्यू थी और माइनस कर दे इसमें एन को, तो ये हमारी प्रॉब्लम और बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। एब्सोल्यूट निकाल लो। ठीक है, तो वैल्यू 1 दोनों इट इज रिप्रेजेंट एज द, ओके तो ये वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू 1 -n, वैल्यू 1 -n अदरवाइज, और उसके बाद क्या करो, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो इसका। इस पॉइंट से हम छोटा है, कि अगर ऐसा होता है कि एब्सोल्यूट रिटर्न करना है ना, तो ये तो वैल्यू नहीं है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, अब मैं क्या करूँ, n1 n माइनस वैल्यू 1 और n माइनस वैल्यू 2, n माइनस वैल्यू 2, तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है कि ये बढ़िया रहती है तो वैल्यू 2 को भी वैल्यू 2 माइनस n माइनस वैल्यू 1, पीछे वाली वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू 2 माइनस n होगा और ये वैल्यू 2 माइनस n होगा। ठीक है, और एल्स क्या होगा, वैल्यू 2 तो फिर एब्सोल्यूट तीसरी कैसे होती है कि तीसरी कैसे मैक्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ये बड़ा है तो ये, दूसरा वाला बड़ा है तो दूसरा वाला, n माइनस n टू, इनमें से तो बड़ा है, ठीक है, अगर दोनों ही बराबर है, हम्म, वैल्यू 2 n माइनस वैल्यू 1,
Yeah. See. Value 2. हम्म, हाँ हेल्थ अगर हेल्थ दोनों में टाई हो जाता है तो मैं ये देखूंगा कि if एब्सोल्यूट वैल्यू है वैल्यू वैल्यू की है बड़ी एबीएस ऑफ वैल्यू टू की से टू रिटर्न वैल्यू वन एल्स रिटर्न वैल्यू टू। so यही कर रहा हूँ मेरे को टू वैल्यू रिमाइंडर निकाल लेता हूँ और वो रिमाइंडर निकाल के अगर तो क्लोजिंग में तो जाने के लिए कहाँ तक नीचे ले आऊंगा और बस सिक्योरिटी टाइम को तो क्लोजेस्ट वैल्यू जाने के लिए हाँ एक तो पीछे चल जाऊंगा और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो ये हो सकता है कि इन दोनों से एक वैल्यू बड़ी आएगी इससे इसकी वैल्यू इससे इसकी वैल्यू बड़ी होगी उसको रिटर्न करूंगा और अदरवाइज दोनों की वैल्यू अगर बराबर आए तो जिसका खुद का एब्सोल्यूट डिफरेंस बड़ा कि खुद की वैल्यू बड़ी है वो आएगा express the numerous sum of consecutive ten, 10 given a positive number and whether it can be expressed the sum of two or more consecutive positive integers. मुझे ये बताना है कि क्या ये जो नंबर है क्या ये वन प्लस टू प्लस कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम करके बन सकता है कि नहीं। हम्म, even if integer can result in seven so even more consecutive integers effect seven going to be going to be seven and each second dollar service the nearest calculation the name of people and consecutive cells. The average to start from every more and each other educated and much number of some little equals to or greater than n if the sum because of the phone becomes first image revenue from the image the sum first x plus a natural इसकी अप्रोच है तो any positive integer n greater than 1 can potentially be expressed as sum of one or more consecutive positive integer.
And now using brute force method that systematically test all the possible consecutive sequences to see which one sum up to a target number. The logic of model purpose to express a number n as sum of consecutive integers. We look for starting integer I and in sequence length k, such that I plus 1 plus I plus 2 plus आई क्यों और वहां से प्लस 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 वन टू थ्री ऐसे जोड़ जोड़ के कोई की नंबर तक जाओ फिर माइनस वन तक अगर वो इनके बराबर आ रहा है तो ठीक है. The ninth strategy work as follows. Iterate through possible starting point. Start an integer I from 1 to n by 2. Says the smallest consecutive sequence must be at least two numbers. The starting number cannot exceed n by 2. ठीक है. एक मिनट रनिंग सम for each starting point. Begin adding consecutive integer I plus 1, I plus 2 by 1. Check the sum. If the running sum equals to n, you have find a valid sequence printed move to next possible starting point. If the running sum exceeds n, stop adding for the current I and move to the next starting number. Hmm. सब आई से चालू ही करूँ इसके बाद कॉन्सेक्यूटिव जोड़ना चालू करूँ. ये काम तो मैं कर सकता हूँ. एग्जाम्पल ऑफ n is equals to 50. स्टार्टिंग में से चलो कि 1 2 3 4 5 15 आ गया. फिर इसे चलो कि 2 3 4 नहीं आया. 14 2 प्लस 6 प्लस 2 stop stop try but valid sequence is 15 but the 9 of which involve 2 instead of 2. The worst here this result in time complexity of view of n square as n grows large. This method becomes significantly slow. The space complexity wave of n as we only need a few variables to keep track of currents in iteration. Is the so मेरे यहाँ पे क्या समझ में आया है कि कि अगर मेरे को दिया गया कि भाई n की वैल्यू दे दी है 10, मैं पता लगाना है कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का सम बना के बना पाओगे कि नहीं. तो 1 प्लस 1 से चालू किया. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 4 3 7 2 9 1 10 बन गया. फिर 2 से चालू किया. 2 प्लस 3 प्लस 4 4 3 7 2 9 1 5 जोड़ते ही नहीं ये नहीं बन पाएगा. 3 प्लस 4 प्लस 5 4 3 9 ये भी नहीं बन पाएगा. 4 प्लस 5 9 हुआ प्लस 6 नहीं बन पाएगा. 5 प्लस 6 नहीं बन पाएगा. तो ये तरीका इसके ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि मुझे दो नंबर का सम करके n बनाना है. तो ये n बाई टू से बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये n बाई टू तक ही जा सकता है और प्लस n बाई टू प्लस वन जो होगा तो ये n प्लस वन हो जाएगा n से बड़ा. नेक्स्ट n जा सकता है. सो दो लूप चलो. ठीक है. हाँ. तो एक इंट void बनाते हैं. void sum consecutive consecutive sum int n. और मैं क्या करूँगा कि फॉर लूप चला लूँ. int i is to 1 से लेकर I less than n I plus plus के बाद else कब तक चले इतना एकदम लास्ट तक नहीं पहुंच जाता इक्वल्स टू n तक. फिर वो वाला भी क्लियर हो सकता है.
अंदर वाला लूप क्या करेगा, ये चलेगा। जी, जो कि 0 से चालू होकर कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। ऊपर ये आई से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, एन तक। एन तक जाता है। फिर ये कभी एन तक जाएगा, ये तो एन बाई टू तक ही जाएगा। एन बाई टू, ये भी एन बाई टू तक जाएगा। और अब मैं चेक कर लूंगा। इनके सम इज इक्वल्स टू 0। सम प्लस इक्वल्स टू जी। कैलकुलेट करते करते कब ऐसा आया था कि सम इज इक्वल्स टू एन आया था। तो काउंट प्लस प्लस, ऐसे कितने वो पॉसिबल है। We have to count and execute some. और क्यों बोलूं? इसमें से फिर 15 में 12 सीखने से 3। मर गया। तो 15 में तो हुआ। इसमें गलती रहता है, इसमें गलती नहीं है, उसमें वैसे गलती रहती है। मैं देखता हूँ कहाँ गलत काम कर रहा है। तो उसमें पहले इनके काम के लिए ठीक है। तो सबसे पहले उसमें हुआ क्या होगा। तो सबसे पहले उसमें हुआ क्या होगा कि मेरा एम इक्वल टू 15 है। एम इक्वल टू 15। एम इक्वल टू 15 है, ठीक है। अब मेरा आई बनूंगा, तो ये 1 से चलना चालू हुआ। 1 से 1/2 तक सारे नंबर के सम करते जाएगा। अगर 10 ले लेते हैं, उसको 10 ले लेते हैं। तो
ये वन से चालू हुआ जाते जा रहा है, वन होगा, वन के बाद उसमें टू जोड़ा, अभी सम एन के बराबर नहीं, अब थ्री जोड़ा, अभी भी नहीं है, अब फोर जोड़ा, अब चार और तीन सात, दोनों एक 10, ये जोड़ते ही हो गया 10 के बराबर। यहाँ पे एन नहीं लिखना चाहिए, यहाँ एन तक चला इसका। ठीक है, तो ये चार पे गया, ये हो गया एक 10 के बराबर, तो ए अगर सब एन के बराबर हो गया, ये हो गया पास, एक पॉइंट तो मिल गया, एक मिल गया, तो अब ब्रेक करेगा बाहर, और ये और चेक कर देगा ना कि इफ अगर, अगर मेरा सम ग्रेटर देन एन हो जाता है तो ब्रेक कर देना। बस, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आगे गया, और ये एन बाई टू, पाँच पाँच पे भी चला, प्लस सोचिए पाँच पे चला, तो +5, +5 होते ही दिख गया होगा कि अरे भाई ये तो 15 हो गया, अब 15 सम से बड़ा हो गया तो ब्रेक हो गई, आगे आ गया इक्वल्स टू 2 पे, इसका तो एक ही एयर ही मिलेगा, दो, दो भी छोटा है, 2 + 3, ये भी छोटा है, दो, 3 2 5, चार ये जोड़ा, ये भी छोटा है, 4 3 7 2 9, 9 सम छोटा है, तो अभी तक तो चल रहा है, फिर 5 जोड़ा है, ये बड़ा हो गया, तो एक कल्टी मार गई, उनसे बाहर आ गया, फिर आई इक्वल्स टू 3 से चालू किया, 3 से चालू किया तो 3 से चालू किया, बाहर वाला तो वैसे भी चालू हो सकता है, अंदर वाला भी है, 15 and so on, so लिखा था but आई इक्वल्स टू 3 से चालू होगा तो 3 आएगा, ये छोटा है, 4 7 आ गया, 5 जोड़ते ही बड़ा हो गया, ये निकल लिया, ये नहीं होगा, फिर आई इक्वल्स टू 4 पे आए, आई इक्वल्स टू 4 पे आए तो 4 और 5, ये 9 आ गया, ये तो बराबर भी नहीं, छोटा भी नहीं है, लूप ही खत्म हो गया, बाहर निकले, आई इक्वल्स टू 5 पे आ गए, हाँ 5 पे आके चलाया तो 5 आ गया, और n/2 से ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि n/2 के बाद, n/2 के बाद कुछ भी प्लस करूंगा, हाँ, ये तो n हुआ, प्लस 10 भी तो हो सकता है, बट मुझे छोटे लेना है, जो छोटे हो उससे, तो एक ही आएगा, तो यहाँ पे अगर ये मैं लेता हूँ 10, तो बाद में कुछ ले लेता हूँ, एक आएगा, और अब मैं लेता हूँ यहाँ पे 15, और 3 आ रहा है, सही है, वो तो ठीक है, n/2 नहीं, n तक भी आ रहा है, तो वो समझ का सब करते जा रहे हैं, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, space complexity we go for and optimize it. So what to think while optimizing, optimizing the process, whether it code business, this code,
It looked like we were provided a code snippet. Uh, Optimizing process of expression a number n as a sum of consecutive numbers. Move away from brute force nested loop while and using a mathematical properties. The sum of consecutive will be started from A with the length of K is arithmetic series. K length की series हो सकती है. Using the arithmetic series sum formula. Why? K. Because in a context of mathematical approach to expressing a number as a sum of consecutive integers K, referring the number of terms of sequence. To help you visualize this, thinking of a sequence as a window of number that slides across the number line. The sequence is two numbers, 7 and 8. Case constituting the sequence is three numbers, 4, 5, 6. Case constituting the sequence is five numbers. You can think of K as a width of sequence. The formula n is equal to K by 2, 2a plus K minus 1 actually describes the area of trapezoid or a staircase-like structure. How the staircase is A, the base of the staircase is determined by starting point A and the number of steps K. Why do we iterate K? In optimization, we treat K as a primary variable because we know that K must be at least 2. A sum implies more than one number. Upper bound, we know that K cannot grow indefinitely because the possible sum of K consecutive 1, 2, 3, 4 up to K is equals to K plus 1. Value is already greater than n, then it is impossible to find the sequence of length. तो max up to k numbers को ले सकता हूँ एक number का. Think of if you are trying to find the sum that equals to 5, you are trying to fit a block of two numbers, then a block of three numbers, then 4 and so on. As soon as smallest possible block of length is larger than 50, you know you don't need to test any larger value of k. अच्छा अच्छा. तो भाई a sum of अरे भाई. So I know that what is the big of n square approach, that we have to iterate, we have to find it, and after that what we observe is okay. One thing I observe is that n is the sum of, I will start it from some point and then I will add some key points into it. Okay, and this will give me the sum is equals to n. Now I want to know that what is that key value or what is that starting point. To know the starting point using the arithmetic series. So this is basically a, so what I observe here is okay. So if I want to find the sum, I don't know, I will start it from some point and do a plus 1, then I will do a plus 2 into it and up to so I will do 1 upon k 1 plus k minus 1 up to this point. So right, I know that okay, a is a here, d is 1 here, and now the last term is a is equals to a plus n is equals to a upon k minus 1. So n by 2, how many terms are there? There are total k terms, k by t. So basically we are adding k terms.
After adding k terms, we get the sum is equals to n. So starting term a plus k minus 1, I will get k by 2, 2a plus k minus 1. Okay, now I have to find out what is the starting point. I know that this is equals to n, so 2n by k is equals to 2a plus k minus 1. Now what I observe is okay, 2n by k mm, minus k plus 1 upon 2 is equals to a. Okay, so this is, so iterate on k. Since k must be at least 2, we start with k is equals to 2 and increment it. Okay. And maximum possible value of k is roughly under root n. Okay. Why it will be under root n? To understand why loop k only needs to go to roughly under root n. We now select the minimum possible sum of the sequence, the mathematical logic. As we established, k is the number of integers in our sequence. If you want to make the smallest possible sum for the sequence of length k, we should pick the smallest possible positive integer starting from 1. The sequence is this. The sum of sequences given by formula is this. For the sequence to be valid to represent n, the sum must be less than or equals to n. Okay, the sum is greater than n, then even small possible sequence of length k is already to be. So we set up inequality this. Now simplify for k. We get k square by 2 is equals to n, and k square is approximately equals to 2n. So k must be 2. What do I have? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? I understand this. So that's why I have to run the loop maximum n root n number of times. So it means that now I have to calculate that how many consecutive int count is equals to 0. Now one thing the minimum. So मैंने सबसे पहले बात सोचा कैसे है ये, सोचा ये है कि मेरे को देख कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को पकड़ना है, ठीक है, और उस कॉन्जिक्यूटिव नंबर को पकड़ के मुझे सम निकालना है। अब वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो मुझे क्या पता है कि एक वो स्टार्टिंग नंबर होगा और उसमें मैं प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन करते जाऊंगा, ठीक है। तो ये प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कहाँ तक करते जाऊंगा, अप टू मैक्स अप टू के टाइम, ठीक है। तो ये के क्या है, के यही तो बता रहा है कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं। एक मान लो विंडो पकड़, मान लो 7 से चालू है, तो 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2 9, तो ये 2 क्या बता रहा है कि भाई इतने टर्म्स लिए हैं मैंने। हम्म, ये मेरी विंडो की साइज बता रहा है कि कितनी विंडो की साइज हो सकती है। क्या वो विंडो की साइज बता रहा है या कुछ और बता रहा है? Hmm, K is equal to, if you want the sum of k consecutive number,
अच्छा अच्छा। मगर ये सोचो तुम्हारे पास 15 है, तुम्हें ऐसे एक के बाद एक वाले नंबर के साथ मत तोड़ना। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम नंबर को स्टार्ट फ्रॉम वन, ये हो गया नया अप्रोच बहुत लंबी रही, या फिर तुम सीधे लेंथ सोचो कितने नंबर को जोड़ना है, ये हो गया ऑप्टिमाइज अप्रोच। की का मतलब है सीक्वेंस की लंबाई। तो मैं तुमसे पूछी कि 15 को दो नंबर के संग में लिख सकते हो, फॉर्मूला चेक करेगा कि एक्स एक्स प्लस वन इज प्लस टू 15, अगर सेट हो गया तो मिल गया। अब मैं पूछूं कि 15 को तीन नंबर के सम में लिख सकते हो, तो फॉर्मूला चेक करेगा एक्स एक्स प्लस फॉर्मूला। कि बस यही बता रहा है कि हम कितने नंबर की चेन चेक कर रहे हैं। ये रूटीन वाली बात क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि केस टू ये लंबी छोटी चेन है, सबसे छोटी चेन है। फिर तीन है केस टू थ्री, के भी तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जोड़े, तो ये सबसे छोटी चेन है। फिर के लिए सबसे छोटी चेन है, सबसे छोटी चेन है। अब सोचो एन पढ़ना है, छः इक्कीस में से सिक्स चेक करें, तो सबसे छोटी चेन है 21। अब दिक्कत देगी, 21 तो 15 से बड़ा होगा, इसका मतलब कि स्पेशल सिक्स या इससे बड़ी कोई भी चेन 15 नहीं बना सकती, क्योंकि एक पे शुरू करने पर ही हम सब 15 से ऊपर निकलेंगे। इसलिए हम बस वही तक चेक करने जहाँ तक चेन सब उनसे छोटा या बराबर है। तो दोनों किए हुए चाहिए जितने नंबर कहीं जोड़ रहे हैं। देखिए वही है बात है कोई तो। हम्म, तो ठीक है, लेकिन ये प्लस वन प्लस थ्री प्लस टू प्लस अप टू ये प्लस की माइनस वन, कुछ कैसे होगा। हाँ ये तो मेरे को सही है, बीच देखना था। और ये कैसे हुआ, सीक्वेंस को लिखो, पहला ए प्लस दूसरा ए प्लस टू, नंबर आखिरी ए प्लस के माइनस, क्योंकि अगर के तीन है तो आखिरी टर्म ए प्लस टू होता है, यानी के माइनस वन। ठीक है, इन सबको सम एडिशन करो, तो यहाँ दो चीजें हो रही है, ए कितनी बार ऐड हो रहा है, ए यहाँ टोटल के बार आ रहा है, तो ये हो गया के इंटू। नंबर वन टू टू कितनी बार ऐड हो रहा है, ये सीरीज बनेगी वन टू थ्री फोर अप टू के माइनस वन। फॉर्मूला होता है सौ दस, यहाँ हमारा आखिरी टर्म के माइनस फॉर्मूला बनेगा ये। अगर शुरू में क्या रहा, अगर के थ्री है तो आखिरी टर्म के प्लस टू होता है। कुछ नंबर मिला कर एन दे रहे हैं, वो नंबर कहाँ से चालू होगा, उनको तो बस ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये कुछ नंबर मिला के एन देंगे। ठीक है, कितने नंबर ये क्या बता रहा है, कितने नंबर ले सकता हूँ मैक्स टू मैक्स।
अगर दो ही लूंगा सम निकालना तो दो ले पाऊंगा। और के की मिनिमम वैल्यू दो और मैक्सिमम वैल्यू रूट 10। सॉरी तो वैल्यू हो ही नहीं पाएगी। रूट 10 क्यों? क्योंकि टोटल सम मिला के मान लो कि के एलिमेंट होगी तो ये क्या बता रहे कितने एलिमेंट्स लिए। के एलिमेंट ले लिए तो सम करूंगा तो k+1/2 लेस देन एन स्क्वायर होना चाहिए, मतलब के स्क्वायर लेस देन एन होना चाहिए, यानी के लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट 10 होना चाहिए। हम्म, हम्म, ये तो कंफ्यूजन इंग्लिश ये बताता है कि कितनी लंबी चेन है और मैथमेटिकल की इक्वेशन को वो ऐसे जिसमें चेन करके ए निकालते हैं। दोनों एक ही है, बस विंडो को हम मैथ में कन्वर्ट करेंगे। अरे तो क्या होगा ना, कितनी लंबी चेन है। ठीक है। अब इसे ऐसे देखो, जब तुम फ्राइडे में चलाते हो तो तुम विंडो में कवर पर आगे बढ़ते हो, मैथ में हम नहीं किया है। हमने भाई चलो पहले दो भी विंडो ट्राई करते हैं। और मैथ करो एन स्पेसिफिक प्लस k1/2 आ गया। k−1/2। मुझे बताती है कि मैंने फर्स्ट होते स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। एकदम क्वेश्चन ये मतलब कि हमारे पास पेज कर सकती है क्या फॉर्मूला को दो नंबर में तोड़ सकते हैं। मैं सोची कि हमारे साथ ये मेरा सीक्वेंस साथ आता है। अच्छी चीज का पंद्रह को तीन में तोड़ सकते हैं, एक बच्चा मिल गया 4 5 6। हमने आया 200 के पास। ठीक है, चीजें नहीं इसका मतलब ट्राई करके कि तीन नंबर से कभी कम नहीं होगा। अब 15 नहीं बनेगा। अरे दिमाग का सही हो गया। मैं ये किए कि तो भाई, मतलब ये एन समय निकला है और यहाँ स्टार्टिंग में एक ही एलिमेंट समय एलिमेंट समय एलिमेंट अप टू समय एलिमेंट। अब ये के क्या बता रहा है, ये कितने टर्म्स लिए गए हैं। के टर्म्स लिए गए होंगे टोटल। के टर्म्स लिए होंगे यहाँ पे। तो मेरे को ये पता चल जाए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से है, इसमें कितना के जोड़ों कि इन पहुंच जाए, काम खत्म हो जाए, रूट 10 में काम हो जाएगा। रूट 10 में काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो बेसिकली मेरे को ए निकालना है। ठीक है अब ये इस विंडो साइज लेंथ है। Start from phase switching because the source some consecutive memory require at least two number up to phase switching from our formula n is equals to numerator n minus k। ओ भाई, ये क्या है। I got a is equals to n minus k into k-1/2
to get a, what the hell, ये 2 से डिवाइड हुआ, ये तो उड़ गया, n बाई k आ गया, और ये भी 2 से डिवाइड हुआ तो 1 माइनस k आ गया, k कॉमन निकल। तो यार इसको कैसे किया होगा इसको, n बाई k माइनस और k माइनस 1 बाई 2, उसके बाद k से मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो n माइनस k इंटू k माइनस 1 बाई 2, k इंटू k माइनस 1 बाई 2, और ये न्यूमरेट ये आ गया होगा a के बराबर, ये पता चल गया। और ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की डिग्री में then a is a valid integer, क्योंकि ये सब इसी के मल्टीपल्स हैं। और ये जो भी a आया है, न्यूमरेटर में जो भी मतलब चेक करने का डिवीजन पूरा हो रहा है। तो जैसे कि अगर तुम लिखते हो 15 मॉडुलस 3, 15 को 3 से डिवाइड करो, ये मेरा k था और ये मेरा न्यूमरेटर, इंटर 0 हो जाए 15 माइनस 3 0 का रिजल्ट ट्रू होगा, तो 15 को 3 से डिवाइड, ऐसे लिखते हैं 16 मॉडुलस 16, 3 से डिवाइड, तो एक बचेगा 16 मॉडुलस 3 0 आएगा का रिजल्ट फॉल्स होगा। वैसे कोड में जो करना है ये आएगा, यहाँ ए एक इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 2 3 1.5 टू 2.5 नहीं होते। तो न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर मॉडुलस के का, इसका मतलब है कि जब हम न्यूमरेटर को k से डिवाइड करते हैं तो हमें परफेक्ट इंटीजर मिलेगा। k क्या है, तो कितने टर्म्स लिए, अगर रिमाइंडर 0 नहीं तो इसका मतलब है कि रिजल्ट पॉइंट डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में स्टार्टिंग नंबर नहीं हो सकता, और तो उस विंडो के लिए की वैलिड सीक्वेंस नहीं बन सकती। न्यूमरेटर मॉडुलस k इज इक्वल टू एक फिल्टर की तरह काम करता है। अगर मैं फिल्टर हो गया इस क्वेश्चन में, एक ही बार में के बताऊंगे, क्या क्वेश्चन है भाई ये, अजीब सा क्वेश्चन है काफी। हाँ। हम्म, 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 अरे स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने इतने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए, इतने कॉन्जिक्यूटिव लिए हैं, तो उससे अगर मैं डिवाइड कर भी दूंगा तो वो नंबर इसी में रेंज में रहेंगे। क्या करेगा, ये क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है।
मैं फिर से पढ़ता हूँ। न्यूमरेटर मॉड्यूलस के का मतलब है चेक करना कि क्या डिवीजन पूरा पूरा हो रहा है या नहीं। प्रोग्रामिंग मॉड्यूलर का ऑपरेटर कहते हैं डिवीजन के बाद डेसिमल रिमाइंडर बताता है। सिंपल एग्जांपल जैसे अगर तुम लिखते हो 15 मॉड्यूलस 3, ये मिला, ये आ गया 15। 15 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ट्रू है क्योंकि 15 पूरी तरह 3 से डिवाइड होता है। अगर तुम लिखते हो 16 मॉड्यूलस 3, तो 16 को 3 से डिवाइड करो, 3 इंटू 5 15, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हमने इस कोड में क्यों लिखा? हमारा फॉर्मूला है ये, यहाँ a एक इंटीजर होना चाहिए क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स 1 2 3 4 होते हैं, 1.5 2.25 नहीं हो सकते। तो न्यूमरेटर n माइनस के, अगर न्यूमरेटर जो भी आ रहा है अगर मैंने उसको k से डिवाइड किया, इसका मतलब है जब हम न्यूमरेटर को k से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं तो इसका मतलब है कि रिजल्ट पूरा डेसिमल में आएगा और डेसिमल में स्टार्टिंग। तो साफ सीधे बोले, मुझे ये समझ नहीं मैं कि ये से क्यों क्यों किया, ये इन के क्या कनेक्शन है, कनेक्ट सिंपल बोनस तराजू की तरह सोचो। ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमने क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो बिल्कुल नए तरीके से देखो, बेसिक हमारे पास एक टारगेट नंबर n है। हमने डिसाइड किया कि हम k नंबर्स की एक चेन बनानी है। जैसे कि हमने k फिक्स किया, वो सीक्वेंस ऐसा दिखेगा, ठीक है। कनेक्शन ए और के, इस कनेक्शन को देखकर हम के बताता है कि चेन में कितने लोग हैं, ये बताता है कि चेन कहाँ से शुरू हो रही है। जब के बढ़ता है तो चेन लंबी होती है, चेन जितनी लंबी होगी ए की वैल्यू उतनी कम होनी चाहिए, होनी पड़ेगी। टोटल सम एन के बराबर है। इसका रियल फॉर्मूला क्या है कि एन जो है वो के कुछ टर्म्स है, उसको ए से मल्टीप्लाई करो और प्लस एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ दो। हाँ, एक्स्ट्रा पार्ट वो है ये 1 + 2 + 3 प्लस के को जोड़ने से आता है, ठीक है। अब क्यों हम के से डिवाइड कर रहे हैं? हमें ए की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन को रीअरेंज करने के लिए। तो n इक्वल्स टू के इंटू ए, मतलब बेसिकली आता है कि मुझे से, अरे कितना कंफ्यूजिंग है। ये मेरे को बता रहा है कि आज मुझे कितने नंबर जोड़ने हैं। ये स्टार्टिंग है, इसमें +1 जोड़ो, +2 जोड़ो, +3 जोड़ो, अप टू कुछ टर्म्स जोड़ते जाओ। ये मेरे को बता रहे हैं कि इतने टर्म्स जोड़े। अब ये इतने टर्म्स जुड़े हैं तो 5 टर्म्स जोड़ दिए हैं। मान लो कि जैसे ये है 10, इसमें ए मेरा ये है, तो मेरे को क्या पता चला कि ये ए जो है ये 1 से चालू है और कहीं के तक किसी पॉइंट तक जाएगा, कि किसी पॉइंट तक जाएगा और करेगा क्या ये,
तो चलेगा। यार ऐसे क्वेश्चन ऐसे डिवाइड करना ये और के में क्या है, क्या कर रहा है ये दादा ये? क्या is the thing पता कुछ कहाँ से कनेक्शन बन गया? पागल, पागल कहीं का दिमाग खराब कर रहा है। चलो भाई, इसके बाद भी चला जाता हूँ। पता नहीं क्या रिमाइंडर इधर उधर कर रहे हैं पागल कहीं के, दिमाग खराब कर दिया इसने। एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मेरे को एक एन दिया हुआ है, ठीक है, एन, एन की वैल्यू है मान लो 10। तो मुझे नंबर फाइंड करने हैं, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो कि जिनका सम करने के बाद 10 बन जाए। ठीक है, तो ये बताना है कि ऐसे कितने कॉन्जिक्यूटिव बन सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे हम्म, मतलब जैसे मान लो कि मेरे को दिया हुआ है 10, ठीक है, तो अगर मुझे 10 बनाना है तो मैं एक सीक्वेंस ले सकता हूँ 1 2 3 4। तो इनका सम करूंगा तो 10 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा अब कोई भी ले लूं, जैसे कि 7 8 ले लूं, या 3 4 ले लूं, या 3 4 5 ले लूं। इसमें कुछ भी सीक्वेंस ले लूं, ये कभी भी 10 10 नहीं बनाएंगे। ठीक, थ्री नहीं, ऐसे नहीं ले सकते, कॉन्जिक्यूटिव लेना है, कॉन्जिक्यूटिव। तो अब मेरे को यह बताना है कि ऐसे कितने सीक्वेंस हैं जो इतना सम दे देंगे। कितने सीक्वेंस है, जैसे कि देखो, एक सेकंड। हाँ हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? एक सेकंड, कल तो कुछ बता था इसने। हाँ हाँ, जैसे कि ये दिया हुआ है, जैसे मान लो n इक्वल्स टू 15 दिया, ठीक है। तो हेलो, हाँ, तो जैसे n इक्वल्स टू 15 दिया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसको जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा। और फिर 4 5 6 को जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा। और 7 और 8 को जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा। तो ये तीन वैलिड सीक्वेंस हो गए, तो इसका आंसर 3 है। तो ऐसे ही करके मुझे बताना है कि टोटल कितने वैलिड सीक्वेंस है। तो एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, 2 लूप लगा के,
जिसमें हम बार बार स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और एन तक जा रहे हैं। तो पहली बार में स्टार्टिंग पॉइंट वन लिया और वन से चालू किया, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे सम करते जा रहे हैं, और जहां पे भी सम ग्रेटर देन मेरा एन की वैल्यू से हो गया बड़ा, तो लूप कर दूंगा ब्रेक। और अगर एन के बराबर ही हो गया, ठीक है, तो एन के बराबर हो गया तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। तो ऐसे करके ये हो गया ब्रूट फोर्स। अब इसका ऑप्टिमल अप्रोच है कि उसमें पता नहीं क्या तो कह रहा है कि हमें क्या करना है, कि हमें क्या समझ में आया है कि एक नंबर ले रहा हूँ और उसमें प्लस वन करके दूसरा नंबर ले रहा हूँ, फिर ऐसे करके तीसरा नंबर ले रहा हूँ, ऐसे कर करके कुछ के नंबर्स को लूंगा मैं, ठीक है। के नंबर्स को लूंगा, तो मेरे को क्या करना है कि ये सब नंबर्स का जब मैं सम कर दूंगा तो ये एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो देखो, वो देखो, तो मेरे को क्या बोल रहा है कि ठीक है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, मतलब पिछले वाले जो भी ब्रूट फोर्स अप्रोच थी, वन प्लस टू प्लस ऐसे कर करके कुछ किया था, ठीक है, और ये मेरा 15 के बराबर आ गया। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा था कि अब ये एक बार वन से चालू किया था, एक बार टू से चालू किया था, एक बार थ्री से चालू किया था, ऐसे किया था। तो अब बोल रहा है कि मतलब मैं चालू कहाँ से कर रहा हूँ, कोई ए से चालू कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ए से चालू कर रहा हूँ तो एक ए वाला नंबर ले रहा हूँ, फिर मैं ले रहा हूँ ए प्लस वन, फिर ऐसे करके ए प्लस टू ले रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव लेने हैं मेरे को, ठीक है। ऐसे करते करते मैं, ठीक है, ऐसे करते करते मैं कोई ए प्लस के टर्म ले रहा हूँ, ठीक है, के या के माइनस वन टर्म, जीरो से स्टार्ट कर रहे थे के माइनस वन, और इसका जब सम कर दे रहा हूँ तो ये एन के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को करना क्या है कि अगर मैं, मुझे अब पता करना है एक ही बारी में ए, कि अगर मुझे एक ही बारी में पता चल जाए तो ए क्या है, ठीक है, तो काम हो जाएगा कि ये ए है। अब वो मैं निकालूंगा कैसे, तो मेरा जो, हम्म, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कैसे आएंगी, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस नहीं निकालनी मुझे, नंबर, मुझे ये निकालना है कि मैं क्या ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट ले लूं, ठीक है, कि वहां से मैं कुछ के टर्म्स को उसमें ऐड कर दूं, ठीक है, जिससे मेरा ये सम आ जाए एन के बराबर। ये करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी क्या क्या कर रहे हैं, एक तो ये ए वेरी कर रहा है, ठीक है, और ये के वेरी कर रहा है, क्योंकि क्योंकि अगर मैं वन, जैसे इसमें 15 वाले में देखूं, तो एक बारी में मैं पांच ले रहा हूँ, पांच एलिमेंट्स, फिर मैं ये 15 निकालने के लिए तीन ही एलिमेंट्स ले रहा हूँ सिर्फ। तो बेसिकली ये बता रहा है कि मैंने कितने एलिमेंट्स लिए, ठीक है। तो मेरे को चलो ये पता चल गया। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है कि ठीक है, ये मेरी एक सीक्वेंस है, ठीक है, जिसमें ए प्लस वन, ए प्लस टू, अप टू के माइनस वन टर्म तक दिया हुआ है, ए प्लस के माइनस वन। तो इसका सम जो है वो एन के बराबर, ठीक है, इसका सम एन के बराबर है। तो पहली बात, इस सीरीज का सम क्या होगा, तो वो होता है एन बाई टू और फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। तो एन कितने मेरे पास, मतलब टोटल मेरे पास कितने टर्म है, के, ठीक है। तो के टर्म है तो के बाई टू, और फर्स्ट टर्म हो गया ए, और फिर लास्ट टर्म हो गया ए प्लस के माइनस वन, के माइनस वन, अरे यार ठीक है, ये एन, अब ये हो गया। अब मेरे को इसमें क्या करना है, ए निकालना है, ठीक है। तो मैं जब इसको एवेल्युएट करूंगा, तो एवेल्युएट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा, एक सेकेंड, क्या बन रहा था ये, ऐसे चलो ऐसे ही निकाल ही लेता हूँ, ये टू को उधर फेंक दूंगा उठा के, और ये टू ए हो जाएगा, तो ठीक है, ये बनेगा के, और ये हो जाएगा मेरा टू ए प्लस के माइनस वन, और के माइनस वन के बाद ये हो जाएगा टू ए, ये टू एन हो जाएगा,
और ठीक है, फिर मैं इस के को भी उठा के, या फिर तो मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, और ओवरऑल इवेलुएट करने के बाद मेरी एक ही वैल्यू जो आएगी, वो एक ही वैल्यू क्या आ रही है, मैं ऐसे ही लिख ही देता हूँ। रुको, हाँ, तो ये एक ही वैल्यू आ रही है, ये 2n/k, 2n/k माइनस k प्लस 1/2। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ठीक है, अब मेरे को बस एक ही वैल्यू निकालनी है। तो मुझे इसमें n दिया हुआ है, n तो दिया हुआ है। अब मुझे ये पता करना है, इसमें दूसरा जो वेरिएबल टर्म है वो है k, कि k क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इसने बोला कि जो k है वो बता रहा है कि हम कितने एलिमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि मैं जो मिनिमम एलिमेंट लूंगा, क्योंकि मुझे सम निकालना है, तो कम से कम मैं दो एलिमेंट तो लूंगा ही लूंगा। तो दो होगा, मतलब के दो से चालू होगा। और बोल रहा है कि ये जो के है वो जाएगा अंडर रूट n तक। अब बात ये है कि ये अंडर रूट n तक क्यों जाएगा। ठीक है, तो यार ये तो मैं साला अभी नहीं समझ पाया, तो समझा के चलो। ठीक है। तो ठीक है, फिर अंडर रूट n तक जाएगा। अब मेरे को प्रॉब्लम ये हुई कि ठीक है, n अंडर रूट n तक कैसे जा रहा है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ठीक है, मैं सम निकालने जाता हूँ। ठीक है, मुझे क्या पता है कि ये के एलिमेंट्स है। ठीक है, ये टोटल के एलिमेंट्स हैं। तो मुझे क्या समझ में आया कि ठीक है, अगर के एलिमेंट्स हैं ये सारे मिला जुला के, तो के एलिमेंट्स का सम क्या होगा। ठीक है, तो के एलिमेंट्स का सम होगा के इंटू वेट k+1 एंड बाई 2। ठीक है, और मुझे क्या पता है कि ये जो सम है ये बड़ा नहीं होना चाहिए n से। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स जो है उनका सम n से छोटा चाहिए। ठीक है, मतलब n से छोटा या बराबर चाहिए। तो ये जो नंबर्स, ये k क्या है कि कितने नंबर्स लिए मैंने, और उन सारे नंबर्स का मिला के मैंने सम निकाला। तो ये जो नंबर्स हैं इनका ओवरऑल सम n से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो के स्क्वायर है, ठीक है, ये k² बाई 2 जो लिखा हुआ है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो सकता है n के बराबर, है ना। या फिर तो छोटा या बराबर, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, बराबर हो सकता है। तो अगर वर्स्ट केस में बराबर होगा तो इसका मतलब कि इसको 2 को उधर शिफ्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अंडर रूट 2n होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ठीक है, हमें करना क्या है कि हम लूप चलाएंगे, और लूप चलाने के बाद ये करेंगे कि हमें बस ए ही तो फाइंड करना था। ठीक है, तो अगर मेरे को ए फाइंड करना है, तो ए फाइंड करने के लिए मैं लूप चलाऊंगा 2 से। ठीक है, और चलाऊंगा अंडर रूट n तक। ठीक है, और उससे जितनी भी के की वैल्यू आ रही है वो सारी के की वैल्यू डाल के सारे ए पता कर लूंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और काम खत्म। और वो स्टार्टिंग पॉइंट जो निकल गया, उसमें के और जो आगे एलिमेंट्स है वो जोड़ते चले जाओ, काम खत्म हो गया। अबे ये समझा कैसे दिया मैंने। अबे यार, अबे इतने देर से मैं दिमाग माथा भज्जी कर रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने समझा दिया, आई डोंट नो कैसे। तुम्हें समझ में आया क्या किया है मैंने। मैथ करी है बस। क्या। रूट। अच्छा, नहीं आया समझ में। ओके, क्या नहीं आया ये बता दो। क्या, कहाँ से। ओके ओके। हम्म। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। सो मेरे को दिया गया है क्वेश्चन में कि एक n = 15 नंबर दिया है। ठीक है, और मेरे को बोला गया कि
भाई ये 15 जो भी है, मुझे बताओ कि कोई भी नंबर उनको जोड़कर क्या ये 15 मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। अब वो जो नंबर मैं जोड़ूंगा वो एक ही सीक्वेंस में होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं तीन ले लूं और फिर सीधे 12 ले लूं। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकता। ठीक। ये जो नंबर है ना, ये नंबर मुझे ऐसा एक सीक्वेंस निकालना है या एक सीक्वेंस बताना है। तो मुझे सीक्वेंस, एक्चुअली में सीक्वेंस नहीं बताना, मुझे बस ये बताना है कि भाई ऐसे कितने सीक्वेंस बन पाएंगे। क्या? अरे देखो, उस वाले में स्टार्टिंग पॉइंट अगर ए निकाल लिया, ठीक है, ए स्टार्टिंग पॉइंट निकाल लिया, और उसमें +1 +1 +1 +1 करके अगर के टाइम्स प्लस कर दूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या पता है, मान लो कि मुझे क्या पता है कि मैंने 1 से चालू किया, ठीक है, और मैंने के एलिमेंट्स लिए, ठीक है, तो के एलिमेंट्स लिए तो यहाँ पे कुछ के एलिमेंट्स आए होंगे जिनका सम कुल मिला के हो गया होगा 15। ठीक है, तो अब वो के एलिमेंट्स मिला के 15 हो गया होगा, तो मैं क्या करूंगा कि ठीक है, मुझे पहला नंबर तो पता चल ही गया, ठीक है, अब बस में इसमें अगर के जोड़ देता हूँ, के का मतलब कि 1 में 1, और अब मुझे के टाइम्स जो सीरीज रिपीट हो रही है 1 + 1 एक बार जोड़ूंगा, फिर इसमें क्या कहते हैं 2 + 1 ऐसे करके एक बार जोड़ूंगा, ऐसे कर करके सीरीज जनरेट कर लूंगा। ठीक है, तो ये बस मेरे को के एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी इस ए में। ठीक है, के एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने, अरे यार ये कहाँ हट गया। हम्म, 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 आज आज हाँ, 15 का आंसर, उस 15 का आंसर तो 3 है, 3 सीक्वेंस बन रही हैं वैसी। मतलब सीक्वेंस जेनरेट, एक सेकेंड, इसमें शायद सीक्वेंस इसने जनरेट नहीं करी है, और उस क्वेश्चन में सीक्वेंस जनरेट होगी, इसका आउटपुट, अरे यार ये तो कुछ और है कि भाई, हाँ, क्या? हाँ, ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है कि क्या ये बन पाएगी कि नहीं, ये एक सीरीज का है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है कि तीन, उसमें पता नहीं कितनी सीरीज है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ रहा है। और अबे यार ये क्या बदतमीजी हो रही है यार, कटे जा रहा है बार बार। तो मेरे को ये लॉजिक तो इतना समझ में आया है, उसने पहले स्टार्टिंग में बोला कि ठीक है, पहली बात तो एक काम करो, सीरीज निकालो, कि कितनी सीरीज है वो निकालो। तो मैंने सारी एक एक करके सीरीज निकाली। ठीक है, पहले 1 से स्टार्ट करके देखा कि 1 से स्टार्ट करने पे 15 बना, तो ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट 1, एक सीरीज। फिर ऐसे करते करते मैं जब मैं किस पे गया था, और आगे किसी नंबर पे चला गया था ना, एक सेकेंड, अरे यार ये कहाँ गया है यार, ऊपर ऊपर ऊपर, अरे ये कहाँ फंसे गए, चल ऊपर, अरे गायब ही हो गया, अरे ये क्या हो रहा है, परेटो, परेटो प्रिंसिपल, पता नहीं कौन सा प्रिंसिपल है। हम्म, अरे कहाँ भाग गया भाई, अरे कहाँ गया, बिल्कुल ही उड़ ही गया क्या बिल्कुल, पता नहीं कहाँ ओए, ओए गायब ही हो गया बिल्कुल, कहाँ चला गया, अभी तो समझा रहा था 5 वाला। अबे यार क्या, पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तो यही था, कहाँ गया भाई। अच्छा हाँ, ये रहा, ठीक है, जैसे कि 1 से मान लो मैंने सीरीज चालू करी, और मैं सम करते गया 5 तक किया, तो मुझे 15 मिल गया, तो एक तो मिल गया।
फिर मैं उसके आगे गया, फिर मैंने दो से सीरीज चालू करी, तो दो से सीरीज चालू करने के बाद उसमें तीन जोड़ूंगा, चार पांच जोड़ते ही 20 पहुंच गया। ठीक है। तो यानी कि 15 कभी बीच में आ ही नहीं पाया, 14 के बाद सीधे 20। तो ये तो नहीं बन पाएगा। फिर मैंने तीन से चालू किया, तीन से भी वही हुआ, फिर मैंने चार से चालू किया। चार से चालू करने के बाद देखा कि हाँ भाई, उसमें पांच और छह जोड़ता हूँ तो 15 आ जाएगा। तो ये एक दूसरी सीरीज बनी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें बार बार स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। ठीक है। तो मेरे को एक चीज और क्या ऑब्जर्व हुई कि ठीक है, मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ हर बार, और फिर उस स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जोड़ता हूँ। ठीक है। सपोज दैट, जैसे कि हम लोग मैथ्स में मानते हैं एक्स, वैसे ही हम यहाँ मान रहे हैं के, कि हमने कुछ के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। ठीक है। तो वो के एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद हमारा सम वहां तक पहुंच गया है। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं उसकी एक सीरीज बनाने जाऊं, तो सीरीज बनाने में क्या पता चला कि ठीक है, मेरा एक स्टार्टिंग नंबर होगा ए। ठीक है। फिर उस ए में एक +1 करूंगा, फिर +2 करूंगा, फिर +3 करूंगा, ऐसे करते जाऊंगा। ठीक है। अप टू के नंबर्स जोड़ दूंगा। ठीक है। तो अब मेरे को पता चल गया कि ठीक है, ये मेरी सीरीज बनेगी। तो अगर ये सीरीज बनेगी, तो इसमें ये के क्या बता रहा है? तो ये के ये बता रहा है कि मैं कितने एलिमेंट्स ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब कितने एलिमेंट्स ले रहा हूँ, तो पहले मतलब यहाँ पे क्या है कि बार बार एलिमेंट्स चेंज होते रहेंगे, कभी एक लूंगा, कभी दो लूंगा, कभी तीन लूंगा। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन उधर से कन्वर्ट होके ये हो गया है कि मुझे कितनी विंडो साइज लूंगा। ठीक है। कि ये सम 15 आ जाए। ठीक है। और अगर मैं मान लो कि यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ नंबर्स लेता हूँ और सम निकालता हूँ उनका। ठीक है। और मुझे सम कितना रखना है, 15 के बराबर। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो गया कि मैं कुछ नंबर लेता हूँ और उसका सम 15 के बराबर आ जाता है। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ठीक है, मेरे को तीन साइज की एक एरे बनानी है अगर, या फिर मुझे तीन एलिमेंट्स लेने हैं। तो मेरे को क्या पता चल गया कि ठीक है, की वैल्यू तीन हो गई। ठीक है। तो मेरे से ये बोला गया कि ठीक है, तीन एलिमेंट्स लेना, और तीन एलिमेंट्स लेके सम 15 आ रहा है। ठीक है। तो अब ये बताओ कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। हाँ, तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकती है। हाँ। तो ऐसे ही करके मैं निकाल रहा हूं कि हर विंडो में, ठीक है, अब विंडो कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स जो मेरी विंडो जा सकती है, वो कभी भी n/2 से तो बड़ी होगी नहीं। ठीक है। तो अब मेरे को ये सोचना है कि ये तो हो गया मेरा जब मैं ब्रूट फोर्स लेकर रहा था। अब यहाँ पे आया कि ठीक है, के मेरे को बता रहा है कि मेरी विंडो साइज कितनी है। ठीक है। तो अब के अगर मेरे को विंडो साइज बता रहा है, तो के क्या हो सकता है। तो के की अब मैं रेंज ढूंढने गया। ठीक है। कि के कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, क्योंकि के मेरी विंडो साइज है। मतलब तुम्हें ये समझ में आया ना कि के मेरे को क्या बता रहा है। हम्म। 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 तो बस इतना। अब बात ये है कि बेसिकली मेरे को क्या देखा कि ठीक है, ये जो सीरीज बन रही है, ठीक है, ये सीरीज एन के बराबर है। ठीक है। इसका सम जो निकलेगा वो एन के बराबर है। तो अगर ये एन के बराबर है, तो मुझे हर बार क्या निकालना है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। और मेरे को ये पता करना है कि क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है। तो ठीक है, अगर मेरे को ये पता करना है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं इसको इवेल्युएट करूंगा। तो पहले मैं इस सीरीज का सम निकालूंगा। तो इस सीरीज का जब मैंने सम निकाला, तो ये सम आ गया। ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट, और कॉमन डिफरेंस इसका 1 था। ठीक है। तो ये निकालने के बाद ऐसे सॉल्व सॉल्व किया, तो ए की वैल्यू आ गई। तो ए क्या है कि ए मेरे को ये बता रहा है कि ये मेरा फर्स्ट टर्म है। अगर तुम कोई एन की वैल्यू यहाँ पे रख देते हो और के की वैल्यू रख देते हो। ठीक है। तो हर बार मैं स्टार्टिंग पॉइंट निकालने जाऊंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कैसे आएगा।
अब यहाँ पे ए निकालना है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक एन आ रहा है और एक के आ रहा है। तो एन तो मेरे को पता है कि ठीक है, मुझे इतना सम निकालना है, तो एन तो फिक्स है कि एन 15 है या 10 है या जो भी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे के बार बार वेरी करेगा, कि कभी विंडो साइज एक होगी, कभी दो, कभी तीन, ऐसे ऐसे करके होगी। तो अब मेरे को इसकी रेंज डिसाइड करनी है कि विंडो साइज क्या मैं कितनी भी बड़ी कर दूं, कि उसकी कोई स्पेसिफिक रेंज होगी, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आया कि मिनिमम कितनी विंडो साइज हो सकती है। तो मेरे को क्या बोला गया है कि मेरे को कि मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम करना है। तो अगर मुझे सम करना है तो कम से कम मुझे दो एलिमेंट्स तो चाहिए ही होंगे, है ना। तो मेरी मिनिमम विंडो की साइज कितनी हो गई, दो। ठीक है, तो मैं के इक्वल टू टू से चालू करूंगा। हाँ, के बार बार चेंज होगा। हाँ, ए भी चेंज होता रहेगा। ठीक है। हाँ। हाँ। अको हाँ, उसका काउंट रखेंगे। ए अलग अलग आ रहा है, और एक एक ए के बारे में मुझे चेक करना पड़ेगा। ए क्या चेक करना पड़ेगा मुझे, कि ए मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और मुझे पता है कि इतने सारे इसके अंदर के एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जिसको जोड़ के ये स्टार्टिंग पॉइंट आया है। ठीक है। तो अगर मैं ये जो मेरे के एलिमेंट्स हैं, अगर उससे डिवाइड कर देता हूँ ए को, ठीक है, और वो जो वैल्यू आती है, अगर वो डेसिमल वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये गलत स्टार्टिंग, ये ऐसा कोई स्टार्टिंग पॉइंट बन ही नहीं सकता। ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि जब मैं मॉडुलस कर दूं के से ए का, ठीक है, तो वो भाई जीरो आना चाहिए। ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ पे के वेरी कर रहा था, तो के की स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे पता चल गई, दो। अब एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, कि कहाँ तक जाऊं। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या देखा कि ठीक है, ये बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, कि ये जो एन है, ठीक है, ये मेरे के जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उन्हीं का सम है ना। तो अगर मेरे को के एलिमेंट्स दे दिए जाएं, जैसे कि एन एलिमेंट्स दिए जाते हैं, और बोला जाता है कि एन एलिमेंट्स का सम निकालो, तो क्या करते हैं, एन एन प्लस वन बाई टू। वैसे ही अगर मेरे को के एलिमेंट्स दे दिए जाएं और उनका सम पूछा जाए, तो वो क्या होगा, के प्लस वन बाई टू। तो यानी कि के प्लस वन बाई टू, बेसिकली मैं के एलिमेंट्स का सम कर रहा हूँ। और मेरे को एक चीज क्या पता है, कि ये सम कभी भी एन से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एन से बड़ा हो गया, तो बेसिकली ये विंडो फिर कंसिडर नहीं की जाएगी, है ना। तो मेरे को यहाँ से एक चीज समझ में और आई, कि ठीक है, जो मेरा के है, एक सेकेंड, वो मेरा लेस देन इक्वल्स टू एन होना चाहिए, के प्लस वन जो इसका सम आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कि के स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा के स्क्वायर प्लस के बाई टू। ठीक है, इसको ओपन करूंगा तो, और फिर ये के स्क्वायर बाई टू प्लस के बाई टू, ये लेस देन एन होना चाहिए। तो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर अगर हम देखते हैं इसका, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे को क्या पता चल रहा है, कि ये के स्क्वायर बाई जो टू है, यानी ये बड़ा वाला टर्म, यही ज्यादा इम्पेक्ट करता है। तो यानी कि के स्क्वायर बाई टू जो है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एन होना चाहिए, है ना, मैक्स टू मैक्स वर्स्ट केस में। तो मैं इस के स्क्वायर, तो फिर मैं इसको एवेल्युएट करूंगा, तो टू इधर चला जाएगा एन के साइड, है ना। और यानी कि के की जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो कितनी हो सकती है, अंडर रूट टू एन तक। तो यहाँ से आया कि ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नमस्ते आंटी। क्या हुआ? अरे, ओए, वो मम्मी को उठा देगा, मम्मी को उठा देगा। अरे आंटी आई है। हाँ, तो मेरे को यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई, कि ठीक है, मेरी जो के की रेंज होगी, वो मेरी टू से लेकर अंडर रूट एन तक होगी। ठीक है, और वो बार बार चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से मेरे ए जेनरेट होते रहेंगे। और ये जो भी ए आएगा, मुझे बस ये ध्यान रखना है, कि ये जो भी ए आ रहा है, ये इंटीजर ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर डेसिमल वगैरह होगा तो नहीं, तो इंटीजर आया तो बस मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। तो ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है बेसिकली। थोड़ा दिमाग उड़ गया, मैथ्स टॉपिक का था।
और मुझे बस ये डाउट हो रहा था कि मेरे को आया है कि नहीं, और मैं अगर समझा दे रहा हूँ तो यानी मुझे आई है। हम्म। खैर, अब कोई डाउट? फोर सब्जेक्ट कैसे करूँ ब्रो? फोर सब्जेक्ट तो यार मैंने खुद नहीं किया अभी। मतलब कैसे करने का क्या हुआ यार, वो तो रटने जैसा है कि रटने जैसा है, या फिर तो कहीं कोई लेक्चर वगैरह देख के कंप्लीट कर लो जल्दी में। भाई आवाज कम है। अरे यार, ईयरफोन है भाई, क्या करूँ इसका मैं। कोर सब्जेक्ट करने का तो यही तरीका है कि यूट्यूब पे जाओ और किसी का 15-20 घंटे का वन शॉट होगा, उसका उठा के पढ़ डालो, बस हो गया, उतना काफी है। क्योंकि मोस्टली कहाँ पूछते हैं वो, ओए में पूछेंगे, ओए वगैरह में। तो चलो भाई, उड़ गया ये तो, खतरनाक सा था कुछ। कितने घंटे खा गया ये मेरे, अरे साला 2.5 घंटे खा गया मेरा ये। बवासीर बिल्कुल ही। फेस इक्वल्स टू न्यूमरेटर n इंटू n मॉडुलस k किया और 0 के बराबर आ गया, तो a की वैल्यू न्यूमरेटर बाई k होगी। मॉडुलस 0 आ रहा है, हाँ न्यूमरेटर, अरे साला न्यूमरेटर पे n की वैल्यू k इंटू n-1 k बाई 2, so by k and a is value of integer, find k in windows length. हम्म, समझ में तो आया, आया आया आया। हम्म, easy pattern solid और medium pattern, strong trailing zeros prime factor all divisor, easy math, साला पागल, मीडियम में इजी दे दिया, इजी में मीडियम दे दिया। ब्रेक ब्रेक लेना हो तो ले सकते हो भाई साहब, सॉलिड रेक्टेंगल, ये तो नहीं करूंगा। अरे यार, ये अपने आप कहाँ से कटे जा रहा है, पागल कहीं का। फिर कट गया। आज से करूंगा पूरे 10 घंटे की स्ट्रीम। चालू ही रहेगा, चालू ही रहेगा। है, ब्रेक का टाइम पे भी चालू रहता है, चालू ही है। हाँ, मतलब काट दो तो फिर वो उतनी देर की वीडियो बन जाती है, और फिर वापस स्टार्ट करो तो फिर वापस से चालू होता है उसका रीच बढ़ना। इतना कौन है, एक ही बार में चालू करके छोड़ दिया है, और वो सीधे रात के 11 बजे बंद करूंगा। अरे बाबा। ठीक है, ठीक है। हैं? भाई साहब, उड़ गया भाई मनोज। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन था, साला, मतलब दिमाग का मेरे, अबे दही हो गया दिमाग का बिल्कुल, साला क्या ही क्वेश्चन था भाई।
हम्म। मतलब काफी काफी मैथ को रड़ दी साले पागल ने। मतलब मैथ तो चलो यार उतनी हार्ड नहीं थी। मेरे को प्रॉब्लम, दिक्कत, दिक्कत जो मेरी मेन दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि भाई मुझे, मैं मान ले कोई चीज समझ गया हूँ एकदम डेप्थ में, बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन मेरे को वो पता जब भी चलती है जब मैं दूसरे को समझा पाऊँ। वरना मेरे को हमेशा यही लगता रहता है कि मेरे को ये चीज आई नहीं है। जैसे अभी मैंने ये चीज नहीं समझाई थी, अभी भाई अभी तक मेरा यही लेके दिमाग खराब था कि मेरे को ये चीज समझ में आई नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अभी मैं समझाने गया, बीच में वो अटक गई, समझा दिया कि ऐसे होगा ऐसे होगा। तो वो वाला सीन है। तो ये वाली दिक्कत है मेरे साथ कि भाई जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई सामने वाले को समझ में नहीं आया, तब तक ऐसा रहता है कि भाई मैं नहीं जानता हूँ उस चीज को भी। दिक्कत, दिक्कत परेशानी। ब्रेक टाइम, इट्स अ ब्रेक टाइम गाइस। मैं स्ट्रीम बंद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर बंद करूंगा फिर चालू करूंगा, तो इससे बढ़िया है इसको चालू ही रहने देता हूँ। ठीक है गाइस, इफ यू, अगर कोई साथ में पढ़ रहा हो तो भाई ब्रेक आप लोग ले सकते हैं। एंड देन फिर 7:30 बजे से कंटिन्यू करेंगे। और तब तक मैं ये देखता हूँ कि इसका फर्जीवाड़े का कोड क्या है। कि भाई के इक्वल्स टू 2 से चालू किया, यहाँ तक गया, फिर मैंने क्या किया, एक न्यूमरेटर निकाल लिया। न्यूमरेटर मतलब ए की वैल्यू। ओ, ए निकालना है ना। तुम तेरे हो जाओ अब नहीं, तू है जहाँ रब है वहीं, तू तू है मैंने मेरे, मतलब नहीं। फिर पूछूं, बह जाए दिल तेरी जानिब, आना जाने लग है मेरे मुसाफिर है तेरे इश्क में। बह जाए दिल तेरी जानिब, आना जाने लग है मेरे मुसाफिर है तेरे इश्क में। टू एन, टू एन, टू एन बाई के। तुम्हें अन्ना हो, लगता है जैसे कि मैं तू ही तो, रात में मुस्कुराता सा, नींदों से ख्वाबों से मिलता हूँ तो, रात में ये अदा है नहीं, ये अदा आ गई, कभी ना किया था खुद पे इतना गौर, सब में थोड़ा और। हम्म, ना 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 ना, दिल धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी गड़बड़ कर देगा, सोचा न था ऐसी मुश्किल तो है, सोचा न था ये तेरे, तेरे तोड़े तो तेरे। From our formula, n is equals to
ये कहाँ से कोड आ गया ये? हाँ मैम कह रही थी मंडे को जाना है। मैं और चित्रांशी चले जाएंगे, रहने दी। हम्म। अरे, अरे उनको सिनॉप्सिस दिखानी है, उसलिए। हम्म। 27 28। ये तो अजीब बात है, क्योंकि मैम, अबे मैम ने बुलाया है, इसने भेजा। इसने भेजा मैम को कि मैम देख लो आप। तो मैम कह रही है कि नहीं बेटा, कॉलेज में आके दिखाओ। अबे, तो कॉलेज में मैं क्या ही दिखा दूंगा भाई, वही चीज तो रहेगी ये मोबाइल पे जो रहेगा, कि मैं कुछ अलग पैदा कर दूंगा उसमें। अब मैं पैसे बर्बाद करके जाऊं कॉलेज, और तब वो मेरी सिनॉप्सिस देगी, क्या पता नहीं क्या हिसाब किताब। हम्म। जाऊंगा, ऐसे घूम घाम के आ जाऊंगा, और क्या। जाऊंगा, घूम घाम के आ जाऊंगा। बहुत दिन हो गए वैसे भी। हम्म। आज के डेवलपमेंट में काफी कुछ मिला था नया नया। एक तो वो पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जिट क्या होता है, जिट। फिर ये पढ़ा कि नोड जेएस कैसे काम करता है। एक इंजेक्शन होता है, उसमें टर्बो फैन होता है। ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट ना इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना कंपाइल्ड, हाइब्रिड है। ठीक है, ये पढ़ा। फिर उसके बाद ये पढ़ा कि सबसे पहले एक, क्या पढ़ा था, रुक जा अभी बताता हूँ। है। अरे नोट्स मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगा था वो लिखा था बस मैंने। हम्म। हाँ। तो सबसे पहले, हाँ, अ, चल मैं रिवाइज करवाता हूँ, और मेरा खुद का भी रिवाइज हो जाएगा। एक सेकंड। ओपन क्या कर रहा था मैं, डीएसए। हम्म। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे हमने पढ़ा कि भाई नोड जेएस क्या है। ठीक है। तो नोड जेएस ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ठीक है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे चल सकती है। अब जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा भिगमंगा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो इधर उधर से लेते रहता है, कुछ ब्राउजर से ले रहा है, नहीं तो कुछ नोड जेएस से ले रहा है। और नोड जेएस क्या है, नोड जेएस इन्वायरमेंट। ठीक है, एक इन्वायरमेंट है जो कि इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट को बूस्ट अप कर देता है कुछ दे के। अब बात ये है कि उसके बाद हमने पढ़ा कि जावा स्क्रिप्ट खुद क्या है। तो जावा स्क्रिप्ट ना ही कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ना ही इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एक हाइब्रिड लैंग्वेज है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कैसे काम करेगी, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो बेसिकली वो काम करता है जिट पे, जस्ट इन टाइम। ठीक है, कि जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन चलता है उसका। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारी एक चीज आती है जिसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। तो जावा स्क्रिप्ट पे एक इंटरप्रेटर होता है, इंजेक्शन। ठीक है, ये नोड जेएस का इंटरप्रेटर है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का कुछ नहीं है। इंजेक्शन करके एक इंटरप्रेटर है, तो वो क्या करता है कि भाई जो भी कोड दिया गया है, ठीक है, सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनती है। तो मैंने जैसे कुछ भी कोड दिया, कोड तो समझ में आ नहीं रहा नोड जेएस को क्या लिखा है, तो वो क्या करेगा, इसको सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री में कन्वर्ट कर देगा। उसमें कन्वर्ट करने के बाद फिर इसकी कंपाइलेशन, सबसे पहले इसका इंटरप्रिटेशन होगा। इंटरप्रिटेशन जब होगा तो वो इंजेक्शन करता है। ठीक है, और वो इंजेक्शन करने के बाद उसको क्या करता है कि एक बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मिनिमल ऑप्टिमाइज्ड होती है, एक लेवल तक ऑप्टिमाइज्ड है वो।
ठीक है, और ये बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयर्ड होता है, किधर भी भेज दो सब जगह चलेगा। ठीक है। फिर आता है टर्बोफैन। टर्बोफैन क्या करता है कि इसको कन्वर्ट करता है, बेसिकली वो एक कंपाइलर है जो कि अब इस ये जो बाइट कोड बनी है इसको कम वो करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है। तो ऑप्टिमाइज करता है और ये ऑप्टिमाइज करता कैसे है, तो बेसिकली ये देखता है कि ये जो तुम कोड यूज कर रहे हो बहुत देर से, ठीक है, क्या उस कोड का वो टाइप रखता है। ठीक है, डेटा नहीं रखता, टाइप रख लेता है कि ये जो कोड में ऑब्जेक्ट बनाए या फंक्शन बनाए इनके टाइप क्या क्या है। फिर वो क्या करता है कि जब भी ऑप्टिमाइज करने जाता है, तो ऑप्टिमाइज वो जब भी चेक करता है जब वो ये देखता है कि ये टाइप चेंज हो गया है। तो वो वापस जाता है बाइट कोड के पास, वहां देखता है कि क्या टाइप चेंज हुआ है, अगर नहीं हुआ तो ऑप्टिमाइज नहीं करेगा। ठीक है, एक बार ऑप्टिमाइज करके छोड़ देगा, जैसे ही वो देखेगा कि बाइट कोड में कुछ चेंजेस आ गए तो वापस वो ऑप्टिमाइजेशन करता है टर्बो पे। तो वो बेसिकली अपने आप करते रहता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और उसके बाद एक और चीज पढ़ी थी कि जावास्क्रिप्ट के पास कोई खुद का गार्बेज कलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो उसके पास खुद का गार्बेज कलेक्शन नहीं है, तो वो जो गार्बेज कलेक्शन का यूज करता है उसका नाम है ओरिनोको। ठीक है, तो ओरिनोको को ये गार्बेज कलेक्शन नहीं है, बेसिकली वो एक एल्गोरिदम है। ठीक है, उस एल्गोरिदम में होता ये है कि अ, ये क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक डेटा लेगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, और एक को चाइल्ड बोलता है, एक को न्यू बोलता है, एक को ओल्ड बोलता है। ठीक है, तो न्यू वाला के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि ये हटेगा। ठीक है, तो वो तीन चार बार चेकिंग करता है न्यू वाले की कि हट गया हट गया हट गया हट गया, हटा कि नहीं हटा। ठीक है, तो अगर हट गया तो इसको निकाल देगा। और ओल्ड वाले को जल्दी चेक नहीं करता वो ये मान के चलता है कि ये ओल्ड वाला जो है ये बहुत टाइम से यूज हो रहा है। तो तो ये अज्यूम कर लेता है कि ये आगे भी यूज होने वाला है। ओल्ड वाले की चेकिंग नहीं करता, न्यू वाले की चेकिंग करता है, उस बेसिस पे डेटा क्लियर कर देता है। ऐसा ऐसा ही कुछ पढ़ा था, बस इतना ही पढ़ा था। तो इतना याद है, सब पढ़ा था। ओ भगवान, ये क्या बक रहा है, हाँ ये कंप्यूटर बोल रहा है भाई के कुछ तब तक चलते रहे जब तक कि के नंबर मिनिमम सम तेरा टारगेट एन से छोटा है। ठीक है, ये वही स्टेप है जहाँ ए निकालने के लिए जाना जगह बना रहे हैं, हम एन में से वो कांस्टेंट हिस्सा हटा रहे हैं जो सीक्वेंस के एक्स्ट्रा नंबर से बनता है। क्या कर रहे हैं, ये न्यूमरेटर में निकाल रहा हूँ। मुझे पता है कि जो है ये इस नंबर का सम आया, और ये टोटल सम में से गायब कर दो। अरे बाप रे, ये टोटल सम आया, 15 दिया है। 15 आने के बाद मैंने क्या किया, मेरे को के टर्म्स मैंने कंसिडर किए, 5 टर्म्स, 5 टर्म ले लिए। ठीक है, अलग अलग विंडो साइज की पहले 5 टर्म्स ली, या तीन, तीन ले लिए। तीन क्या आया, 3/4/2, दो 6 आ गए। तो 15 में से 6 उड़ा दिया, 9 आ गया। अब ये 9 आ गया, ये हो गया न्यूमरेटर। ये वही स्टेप है जहां हम ए इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए जगह बना रहे। तो अगर ये न्यूमरेटर जो भी आया 9, के से अगर ये डिवाइडेड हो रहा, तो ये कंप्यूटर का फिल्टर है, चेक कर कि जो बचा हुआ हिस्सा है न्यूमरेटर है, क्या वो के से बिना किसी रिमाइंडर के डिवाइड हो रहा है। 9 आया, और के ली थी मैंने, हाँ, 3 साइज की विंडो। हम्म, हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसका मतलब ए एक वैलिड इंटीजर है। भाई ये क्या बस कर दे रहा है ये कोड, इतना गंदा सा कोड है। 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। अबे खुद क्रीम ले लिया, हमको वो दे दिया है। ये कर रहे हो?
अबे हेलो। मैं थोड़ा टहल के आता हूँ, बहुत देर से बैठा हुआ हूँ। एक वॉचिंग आ रहा है और वॉचिंग नहीं आता है क्या? अरे दो वॉचिंग आ रहा है। मेरे तीनों को लाइक हुआ है और एक वो सब्सक्राइबर बढ़ा। अरे ये बंद भी नहीं होता है, चालू ही रहता है, पता नहीं कैसे तो। हम्म। अरे यार,
जैसे तुम्हारे पास 15 चॉकलेट है और तुम्हें 3 लोगों में इसे बांटनी, कि हर किसी को एक एक चॉकलेट ज्यादा मिले। तो पहले मैं हर किसी को कम से कम एक चॉकलेट दे देता हूँ, क्योंकि सीक्वेंस ए इक्वल्स टू 1 + 2 इसका ए मिली, दूसरे को A+1, तीसरे को A+2। तो मैं टोटल 15 चॉकलेट बन बांटी, लेकिन हर किसी को एक चॉकलेट तो मिलनी ही चाहिए थी। तुमने 3 बार ए तो दिया है। 3 बार बांटी तो 3 बार ए तो दिया है, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा चॉकलेट भी तो है। दूसरे बंदे को +1 मिली, तीसरे बंदे को 2 एक्स्ट्रा मिली। टोटल एक्स्ट्रा कितनी हो गई? 3। अब इक्वेशन देखो, 15 चॉकलेट जो है वो 3 × ए है, किस तीनों को एक एक ए दी होगी, और प्लस ये 3 एक्स्ट्रा दिए। हाँ ठीक है। यहाँ न्यूमरेटर क्या है? अगर हमें ए पता करना है कि सबको बेसिक कितनी मिली, तो हमें एक एक्स्ट्रा वाली चॉकलेट हटानी पड़ेगी। सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है। ठीक है, फाइन। तो मेरे को बेसिकली हाँ वही हटानी पड़ेगी, तो मैंने 15 में से वो 3 हटा दी, कि हटा दो, कि अगर हमें ए तो तो अब ये 12 बचा है। यहाँ तुम्हारी न्यूमरेटर है। अब इस 12 को तुमने 3 लोगों में बराबर बांट दिया, तो वो क्या आया? 12/4। तो हर किसी को बेस 4 मिला। पहले को 4, दूसरे को 5, तीसरे को 6। डन। न्यूमरेटर का मतलब, न्यूमरेटर वो चॉकलेट है जो बेस एक ही चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बचती है। नाउ अंडरस्टैंड, नाउ अंडरस्टैंड। भाई क्या सॉलिड समझाया, ऐसे समझाता था पहले, कोड उड़ गया मेरे दिमाग से साला। तो बेसिकली पहले तो मैं न्यूमरेटर निकाल लूं कि ए कितना दूंगा। ए दे रहा हूँ, 3 बच्चों को चॉकलेट देनी है 15। 15 चॉकलेट 3 बच्चों में बांटनी है, तो कम से कम, ठीक है, 3 बच्चों में 15 अगर चॉकलेट दूंगा भी। हाँ, अब मेरे को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि कैसे कैसे दूंगा। तो अगर 15 चॉकलेट देनी है 3 बच्चों को, तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे क्या पता है कि सबको ए चॉकलेट देनी है, इतनी कुछ कुछ तो देना होगा। ठीक है, कुछ कुछ देना होगा और सबको एक से ज्यादा देना होगा। तो मुझे क्या पता चला कि ठीक है, इसको ये दे देता हूँ, दूसरे वाले को ये दे देता हूँ, तीसरे वाले को ये देता हूँ, ऐसा तीनों का एक दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। तो एक को A+1, एक को A+2। तो टोटल चॉकलेट मैंने कितनी दी है? टोटल चॉकलेट दी है मैंने 3A, और प्लस ये टोटल जो बच रहा है। तो मेरा जो 15 है वो क्या आया होगा? ये 3A प्लस ये 3। तो मेरे को अब ये ए ही तो निकालना है। तो ए निकालने के लिए मैं पहले क्या करूँ? ए निकालने के लिए पहले तो ये हटा दूं एक्स्ट्रा चॉकलेट। अगर मैं एक्स्ट्रा चॉकलेट हटा देता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा चॉकलेट हटाते ही अब मेरे को पता चल गया कि ये 12 चॉकलेट जैसे बच गई, 3 हटा दी, 12 बच गई। अब 12 चॉकलेट्स को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो कैसे करूंगा? तो 12 को डिवाइड कर दूंगा, जितने बच्चे हैं। तो ये बच्चे कैसे पता चलने हैं कितने बच्चे हैं? के से। तो यानी कि पहले ये देख लूंगा। अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने काटा, वैल्यू उड़ा दी, और वैल्यू उड़ाने के बाद जो न्यूमरेटर आया उसका मॉडुलस क्या, मान लो कि ऐसा होता कि मैं कोई 4 साइज की विंडो ले लेता, 4 साइज की विंडो लेता, तो उसमें कितने आएंगे? A+1, A+2, A+3। तो इधर 6 आ गए, 6 उड़ा दिए मैंने। अब 6 उड़ा दिए, 15 में से 6 उड़ गए, 9 बच गए। ठीक है, और मेरे पास 9 बच गए। 9 का 4 से मॉडुलस किया, और मॉडुलस 1 आ गया। तो ये तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता। 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ही नहीं इक्वली। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे यानी डेसिमल वैल्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डेसिमल वैल्यूज अगर आ गई, यानी खेल खत्म, कर ही नहीं सकता। तो मुझे बेसिकली 0 चाहिए, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे। तो इसीलिए अब मेरे को ए निकालना है। तो बस ये मेरा बचा हुआ, इतने चॉकलेट्स बच गई हैं एक्स्ट्रा हटाने के बाद। एक्स्ट्रा हटा के इतनी चॉकलेट बची, डिवाइडेड बाई के।
काम खत्म। कि भाई इतने बच्चे थे, इतनी चॉकलेट बची है, सबको बराबर देनी है, तो इतनी। अंडरस्टैंड भाई साहब। क्या है? दिमाग का दही हो गया भाई साहब। दिमाग का दही हो चुका है बिल्कुल। टा 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 टाड़ा। तो ये मेरे को कोड समझ में आ गया कि केस केस टू टू से कहीं तक जा रहा हूँ, और कहीं तक जाने के बाद मुझे ए निकालना है बार बार। ए निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? पहले तो मैं पता कर लूँ कि मेरे पास टोटल चॉकलेट जितनी है, जितना सम है, उसमें से जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको गायब कर देते हैं। एक्स्ट्रा चॉकलेट गायब कर दी, के +1/2 से गायब हो गई सारी चॉकलेट्स एक्स्ट्रा जितनी भी। न्यूमरेटर में वो माइनस कर दिया, न्यूमरेटर आ गया। अब ये न्यूमरेटर आ गया, अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए के से। एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल कैसे होगा? अगर मैं मॉडुलस के से करता हूँ, जीरो आ जाता है? नहीं आता। अगर आ जाता है जीरो, तो ये काम करके बाकी आगे सारी सारी चॉकलेट निकाल लूँ। ये ए है, ये A+1, ये A+2, A+3। तो बेसिकली 0 से लेकर के तक आइटरेट कर दूंगा, यानी k-1 तक निकालना है, तो k-1 तक आइटरेट करके ए में आई को जोड़ते चला जाऊंगा, काम खत्म। याओ। आ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 से √n तक ही तो जा रहा है। √n। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा। तेरा नजारा मिला, रोशन सितारे को, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। इन टकरा चुकी हूँ हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल में लगा है। किसी से किससे सुने हैं, यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो, जैसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। अब है, इश्क है यार, क्या है? Print 1 to n easy recursion. Okay, let's try. Na 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 na. Yeah. Na na na. Mhm. Hmm. So, uh, without a loop. So what I know is in a recursion, two thing I want. Two thing. One is that when I have to stop the loop, so I have to stop it when I reach n is equals to 5. And second thing, when I will start. So I know that I have to start it. So suppose I call the print here and pass here. Well, I have to print 1. Yeah, I will start from 1 and go till n. Now what I do here is, okay, cout is not cout. There is void print function.
and inside that it will take two values, that int start current value and int where we have to end. So what I know is when start is greater than end, I will stop. So return. So otherwise what I will do, I will take whatever the start value is, cout start, and that's it. I will print. And then after printing it, again I will call that function with whatever they start plus 1 comma end. I can do something like that maybe. Let's see if this work or not. So I got the compilation error. That what's the C of what the hell, C plus plus. I have to copy this, but I have to remove this. Okay, I can remove this also. Okay, I think so this will work. Yeah, this will. Okay, so I understand that what I have to do in this question. Now let's do another. Now I have to print it from n to 1. So there, okay. Now I have to think about two things. One is what is the base case here? That I have to start it from. I know that I have to start it from whatever the n is given, and I have to stop when n become equals to 0. So what I was thinking is, okay, so I will print values and I will pass, okay, n I will pass. And I will check, okay, when I have to stop. So when n is equals to 0, return, 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 or I can write it like this also, that when n is less than equals to 0. Otherwise, what I will do, I will print whatever value is given here, okay, and then I will call again the print function as there is one variable with n minus 1, because first I want to print 10, then print 9, then 8. So maybe I have to do this. Okay, so what I will pass this. I think so this will work. Yeah, this will. Okay, let's jump up to another question. And I have to calculate the factorial. Okay, what I was thinking is, okay, I want to calculate the factorial. I know that, okay, I have to pass, okay, what is the base case? So what is that element that I already know about? Like I know about, okay, if someone asks me for factorial of 0, so I know that the factorial of 0 is 1. So that's the base case. So that's the base case. Okay, so will I have to return something? Yeah, I have to return it. So int fact. Okay, and it will take whatever n is. And the base case is, okay, I will know that, okay, if n is equals to 0, what I will do, I will return a 1, because I know that the factorial of 0 is 1. Now after that, otherwise what I will do, that I know that if I want to find the factorial of 5, so it means that factorial of 5 means what? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. It means that 5 into factorial 4. Okay, so if there is n, what is this? So basically, if this is n, then this will be n minus 1. It means that if I want to find the factorial of n, it means then find the fact, then take the take element n and multiply it with factorial n minus 1. So I will return the fact, and I will pass whatever the n is.
Okay, now I have to calculate the GCD. Okay, let's think in terms of recursion here, right? You have to think it in terms of recursion. Uh, Also, you can add n is equals to 1 and return 1. Yeah, yeah, that's the another base case. We can also add. Yeah, we can do that. So, a GCD of two number. Okay. So if it is given that okay, there is a what the hell? यार ढंग से काम कर जा. ठीक है. So there is some question ना. Okay. So GCD 2028. Okay. Mm, so there is 20 and there is 28. So let's apply the basic division algorithm. So what I've seen here is okay, there is 20. Okay, I will write it, and now there is 28. Now I will divide it with 20 and see what's the remainder is. Okay, 8 is their remainder, and I will write the 20 here. Now I will divide it with 8 to the 16. So I will take 16 here and right here and then this one. So basically what I will do is, okay, so when I divide 4, so with 8 I will get 0 here and 4 here. So basically the GCD of 20 and 28 is 4. So what I will do is, okay, I see A is here and B is here. And in each operation, what I will do, I will find the modulus. After that, what I will do, I will copy this here. Okay, and I see this. Okay, I will copy this here. Okay, so this is what I actually doing. So what is this? So this is basically, if I consider, if I take the B modulus A, because this is the remainder that is left after dividing this multiple of A. So this is basically B modulus A. Okay, so I know that, okay, so this A will, okay, I will see, okay, A is equals to B modulus A, B modulus A. Okay, so what is B here? Okay, I will see that, okay, B is this. Now, in the next steps, this A is in copied here. So basically, B will be equals to A. I will see that, okay, B is equals to A. Fine. Now, what is the base case here? So when we have to stop this operation. So I will see that, okay, when A will become equals to 0, what I will do is I will return. So I know that, okay, when A is become 0, what I see is that GCD is basically this. So what is this? This will be B. So I will return B. So, okay, so let's try this. For GCD, you can use Euclid. Yeah, yeah, I will. I will, buddy. Yeah, I know that in base case we have to write n is equals to 1. But we also know that the factorial of 0 is 1. So I will write that. You can write it like for n is equals to 1, the base case will be 1. So for n is equals to 1, return 1. So what I will do is, okay, I will call this function again and again. And what I have to do, okay, if I see that if A will become 0, what I will do is I will return B. Okay, I will return B. Otherwise, what I will do that return. So basically, I have to return something. So I have to return integer. Otherwise, what I will do, I will return that, okay, find the GCD, and inside it, what I will do,
In place of A, what I will write? I will write B modulus A, and in place of B, what I will write? I will write A. So let's see if this will work or not. Yeah, this will work. Hmm. Now, okay, there is power. Okay, so the base is given and the exponent is given. Fine. Uh, there are many ways to find the power. We can use the binary exponential also. We can, so no, will I apply binary exponential or will I apply, let me think about it. Okay, I have a power function. What I want. Okay, so let's open the question, whatever the question is. Uh, okay, the base is there and something called exponent is there. So what is the base? Okay, so base is the wait, I forgot the question also now. Okay, so exponent is 5 basically. So what I have to do is I want to find that power 3 raised to power 5, which is 243. So basically, if I take 3, okay, and if exponent is 1 here, so I have to return this, right? So I have to return this. So if exponent is 1, I have to return whatever the number is. So base case, maybe the base case is, what I was thinking is, okay, so the base case will be, so when exponent is equals to 1, I will return whatever the number is. Okay, so this is the number that I will get that number to be, suppose 3. Now, I will see, okay, exponent 5. Now, what I have to do actually is, okay, it means that I have to multiply 3 into 3 into 3 again into 3 and into 3. So will I write like this, that I can write that, okay, 3 into 3 raised to power 4, 3 raised to power 4. Or I can write that 3 into 3 into 3 raised to power 3. So basically, if I want that, okay, if I want the 3 raised to power 5, I can write it like this, like 3 into 3 raised to power 4. So 3 raised to power 4, right? And if it is given that, okay, 3 raised to power n, I have to find the power of value of this. What I will do is, okay, I will take this 3 and multiply it with the 3 into n minus 1. And when n is equals to 1, what I will know, I have to return 3. So that what I was thinking. Okay, so what I was thinking, okay, when I got the exponent to be equals to 1, what I will do, I will return exponent to be 1. What I will do, I will return whatever the b is. Now there is one more possibility that if I get the exponent to be equals to 0, so I will return 1. Return 1. Okay, now these are the two base cases that maybe happen, and otherwise what I will do is I will consider whatever the double value is, which is b, and I can multiply it with whatever the power
power, and now what I want to give whatever my b is, and otherwise now I have to decrease the exponent by 1, so e minus 1. Oh, Sonia, Sonia re. Sun, chori, chori, e is equals to 0, I will return. Or will I have to use something else? Or will I have to return 1.0? A minus 4.7702, your output segmentation fault. What? What? So, so what's the constraint? So E will be 10 raised to power 9. I will not, I know that there is, okay, for negative power there is some value, right? For negative powers also. Mm. Hmm. I have to think about it. I think something else. And okay, I know that that is the basic. So okay, using an attribution. So idea is to simply multiply b exactly e times using attributes. I know this. Just really another approach is that I can use the idea is to recursively multiply b exactly e times to 2 to so define the recursive function that returns if b is greater than 0. If e is greater than 0, else return 1. So I have to write, so if e is equals to 0, I have to use it. Okay, so for the negative values, what I want is whatever the value I will get, I will divide it. I will take this in denominator. So basically, whatever the implementation I have performed here, that if I get the negative values, like what I know is, okay, when I get e is equals to 0, I have to do this. Now, one base case I also have to write is, okay, if e is less than 0, means if I get the negative values, then suppose, let's understand this. Okay, so there is 3 raised to power minus 5. What does it mean? It means that 3 raised to power minus 1 multiplied by 3 raised to power minus 4. So it means that 1 raised to power 3 into 1 raised to power 3 raised to power 4. So it means that whenever the negative value comes, what so whenever the negative value comes, now what I will do, I will perform this operation that okay,
power of whatever the current element be minus e minus 1. So for negative value, I have to do this. Na, 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 na. So basically, return raw 70 e minus 1 mean is minus e minus 1 नहीं करना माइनस e करना नेगेटिव होते ही क्या किया गया है यहाँ पे क्या किया है okay so if I get negative so if it is given that okay this pi this e value is negative so what I will do that rather than performing this what I will do I will perform it like this so whenever I get negative value what I will do I will give this okay do it let's do something like this 3 over 5 and how I will get this 5 because there is minus so I will multiply it with minus I think so that what the hell is which are wide simple this is an assistant for lot of segregation yeah, I know that if e is less than 0 now b will become the base will become 1 by b and e will become minus e.
Your to put your exponent. E is even. Hmm. कितनी बार मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव एलिमेंट भाई कर दिया आंसर वन करते जा रहे हैं डेसिमल बेस इंसान बुला रही है सो नेगेटिव एक्सपोनेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स में माइनस एन वन बाई एन हुआ था एग्जाम्पल टू को सोच भी ये निकाला वन बाई एट टू टू पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना दो थ्री तो थ्री बनाया एट निकाल लिया और उसको डिवाइड कर दिया क्या बन रहा था ओ यही तो काम है तो डबल पूल नेगेटिव फोर डबल आंसर वन आ गया पूल नेगेटिव फॉल्स आ गया अरे तो एक्सपोनेंट लेस देन है तो नेगेटिव हो गया ट्रू और एक्सपोनेंट को कर दो माइनस एक्सपोनेंट ठीक है और इंट आंसर जीरो एक्सपोनेंट का आंसर अगर नेगेटिव टू था तो 1.0 से डिवाइड कर okay so what I will do is ओ सोनिया साम सोच के कैसे चोरी चोरी मैं पास आएगा ओ संग so what I have to do here is I will check okay if
फिर से वो प्रोजेक्ट बनाऊंगा। वीडियो ऑन और ये तो चलो मेरे को
हेलो हेलो। हम्म, अरे भगवान। कितने बज गए भाई? अरे यार। पावर पावर निकालने आता पावर है। और कौन है? हैं? नहीं नहीं, तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ। पावर आती है निकालने, पावर। हम्म। हाँ, पावर निकालना है, मतलब ए रेस टू पावर बी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ ठीक है, ए और बी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन करना है। ठीक है। ए और बी दिया हुआ है और ए जो है वो बेसिकली एक कोई भी नंबर होगा। ठीक है। वो नंबर -100 से लेकर 100.0 से लेकर 100.0 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो उसकी एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है, यानी बी, बी जो है वो -10⁹ से लेकर 10⁹ तक कुछ भी हो सकता है। हाँ, बी पावर 10⁹ से 10⁹ ये कुछ भी हो सकता है। और ये जो आंसर आएगा, ठीक है, ए रेस टू पावर बी, ये बेसिकली -10⁴ से लेकर 10⁴ के बीच में आएगा। खैर ये आंसर से कोई लेना देना नहीं है, वो ए और बी दिया हुआ है, ए और बी ऐसे है और मुझे डबल रिटर्न करना है, डबल वैल्यू। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल है कि अब मुझे दिया गया है बी की वैल्यू 3.000 और और हाँ नहीं नहीं, मतलब ए की वैल्यू मेरे को दी गई है 3.000 और बी की वैल्यू दी गई है 5। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 243.000। वैसे ही ए की वैल्यू 3.000 कुछ दी हुई है। ठीक है। और बी की वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है। तो मेरा आंसर आएगा 243.000। ठीक है। वैसे ही ए की वैल्यू दी है -0.6700। ठीक है। और बी की वैल्यू दी हुई है -7। तो इसका आंसर आएगा -16.49971। इसका बस बेसिक वाला पहला अप्रोच देखना है कि क्या हो सकता है। दूसरा तो बाइनरी एक्सपोनेंशियल है, वो थोड़ा सा अड़क से, अड़क से नहीं पढ़ा तो है, भूल गए। Sequence of outcomes is sequence of two और two, sequence of two is sequence of two। और बार एक्सपोनेंट हाफ हो रहा है, ये ऑक्टोएड सबसे बड़ा हो, ये लिख सकता हूँ फिर इसके बाद 8 पावर इक्वल्स टू 3 to the power 8, फिर 9 to the power 4, 81 is to the power 2। अगर एक्सपोनेंट ओड है 3 to 3 is to power 8 ताकि कुछ, बस हमें सिर्फ ये करना है, बेस फलाना धमाका, कुछ कुछ, बहुत कुछ, इतना कुछ। और अब मुझे समझना पड़ेगा अभी। तो पहले मैथ ही ठीक कर लूँ, यही ढीला है ज़्यादा।
अबे कुछ नाश्ता पानी मिलेगा? नाश्ता पानी नहीं मिलेगा। तू बेटे क्रीम का बिस्कुट पूरा खा गया है। वो नमकीन बिस्किट डाला हमको दे गया, खुद क्रीम बिस्किट खा गया। तुमको काम क्या हो गया अभी? अभी ये काम पड़ गया तुमको। अरे यार फिर वही मेहनत। अरे ठीक है। 1 साल बाद कर तो आना। अरे यार मत बनाओ, छोड़ो। अब मत बनाओ, वो मेरा मूड खराब हो गया। आह, क्या बोले जा रही हो? ब्रूट फोर्स 3 पावर 8 दिया है, तो मैं क्या करूँ? 3 पावर 4 इंटू स्क्वायर। सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है। फिर मैं 3 पावर 4 कैसे निकालूंगा? 3 का स्क्वायर सही बात है। और फिर ये कैसे निकालूंगा? ये 3 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा? 3 की पावर 1 का स्क्वायर। सही बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 पावर 8 की जगह 3 पावर 4 का स्क्वायर कर देता हूँ। और या फिर तो मैं, हाँ, यही कर देते हैं। जो ऑब्जर्व, हर बार एक्सपोनेंट हाफ हो रहा है, हाँ हो तो रहा। लेकिन इसके पावर 8 था पहले, तो बेसिकली इसमें 3 पावर 8 था। इसका, ये इसको मैंने कर दिया 3 का स्क्वायर रेस्ट पावर। फिर ये आ गया, तो ये क्या बना? 9 रेस्ट पावर। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे वाह। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर दिया उल्टा सीधा? ये 2, 3 रेस्ट पावर 8। तो बेसिकली अब ये 9 रेस्ट पावर 4 हो गया। 3 का स्क्वायर यहाँ पर 4 आ गया। अरे यार ये तो गलत सलत कर दिया। 3 का स्क्वायर रेस्ट पावर 4 आ गया, तो 9 रेस्ट पावर 4 आ गया। और ये 9 रेस्ट पावर 4 आया, तो वो सब तो ठीक है। लेकिन इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर। तो ये 81 का स्क्वायर हो गया। और फिर ये 81 के अंदर वाला बाहर, तो बाहर जो पावर चढ़ी पड़ी है ये आधी हो जा रही है। पहले 3 रेस्ट पावर 8 था, फिर मैंने क्या किया, एक दो अंदर बुला दिया, तो 3 स्क्वायर 4 हो गई। फिर दो और अंदर बुला लिए, तो 3 का 2 और अंदर बुला लिए मैंने। ठीक है, तो 9 और 81 हो गया। तो 3 रेस्ट पावर 4, फिर दो और अंदर बुला दिए, तो 3 रेस्ट पावर 8 को बन। 8 4 2 1 सीधे आधा 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 हो गया है, तो आधा 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 होते चला गया, काम खत्म हो गया। अब आता है ऑड वाला। 3 रेस्ट पावर 13। 3 रेस्ट पावर 13 में क्या देखा? ये देखा 13 था ये तो। इसको पावर में क्या बना हुआ? कुछ बनेगा ही नहीं। तो इसको बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, 3 तो रख लो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, अब बन गया 12। तो 3 का स्क्वायर यहाँ रखो, 6 यहाँ डाल दो।
अब बाकी वही काम कर दो। तो थ्री, ये क्या हो गया, थ्री इसका स्क्वायर नाइन, नाइन रेस्ट टू पावर सिक्स, इसमें ये मैंने इसमें अगर टू बुला लिया अंदर। हम्म, थ्री आ गया, थ्री जैसी ऑड आया तो एक काम करो कि यहाँ लिख दो थ्री इंटू 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर, ये स्क्वायर डाला और यहाँ पे मैंने टू कर दिया, यहाँ वन रख दिया। तो 81 इंटू, अब यहाँ से मैं अगर सोचूं, क्या सोचूं, एक पैटर्न क्या पकड़ में ऐसा कि जब भी मेरा n मॉडुलस टू जीरो के बराबर है यानी इवन, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ कि वो जो करंट नंबर उसके उसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ। और जैसे ही ऑड आ रहा है, n मॉडुलस टू ऑड आया, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरा करंट नंबर है, उस करंट नंबर में जो भी मेरा बेस है उससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। करंट नंबर में मल्टीप्लाई हो जा रहा है बेस से, और उस करंट नंबर की तो खुद की पावर तो है। तेरह का मतलब बेस तीन, एक्सप्रेशन ऑड आंसर सिस्टम आंसर इनटू बेस। तो जैसे ही ऑड आया तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक्सपोनेंट नॉन बूलियन नेगेटिव, अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव है नेगेटिव को ट्रू करके एक्सप्रेशन पॉजिटिव कर दो, डबल निकाल लो। अब मैंने देखा, अगर मेरा एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट यानी ऊपर वाला, अगर वो ऑड है, ऑड होने के बाद मैं कुछ तो इसके साथ तीन पाँच कर रहा हूँ, लेकिन क्या, तीन पाँच में ये कर रहा हूँ ऑड होने के बाद कि एक मेरा बेस ले लो और बेस के साथ क्या, अब तो मेढक से भी डरने लग गई। और मेढक भगाया गया थोड़ा बाहर है। अबे यार है, हाँ डबल हाँ बोलते हैं। इवन होगा तो एक काम करो कि जो भी अभी तक का आंसर है कैसे आ रहा है, ऑड आ गया अगर, यार ये तीन रेस टू पावर तेरह दिया है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तीन रेस टू पावर कुछ और लिख सकता हूँ नहीं, तीन रेस टू पावर थ्री इंटू बारह। अब नाउ इस बारह को क्या लिख सकता हूँ, थ्री रेस टू पावर टू पावर सिक्स। कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है भाई, ये लिख दिया। अब ये बन गया मेरा, एक वैल्यू बन गई। क्या वैल्यू बन गई, 81, नहीं नाइन, नाइन रेज़ टू पावर सिक्स आ गया, सिक्स आया, सिक्स क्या, सिक्स एक इवन नंबर है। तो एक काम करो कि बेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो नाइन थ्री या 27। तो ये नहीं यार, 81 कर दिया सीधे, सीधे 81 ही कर दिया इसका तो। बेस इंटू बेस कर दिया बस।
अबे यार ये तो और गंदा समझा रहा है। भाई मस्ते पावर फंक्शन को समझना बहुत आसान है। आइए इसे दो हिस्सों में समझते हैं। ब्रूट फोर्स। भाग यहाँ से। इतनी हिंदी मत बक कि समझ में ही ना आए। जेमिनाई। उसी की बोरियत नहीं। अच्छी बात है। आप अच्छी बात है। हाँ भाई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इंट्यूशन। मेन आइडिया ये है कि हम पावर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं बजाय इसके कि हम एक एक करके मल्टीप्लाई करें। हमें पावर को आधा करते होते हैं। मैथ का सिंपल रूल है कि अगर पावर इवन है तो हम बेस का स्क्वायर कर सकते हैं और पावर को हाफ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पावर को ऐसे लिख सकते हैं। अगर पावर ऑड है तो हम बेस को अलग निकाल लेते हैं आंसर में मल्टीप्लाई करने के लिए और पावर को इवन बना देते हैं। अच्छा। अच्छा। ठीक है। तो 3 is to power 5 नहीं हो सकता है। हाँ डबल आएगा। डबल और इंटीग्रल। डबल। एक सेकेंड। डबल मल्टीप्लाई इन सी टू गिव व्हाट। डबल आता है डबल। आता तो डबल ही है और नहीं आ रहा तो फिर भी नहीं आ रहा। लगाना। ये 1.0 लिखना जरा आंसर। अब चला
अब डबल लेगी भी इंट आ रहा है। कुछ और लेना है, 3.0 की जगह 3.5 लेना। इंटीजर को ऐसे प्रिंट कर दे रहा होगा, 0 0 नहीं कर रहा है। इंटीजर को ऐसे प्रिंट कर दे रहा है, 0 0 नहीं कर रहा है। अच्छा, ये चल रहा है सारे टेस्ट केसेस पे। हम्म। अबे यार, क्या दिक्कत है? टू मच प्रॉब्लम। और अगर इवन है, अगर पावर इवन होती है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑफिस और इनवाइट टू। पावर अगर ओड होती है तो बस एक और पे इसको बाहर निकाल दे। एक तो बस इवन बना देते हैं, इवन बना देते हैं, नेगेटिव पावर दे दो। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इवन सेवन, तो हमें पता है कि तो बेस को इन्वर्ट कर दो और एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना दो। अच्छा बेटे, अच्छा बेटे, अच्छा। हाँ, तो b इक्वल्स टू 3.0, e इक्वल्स टू 5, e आया 5। ये मेरे को क्या देखा, ये भिगमंगा जो भी है, ये है ऑड। तो बेस को करो मल्टीप्लाई, और थ्री मल्टीप्लाई करके 3.0 जो भी वैल्यू है उसकी एक पावर बढ़ा देना, 4। अब जब इवन हो जाता है तो कुछ मत करो भाई, तो इसको लिखो 3 का स्क्वायर 3 into 9 का स्क्वायर। इवन है, एक काम करो, इसको लिखो 3 into 9 का स्क्वायर 81। 81 into 3 243। खेल खत्म हो गया इसमें। अगर इसमें यही खेल खत्म हो गया यार, यहाँ ध्यान रखने वाली एक ट्रिकी बात होती है, इंट की रेंज -12 होती है। अगर ई ये हुए है और तुम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस ई से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए हम एक्सपोनेंट को पहले 9 में स्टोर करते हैं। अच्छा बेटे, ठीक है। फिर कुछ फर्जीवाड़ा करते हैं। तो मेरे को क्या दिखा कि जैसे ही ऑड आता है, जैसे ही ऑड आता है, ऑड आते ही मैं कुछ 3 5 करता हूँ, क्या लिखे, तीन सब तो ये करता हूँ कि जो भी मेरा बेस है उसी से आंसर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और फिर मैं जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर को घटा देता हूँ, और नहीं तो मैं जो भी बेस है उसी को मल्टीप्लाई करते रहता हूँ और पावर को आधा कर देता हूँ, वैसे 4 का दो। तो इंट्यूशन ये है कि अगर ऑड आया, इवन आया, तो बेस मल्टीप्लाई बेस होता है और पावर आधी, और इवन और ऑड आता है तो बेस मल्टीप्लाई आंसर होता है
पावर एक कम, ये बाइनरी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन। तो मेरा और उल्टा आया था, नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आने के बाद पावर को बनाओ पॉजिटिव, इसको करो डिवाइड। आईआईटी से, नहीं भाई, निकल नहीं पाया आईआईटी। हम्म। So what I have to do here is understand what is the recursive approach? What is the recursive approach? So wait, rather than asking, what I will do is, if I already understand it, how will I write the code? So one thing I have to understand here is that this is the basic approach. You have to comment it down. Then from which college? Oh, I am from KCC University. Oh, KCC College, sorry. Fuck. लेना देना नहीं है भाई कॉलेज के। पुष्पा, पुष्पा क्या नाम है? पुष्पा। Okay, so binary exponential amplifier. Okay, let's try. So I have to take a base comma exponent, or I will consider this to be a double way. हम्म। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कितनी भी वैल्यू चलेगी। सी- कितनी भी चलेगी। सेट प्रिसीजन या फिर करना हो तो कर भी सकते हो, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि पाँच। अरे यार यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। क्या होता है इसमें? सेट प्रिसीजन justify that is बढ़िया। बढ़िया, आ गया। Set precision up to 5, and now what I have to do is, okay, I will take this, I will store it inside log. E is first what, suppose I will consider this to be an exponent. Okay, so I will store it inside this. I will check, okay, if n is less than 0,
It means that negative. What I will do is, okay, consider n to be a minus n, and now after that, what I will do is, I will create a boolean flag here. Okay, boolean is there, boolean negative. Is this negative? If this negative, I will mark this as, initially mark this as false. If there is no negative power. If I found this to be a negative, I will mark this negative. Neg to be a negative, or a false. No, true. That I already found the negative value. After that, uh, rather than this, what I can also do is that I will consider the base to be a 1.0 divided by base. So I will convert the power into positive and then take the base to be in rational form. And after that, what I will do, I have to perform a binary exponentiation. So for that, what I know is till the point, okay, answer is equals to 1.0. Okay, so while my n is there, okay, I have to do something. What I will do, I know that, okay, so if my n is n modulus 2 equals to 1, it means that my uh, power is odd. So what I have to do is, okay, I will take whatever the answer is and just multiply the answer with whatever the base I have. And now I will decrease the exponent by 1. So n minus 1. Else what I will do, I know that the power is even. So if the power is even, what I will do, I will multiply the bases, okay, to find the square. So will I multiply the bases or something else? Yeah, I will multiply the bases, right? So answer is equals to, have to check, yeah. So basically what I will do is base will be equals to whatever the base into base. And now I will, so basically what I will do, I will just divide the power by half. So if I want to divide the power by half, first I have to multiply the bases. So basically I will, whatever the number that I have currently will be will be multiplied. So n is equals to n divided by 2. So that's it. So I think so this will work fine. And I will print whatever the, or I will return whatever the value is. Let's see if this will work or not. Dun, 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 dun. Hmm. Return answer 0. Oh, this is too trouble. Basically, what I will do is, okay, I have to half the power and multiply the bases. So basically, I first multiply the bases. If I get the even number, I multiply the bases, divide the power by half.
चलो भाई, इसका तो एकदम कतई हो गया करते करते। काउंट डिजिट, वेरी हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। ये जीएफजी पे सबमिट कर रहे हो क्या? हम्म। हम्म। कहीं कहीं पे तो दिमाग खराब कर देगा बिल्कुल ही। 5 वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हाँ वो, ना ना। हम्म, ये divided is just to two। अरे यार, लास्ट नंबर हटा दो। and count plus plus return, return count। हो गया। ऑप्टिमाइज करना है उसको। ऑप्टिमाइज में एक बहुत बढ़िया चीज है सीखने वाली। ऑप्टिमाइज करोगे तो हम्म, एक टॉपिक है बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन। या बेसिकली हाँ, उसका एक कॉन्सेप्ट है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं। वेट, क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ यही काम है। अरे तो तुम खाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे तो तुम अपने लिए ले आई ना, खाओ ना। ये यहाँ नहीं जाऊंगा, ये भिकमंगा खड़ा रहता है सब सारा का सारा। हाँ। तो बाइनरी एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि जैसे कि मान लो मेरे को दिया हुआ है कि 3 रेज टू पावर 13। ठीक है, और एक नंबर दिया है 3 रेज टू पावर 8। ठीक है, तो मैं 3 रेज टू पावर जो 8 है उसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर रेज टू पावर 4, ऐसा। ठीक है, और इसको मैं ये 3 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 9। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, 9 रेज टू पावर 4। फिर इस 9 रेज टू पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या आया, 4 का मैंने 2 कर दिया, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बना, 81 का स्क्वायर। ठीक है, ये 81 का स्क्वायर बन गया। और फिर मैं 81, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर, और ये बाहर आ गया 1। ठीक है, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी 6 और समथिंग 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 समथिंग। अरे हमको नहीं खाना है ना, मैं नहीं जाऊंगा भीख मंगों के बीच में लगने, लड़ाई करने लगता है साला। हाँ। अरे कोई जरूरी नहीं है, रात के 9 बजे मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ तो लोग 9 बजे जा रहा है, लोग हाँ जो बढ़िया बढ़िया लोग लाइन में लगा हुआ है। हाँ लगे रहने दो, वो देख चुका हूँ, 2 बार गया हूँ, ड्रामा होता है उसमें। अरे बहुत है, अभी तो अभी शुरुआत हुआ अरे है। ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। तो हाँ, फिर मेरे को दिया हुआ है 3 रेज टू पावर 13। अब यहाँ पे एक चीज क्या दिखी मेरे को, कि जब यहाँ पे पावर इवन है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि बेस जो भी है, ये बेस, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है,
और ये बेस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी पावर दी हुई है उसको मैं हाफ कर देता हूँ। ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन यही है कि जब मेरा n यानी जो एक्सपोनेंट है वो जब भी इवन होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो भी मेरा पावर है उसको मैं हाफ कर दूंगा बाई 2, और जो भी मेरा बेस है, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, बेस इनटू बेस। हाँ। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बेस, अब ये एक कॉन्सेप्ट, अब इसको ऑड पे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये ऑड दिया है, तो जब भी ऑड दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे कि अगर मेरा एक्सपोनेंट ऑड है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा बेस दिया हुआ है उसको मैं बाहर निकालूंगा। ठीक है। और बाकी जो नंबर बच गया, जैसे बेस को बाहर निकाला तो ये बची बन गया 3 की रेज़ टू पावर 12। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये 3 की रेज़ टू पावर 12 जो है, इसमें जो ये 12 आया है ये तो इवन बन गया। तो इवन बन गया यानी फिर से यही काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि अब यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन है कि यानी जब भी ऑड आता है एक्सपोनेंट, ठीक है, ऑड आएगा तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरा, क्या कहते हैं, जो भी मेरा आंसर अभी तक का आया हुआ है, ठीक है, मैं क्या करूंगा उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा बेस से। ठीक है, और जो भी मेरी पावर दी हुई है अभी करंटली उस पावर को एक से कम कर दूंगा, यानी e = e-1। ठीक है। अब अब आते हैं कि भाई इससे फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ, सबसे पहली चीज, सबसे पहला फायदा ये हुआ है कि हम क्या कर रहे थे नॉर्मली, कि मेरे को मान लो कि निकालना है 3 की रेज़ टू पावर 5, तो मैं क्या कर रहा था, पहले 5 बार लूप चला रहा था और 3 को मल्टीप्लाई करे जा रहा था बार बार। ठीक है। तो बेसिकली बिग ऑफ एन टाइम लग रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे 8 दिया हुआ है, तो ये एक स्टेप में 4 हो गया, और दूसरे स्टेप में 2 हो गया, और फिर 1 पहुंच गया। तो लॉग एन पे पहुंच गए हम सीधे, वहां से बिग ऑफ एन से लॉग एन पे आ गए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं। और इसमें ये होता है कि पावर को ऐसे रिड्यूस करते हैं, फास्ट फास्ट पावर निकालने के लिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताया कि क्या है, सबसे पहले एक, ये कोड वाली स्क्रीन दिख रही। तो इसमें जैसे बेस दिया हुआ है और एक्सपोनेंट दिया हुआ है। तो अब सबसे पहली बात क्या हो सकती है कि एक्सपोनेंट जो भी मेरे को नेगेटिव दिया है, जब मैं उसको पॉजिटिव बनाऊं, मे भी हो सकता है वो इंटीजर ओवरफ्लो वगैरह कुछ कर जाए। ठीक है। तो मैं उसको लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है। और तो यानी मेरा एन क्या हुआ, एन मेरा भी एक्सपोनेंट है। ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी मेरी नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये a⁻⁻b दी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a⁻⁻, ये। तो यहाँ पे मैंने किया क्या कि ये जो मेरा बेस दिया हुआ था उस बेस को मैंने 1/a बनाया, और ये जो मेरे को पावर दी थी इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, है ना। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर मेरा क्या कहते हैं, जो भी मेरा एक्सपोनेंट है, अगर वो लेस देन 0 आ जाता है, ठीक है, तो जो भी मेरा एक्सपोनेंट है उसको क्या करना, पहले तो पॉजिटिव बना देना। ठीक है। और जो भी मेरा बेस है उसको इस फॉर्मेट में बना देना, 1/a फॉर्मेट में। तो ये हो गई एक कंडीशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये बूलियन क्यों लिखा है पता नहीं, हटाओ इसे। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आंसर निकालने गया। ठीक है, तो आंसर निकालने जाएगा जाऊंगा तो मेरा एक आंसर वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू 1.0 है, क्योंकि डबल में रिटर्न करना। अब जब तक मेरा एक्सपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने क्या बोला कि मैं एक्सपोनेंट जो भी आता है उसको देखता हूँ सबसे पहले कि वो इवन है कि ऑड। तो अगर वो ऑड होता है तो मैं क्या करता हूँ कि बस जो भी बेस दिया हुआ है उस बेस, क्या, ओवर ओवरफ्लो से बचाने के लिए। वेट, लेट मी शो यू। देखो। ऐसे ये इंटीजर क्या है, माइनस यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे
एक ट्रिकी बात ये है कि इंटीजर की रेंज -2⁻31 से 2⁻31 -1 होती है। अगर ई की वैल्यू ये हुई और तुम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 करोगे तो इंटीजर ओवरफ्लो आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर कर लिया कि इंटीजर ओवरफ्लो ना आए। ठीक है, वो बेसिकली +1 वाला चक्कर पड़ेगा बस, उसके वजह से वो लास्ट वैल्यू पकड़ लेगा, वो वाला बचाने के लिए। तो फिर मैंने क्या बोला कि ठीक है, अगर मेरी ऑड आती है, जो भी मेरा एक्सपोनेंट है, जो भी मेरा ऑड आता है, तो मैं क्या करता हूँ कि अभी तक का जो भी आंसर है उसमें मैं बेस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यानी बेस बाहर निकाल लेता हूँ अलग। ठीक है, जो कि यहाँ पे निकाला है, और फिर मैं क्या करता हूँ कि जो भी उसकी पावर दी हुई है, ठीक है, उस पावर को 1 से कम कर देता हूँ। जैसे यहाँ 13 था तो 12 कर दिया। तो यही लिखा है कि आंसर के अंदर मैं क्या करूंगा, आंसर इंटू जो भी मेरा बेस है, और मैं पावर जो जो भी मैंने स्टोर करके रखा है उसको मैं 1 से कम कर दूंगा। ठीक है, अगर ये इवन होता है, तो इवन में मैं क्या कर रहा था कि इवन में जो भी मेरे बेस थे उनको मल्टीप्लाई कर दे रहा था। जैसे 3 था तो 3 का स्क्वायर कर दिया, 9 हो गए। ठीक है, और जो भी उसकी पावर थी उसको सीधे मैं आधा कर दे रहा था, तो n=n/2। बस इतना ही है। और ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि काम आएगा बहुत जगहों पे, तो इसको याद रख सकते हो, मतलब बहुत जगहों पे यूज होगा पावर निकालने में, लॉग एंड टाइम में। यही था बस। फर्जी क्वेश्चन प्राइम टेस्टिंग। अरे मेरे को यार क्या, अ, हाँ, चेक फॉर प्राइम, चेक फॉर प्राइम, बूल इज प्राइम। ये तो बकवास है। i = 2 से लेकर i <n i प्लस 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 if n modulus I if equals to 0, return or return true. Steve, if n equals to 1, return false, false. Hmm. C of event, 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 tennis, पता नहीं क्या नाम बोल गया। वो उसको कैसे करते थे कि उसमें कुछ 3 5 करते थे उसके साथ। अब क्या क्या करते थे, लेकिन सबसे पहले मैं, हम्म, तो यार सी, सी बना देते, सी SEIV, सी, ये बनाया सी मैंने। सी बनाने के बाद एक इंटेंट कि क्या ये प्राइम है कि नहीं। फिर मैं एक वेक्टर एरे बनाऊंगा, नेक्स्ट इंक्लूड इट्स स्लैश यूजिंग नेम स्पेस std। तो मैं सी के अंदर करता क्या हूँ, वेक्टर एरे बना लेता हूँ इंट एन साइज। प्राइम, प्राइम है कि नहीं है प्राइम, एन कॉमा इनिशियली सब सब प्राइम नहीं है।
नहीं, सब प्राइम, यूजुअली सब प्राइम। अब मैं एक लूप चलाता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 2 से चला देता हूँ, और अंडर रूट आई तक चलाता हूँ एन इक्वल लिख देता हूँ, और एक जे लूप चलाता हूँ जो कि जे से चलेगा, और आई इंटू आई से लेकर ये भी जे इंटू जे इक्वल्स टू एन तक चलेगा। और ये करता गया कि if हर नंबर पे जाए, और आई इंटू आई से, और देखेगा कि अगर वो ट्रू है, अगर प्राइम ऑफ जी ट्रू है, तो प्राइम ऑफ जे को फॉल्स कर देगा कि नहीं भाई, तू प्राइम वराइम नहीं है, मैं हूँ प्राइम बस। यही है। एंड देन रिटर्न कर दूँ 0 और 1। अब मेरे को जैसे पता करना है कि 7 मेरा प्राइम है कि नहीं, तो प्राइम प्राइम ऑफ एन भेज दो, बस ये बता दें। रिटर्न फूल। हाँ, इसमें थोड़ी सी इधर हो गई। रिलेटिव कोड, कोड गलत हो रहा है, कुछ इसकी किया है। अरे आगे का जंप देता है, और जब प्राइम हो तभी जंप देता है। तो बेसिकली मैं देखूंगा कि ठीक है, ठीक। तो बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ, ये आता है। मैं फॉर लूप लिखता हूँ, फॉर लूप तीन तीन का जंप लेके जाएगा ना, तो आई इक्वल्स टू 2 से चालू किया, और मैंने भी किया कि एन इक्वल्स टू कर दिया यहाँ पे, और इंटू आई कर दिया। ठीक है, अब फिर जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि क्या भाई, अगर ये प्राइम है, ये जो नंबर आया ये प्राइम है, तो एक काम करो कि अब एक लूप चलाओ जो जे से, ठीक है, और इसके जितने मल्टीपल्स हैं,
या वहीं खा ले। नहीं, ये कभी हाँ हम अभी तो सी मैच पूरी खत्म हो रहा था। हाँ मतलब फिर चना के नया भगोचा भगोचा आ गया। गलती हो रही है। है तो इसके आगे जाना और इनके चला दिया इंजीनियर चला दिया ये इक्वल्स टू आई इंटू आई टू से चलना आगे तो सही और फिर ये करिए में कर दिया था। अबे यार, ये है ना मेरा, या फिर तो कलर वलर बदल दो, हमको नहीं बुझा रहा है कुछ भी। ठीक है ना भाई, एक ही जैसा कलर का है, पता नहीं कैसे मैं डिफरेंस कर लूंगी, ये उसका है ये मेरा है। अरे ये एकदम हल्का रंग है अब आपका डार्क है थोड़ा। तो मैं ठीक वो है, यूज किया हूँ। आप लीजिएगा। आप वो उसका है, वो तुम्हारा है। कहाँ यूज कर लिया, कब कर लिया? नहीं किए हैं। बाहर टंगा हुआ था अपना है थे इससे पूछे हाँ तो कोई बात नहीं है, चलिए उसको फिर कल धुल देंगे और उसके बाद से ये ले लेंगे हरी वाला। अब तब लाइन चल आपका रहा है। आपका उनका बदला जाएगा। जीरो को फॉल्स रखो और प्राइम वन को भी फॉल्स रखो। और लाइव चल रहा होता है। Trailing zeros सारे zeros डिपेंड करते हैं कि कितने पांच आ रहे हैं। तो ये देखो पांच कितने कितने ही जीरो रहेंगे। काउंट स्पेस टू जीरो और y n काउंट प्लस प्लस और n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड स्पेस टू 5।
फाइव के कितने मल्टीपल्स हैं वो बता दो मुझे। 0 0 दो और पाँच पे डिपेंड करते हैं। जितने 10 बनेंगे उतने जीरोज आएंगे। दो और पाँच पे, और इसमें कि दो कुछ नहीं करते, पाँच को करता है मैक्स टू मैक्स। मैं ये पता कर लूँ कि नंबर ऑफ जीरोज तो 10 कितनी बार बनता है, वो बनता है वो पड़ेगा पाँच। तो समथिंग वेंट रॉन्ग। सी जब तक n जीरो नहीं होता तो n जीरो नहीं होता, उनको मैं पाँच से डिवाइड करते जाऊंगा और जितनी बार में n डिवाइड हो गया। लगता तो ये लॉजिक है, और क्या ही लगता है इसमें। नहीं लगता कब ये जीरो बन जाए। ट्रेलिंग जीरो इन फैक्टोरियल और एन इंटीजर n, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग zeros। At what stage are you on of DSA? I am on beginner state now. Till I not attempt the contest, I have some level. When I attempt the contest, now I become beginner. तो भगवान यही हुआ और क्या। तो पूछ रहा है उसको बता रहा हूँ। तो वो हमको खा वालों को मानेंगे एकदम कि खा के ही आओ। टेंशन क्या है यार इसमें। ये क्या जबरदस्ती खाना ही है भंडारा। और रोजे लगता है, हर 2 दिन पे भंडारा होने लग रहा है। कभी उधर होने लग रहा है, कभी वहां होने लग रहा है। क्या है खाने पीने में, क्या था? अरे यार अभी उठ के जाऊंगा फिर बीच में। और ये भिखमंगा वाला काम नहीं करता हूँ, रोड पे खड़ा होकर खाने वाला। अरे तो मैं मांगता भी नहीं हूँ, मेरा ये सब आदत ही नहीं है आज तक। पहले ये मेरा, तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो अभी चले जाऊंगा उठ के। ओ भाई, प्रिंट का आउट, क्या गलती कर रहा हूँ? मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मेरे को ये पता है कि अगर मैं ट्रेलिंग जीरोस निकालना है कितने जीरो हैं पीछे, तो मैं क्या करूंगा, ये जीरो आ रहे होंगे 10 की वजह से। ठीक है, 10 के मल्टीपल्स की वजह से। अब ये 10 बन के से रहा होगा, ये बनेगा 2 और 5 से। ठीक है, तो उसमें 2 से कोई फर्क पड़ता है नहीं, 5 से फर्क पड़ेगा खाली कि 5 कितने आ गए। जितने 5 आएंगे उतने जीरो बनेंगे। कि तो मैं इसमें निकाल लूँ कि साला 5 कितने आएंगे इसमें। 5 कितने आएंगे ये पता कर लूँ। अच्छा ये तो साला गलत ही आएगा, क्या कर रहा है ये? 5, एक सेकेंड, काउंट जीरो रखा मैंने, क्या किया अभी देखा 5, एक काउंट बढ़ा दिए। ठीक है, फिर जीरो कर दिए, ये चला नहीं। तो एक ही तो अरे अरे, कमा रहे क्या थोड़ा सा बिल्कुल ही।
2 कैसे आ गया? मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 5 दिया है। मैं बोल रहा हूँ 5 है, ठीक है। 5 है तो एक काउंट बढ़ा देना, तो काउंट 1 हो गया। फिर जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना 5 से, 1 आ गया। हा 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 हा, ये डिवाइड नहीं करना। ये करना तो डिवाइड ही पड़ेगा। तो मेरे को ये बताना है 120 में 5 कितने आते हैं। तो 120 में 5 कितने आते हैं? तो मेरे को ये जीरो नहीं, एन इक्वल्स टू 1, जब तक ये 1 के बराबर नहीं होता। तो अब देखो, अरे टाइम लिमिट एक्सीड हो गई और इसका देहांत हो गया। 120 में 5 कितने आएंगे? अब मैं फ्लोर वैल्यू लूंगा ना 5 से डिवाइड करके। फ्लोर वैल्यू तो लेता हूँ। 120 में एक ही 5 आ रहा होगा, एक ही बार 5 आया होगा। हम करते क्या है? हम कुछ ऐसा करते हैं कि पहले लेते हैं 120 से 20 नहीं लेते, कुछ क्या करते हैं यार इसमें। मुझे ये तो पता है कि मुझे 5 लाना है, 120 में कितने 5 है ये कैसे पता चलेगा मुझे? कैसे पता करूंगा? कुछ तो डिवाइड करता हूँ साला। कुछ तो डिवाइड करता हूँ। 120 को 5 से डिवाइड करें। पर से फ्लोर वैल्यू निकालनी तो बहुत बड़ा नंबर देगा नहीं। जब तक करता हूँ, ठीक है 5 से कर दिए, तो क्या आया होगा? 120 को 5 से किया होगा तो कुछ वैल्यू आएगी। फिर 120 को 25 से कर देता हूँ। फिर 120 को 125 से कर देता हूँ। यहाँ पे जीरो आ गया, बट ये 2 बार तो चल ही गया, आना तो चलना तो एक ही बात था। टिल द पॉइंट। मेरी नीचे वाली, अरे यार ये ट्रेलिंग जीरो है यार। यहाँ पे डिवाइड तो मैं कर रहा हूँ, कुछ फ्लोर वैल्यू लेता हूँ। कुछ तो करता हूँ इसमें। करता क्या हूँ लेकिन। मैं यही बोल लिया करता क्या था। 120 लिया, तो मेरे को पता है इसमें एक ही बार 5 आएगा। एक ही बार 5 आएगा का क्या मतलब है? इस 20 के 120 के साथ करूँ क्या मैं? 5 रेज टू पावर 1 प्लस 120 डिवाइडेड 5 रेज टू पावर 2
बस 120 डिवाइड पे 5 रेज़ टू पावर 3, जब तक पावर रेस करते रहो जब तक बड़ी नहीं हो जाती वैल्यू। और इसकी फ्लोर ले लो, इसका फ्लोर ले लो, इसका फ्लोर ले लो। बट ये तो दिया ही 5 है। 100, अबे अल्टीमेट लेवल का गवाह। 5 बाई 5 का स्क्वायर करूंगा ना, तो बेसिकली मुझे ये करना कि कि हम्म, तो मैं क्या करूँगा कि इंट काउंट रखूँगा यहाँ पे 0, और काउंट प्लस इक्वल्स टू यहाँ पे करूँगा जो भी मेरे n की वैल्यू दी गई है डिवाइडेड बाय नहीं, ये n की वैल्यू तो फिक्स है। इंट काउंट इंट वैल इज इक्वल्स टू n। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, n इंटू इक्वल्स टू n इंटू 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, और बेसिकली यहाँ जो ये वैल्यू है उसको डिवाइड मारूंगा। इसको डिवाइड मारूंगा किससे, वाइल वेल जब तक बड़ा है मेरा n से, तो वेल डिवाइडेड बाई n करना। जा रहा हूँ। हम्म। कोई दिक्कत नहीं है यार। n मिला, अबे यार ये n कहाँ से आ गया। इनिशियली बेसिकली ये वैल्यू जो है ये वैल्यू n की वैल्यू तो कुछ नहीं हो सकती है। मैं वैल्यू कर रहा हूँ, तो जब तक n बड़ा है वैल्यू से, फिर फूड आउटपुट इज 1। कैसे भाई 1 कैसे आ गया, मैंने 4 लिया और इनिशियल वैल्यू 5 है। जीरो प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स that represent all the prime factors of 18।
कारक के प्राइम फैक्टर्स। All prime factor in any order. अठारह दिया है। 18 पहले 2 से डिवाइड हुआ। मैं 10 मिनट में आता हूँ, ठीक है। हम्म।
So, what is uh, क्या अरे वो भिखमंगा अंदर को दे रहा है, तो कभी किसी को दे रहा है, उसको दे रहा है, उसको दे रहा है, 50 को ड्रामा कर रहा है, लाइन में आगे नहीं बढ़ रहा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, 4 घंटा खड़ा रहूंगा। तो सब लोग आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा, आप हाँ तो किसी के मैं हिसाब लोग के से हिसाब से थोड़ी चलूंगा। आपके हिसाब से भी कोई नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, मत चले। अरे यार, फर्जीवाड़ा इसीलिए नहीं जाता हूँ मैं। सी मैं बना लेता हूँ सी, यहीं पे बना लेता हूँ वेक्टर इनटू सी प्राइम नाम से। सीपी का लेक्चर देखो क्या, सीपी का लेक्चर। चलो ठीक है, कल मंडे को देखेंगे। Oh, 562 फॉल्स ये प्राइम होता ही नहीं है, 1 को प्राइम नहीं होता, फॉल्स कर दो I into I is then equals to n I plus क्या बुला रही है? हाँ, आ रहा हूँ। I, अगर ऐसा है तो 4 into j is equals to I into I is j less than n I plus plus गावड़ा पॉइंट चलेगा, इक्वल्स टू कर ही देता हूँ। अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्रिएट करूँगा ही पड़ेगा।
फैक्टर की एरे होने लगी है। प्राइम है कि इसमें सारे प्राइम है। तो टीवी चला रहा हूँ। और लगा के इंट I is equals to 0, I is less than n plus 1 subscribe. Prime outside है prime prime of करना है तो ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये चेक करना पड़ेगा if prime prime of I equals to 2 and prime है and n यूवी दिया है modulus I equals to 0 आ रहा है। मेरे पास 0 आया यानी एक फैक्टर। तो जब तक हम्म 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 डेल्टा से क्या करूँ? push so the push back is whatever the I is and equals to n divided I सिलोन नॉट का 6 सिलोन
Okay. Plus equals to I. Of Hmm. Hello, buddy. Hello. Movie flips. Movie flips. Indeed. Hello. That's for this. Just take any element and so also push back 5. ऑप्टिमाइजेशन करूँ कि ठीक ठाक हो गया. I want to learn DSA how to start as a beginner. What's the question? What's the question? Okay. So the question is all prime factors in any order. Yeah, we have to return that uh, if n is equals to 18, then how many prime factors there? Like here 2, 3, and 3. So basically we have to return this, that how many prime factors and what is that prime factor. So if you start as a beginner, one thing I will suggest you, don't go towards lecture. आई गलती से भी नहीं, खेल खत्म हो जाएगा. हाँ, कहीं डॉक्यूमेंटेशन पकड़ लो, जीपीटी जेमिनाई कहीं से भी कुछ भी पकड़ लो, वहां से पढ़ो. टाइम लगा दो जितना टाइम लग रहा है, 8-10 महीने. लेक्चर मत देखना, कुछ नहीं सीख पाओगे. एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ.
इसमें क्या करेंगे? अबे भाई बताओ। मैंने क्या किया इसमें सीव लगाया। ठीक है, सीव लगा के मैंने ऐसा कुछ सोचा इसमें कि प्राइम निकाल लेता हूँ यहाँ तक के सारे। अब प्राइम निकालने के बाद फिर मैं इटरेट करता हूँ और ये चेक कर लेता हूँ कि जो प्राइम बच गए हो इस नंबर के लिए, ठीक है, उसको उस वाले नंबर को पकड़ के डिवाइड, उस वाले नंबर को पकड़ के मैं n से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, या थिंक मेंशन नॉट बट इट्स ओके। हम्म सो अब यार मैं ऐसे डिवाइड कर दूंगा। हम्म, अबे एरर नहीं आ रहा, टाइम लिमिट एक्सीड हो गई। Iterate from 2 to n by 2 and then check if modulus 0. If not, then increase. Keep storing in a list, I guess. From 2 to n by 2 in this loop. Wait. By 2. n by 2 की भी तो कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक सो वही जाएगी। मर जाएगा उधर ही यार। अब तो रॉन्ग ही हो गया टेस्ट केस। नहीं नहीं, वो चीज नहीं करनी। जे प्लस इक्वल्स टू आई। क्या करूं? मैंने देख ये सोचा है इसमें, ठीक है, कि सी बना दिया पहले मैंने। ठीक है, प्राइम सी। फिर प्राइम सी बनाने के बाद हाँ, वही टाइम लिमिट एक्सीड हो गई। प्राइम सी अगर मैं बनाऊंगा नहीं, अब मेरे को ये पता तो करना ही पड़ेगा कि भाई। हाँ, और क्या ही करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालने का और क्या करें? सी भी तो कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है। कितना कर देता है ये? लॉग लॉग एन। लॉग लॉग एन हो गई बेसिकली। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा? हम्म एन लॉग लॉग एन, अच्छा। एन लॉग लॉग एन मेरे को 18 मिला। अब 18 के मुझे सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जो प्राइम फैक्टर्स, तो पहली बात तो ब्रूट तो बेसिक तो मैं यही सोच लूँ कि सारे फैक्टर देखूं और उसमें से ये देख लूं प्राइम कौन कौन से हैं। तो वो तो एन स्क्वायर चला गया। ठीक है, कि हर नंबर को लूं और फिर उसको मैं चेक करूं कि क्या ये फैक्टर है, फिर उसके बाद में चेक करूं क्या ये प्राइम है। तो आई डोंट थिंक सो। फिर मैंने सीवी के बारे में सोचा कि मैं पहली बना लेता हूँ एक एरे, और मैं सीधे अरे नॉर्मल तरीके से क्या कर दूं? अबे देख, मैंने ऐसा कुछ सोचा। मैं क्या कर रहा था, मैं 18 के फैक्टर्स निकालने गया। ठीक है, 18 के फैक्टर्स निकालने गया, 18 के फैक्टर्स आए, और वो जो फैक्टर आ रहा है तो मैं चेक करने जा रहा हूँ क्या ये प्राइम है कि नहीं। तो बेसिकली मैं प्राइम के लिए एक ऑपरेशन करवा लगवा रहा हूँ, तो उसी वजह से एन स्क्वायर लग रहा होगा, लेकिन मैं वो डायरेक्टली निकाल दूं सीव से। सीव तो मेरे को डायरेक्टली ही बता देगा कि ये प्राइम फैक्टर है कि नहीं। कहाँ लिखा है? रूट एन में? कैसे? नहीं नहीं, मत बता मत बता। रुक गया 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट सोचने दे, 10 मिनट 10। मैं वो ट्राई करके देखता हूँ जो मैंने सोचा है। अगर उससे कुछ नहीं होता है तो फिर मैं तेरे से तो पूछता ही हूँ। चलो भाई, तो मैं यहाँ तो उसे चालू कर देता हूँ। और बेसिकली मेरे को एन के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो आई इज लेस देन एन तक चलाता हूँ।
अभी देखता हूँ कि भाई क्या n से मॉडुलस i करने पे इक्वल इक्वल्स टू 0 आ रहा, यानी ये एक फैक्टर है। अगर ये एक फैक्टर है तो इफ प्राइम और प्राइम निकालूं, ठीक है, अब मैं प्राइम निकालता हूँ। प्राइम और अब मैं ये चेक कर लूँ कि ये प्राइम भी है। अगर ये ब्रो ये क्या है, अरे ये क्वेश्चन है भाई। अरे क्या लेगा, आई टू से n बाई टू आई प्लस प्लस वाइल n मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0 फैक्टर एड आई। हम्म, लेट मी चेक। तो मैं एक बारी में ये पता कर लेता हूँ कि क्या ये है। अगर ये प्राइम है, ठीक है, ये जो आई दिया है, ये अगर ये प्राइम है तो ये प्राइम फैक्टर है, तो आंसर डॉट पुश पुश बैक पुश बैक वट एवर द आई इज। अरे ये तो साला एक्स्ट्रा, ये क्या बता रहा है, आउटपुट डिफरेंस? क्या आउटपुट डिफरेंस, यही तो आ रहा है। अरे ये क्या आउटपुट डिफरेंस है? अच्छा, एक नहीं आया। अच्छा, एक नहीं आया। अच्छा, तीन है तो दो बार आना था, एक ही बार रह गया। इसके प्राइम फैक्टर नहीं 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 नहीं, इस टू का फैक्टर निकाला और वाइल एन मॉडुलस आई, इस फैक्टर को ऐड करते रहो और वो करते रहो। यही तो पहले भी किया था मैंने कि भाई जब मेरा ये एन मॉडुलस आई, ये मैंने निकाला और ये मैंने देखा क्या ये प्राइम है, तो जब तक ऐसा होता है कि ये इफ की जगह वाइल कर देता हूँ कि वाइल एंड मॉडुलस आई, और जब तक ये प्राइम आ रहा है अब कुछ करते जाओ। अब तो टाइम लिमिट ही मर जाएगी इसकी, कहीं भाग के मर गई। और ये पुश करते ही ये भी कर देना, एक काम करना कि एन डिवाइडेड इक्वल्स टू आई कर देना, आई से उड़ा भी देना इसको। अबे ये तो गलत हो गया यार। बट वाई आर यू चेकिंग फॉर प्राइम? प्राइम फैक्टर चाहिए ना, ये लिखा तो है क्वेश्चन में कि प्राइम फैक्टर चाहिए। सिर्फ प्राइम फैक्टर्स, दो प्राइम है तीन प्राइम है, जो कि 18 से डिवाइड होते हैं, 18 को मतलब डिवाइड करते हैं। इफ इट इज इन मॉडुलस है देन इट इज प्राइम। खाली तो सब्जियां के चक्कर में तो सब्जी नहीं बन पाता है तो इसलिए सब्जी कितना मस्त है। एलो एलो भाई, एकदम से क्या तो एलो भाई? हम तो खुद बनने लग रहा एलो भाई, एलो। आ, यार मैं पहले सही कर रहा था बट वो टाइम लिमिट एक्सीड मार गया वहां पे। ये मैंने किया तो था कि मैं चेक कर रहा था कि ये साला प्राइम इसका ट्रू है कि नहीं, और एन मॉडुलस आई भी यू ऑलरेडी डूइंग इट या। मैंने वो लॉजिक लगाया और वो लॉजिक फेल हो गया। ये तुम्हारा ये वाला लॉजिक पास हो गया, मतलब ये चल गया ये वाला कोड, वो पूछ रहा हूँ। भाई सेपरेट फंक्शन के बिना हो जाएगा 10 लाइन में, कैसे होगा? कैसे कैसे? यार सीव नहीं, फॉर, मैं 2 से n/2 तक ये कह रहा है कि मैं 2 से n/2 तक चला हूं, और मॉडुलस आई अगर 0 आ रहा है। क्या?
कीप डिवाइडिंग द नंबर बाय आई विच गोज फ्रॉम टू टू एंड बाय आई विच गोज फ्रॉम टू टू एंड। क्या क्या बोल रहा है? मतलब मैं कुछ तो फर्जीवाड़ा कर रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल करना नहीं चाहिए। एक नंबर जो कि फैक्टर है, जो प्राइम भी है। तो मतलब ये देख लूं कि क्या ये फैक्ट, अरे यार फैक्टर्स ही निकाल लूं। वो फैक्टर ही, अब फैक्टर ही निकाल लेता हूँ। अगर वो फैक्टर आ रहा है। हम्म। क्या फैक्टर? हाँ। नहीं, सिर्फ फैक्टर्स निकालने की जरूरत है। अरे यार, बस ये इफ जो लिखा है इसमें एन मॉडुलस आई मॉडुलस जीरो, एंड खेल खत्म। ये ये वाला। मर गया प्राइम साइज। You don't need to go till n goes, go till n by 2 or I raised to power 2 till n. Bro, can you explain your logic one time? अरे यार मैंने पहले अरे प्राइम साइज वाला मैंने लॉजिक लगाया था, ये वाला लॉजिक मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे को इसमें करना क्या। प्राइम साइज में तो मैंने ऐसा सोचा था कि जैसे मेरे को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर बोले हैं, तो मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ। फैक्टर निकाल के ये देख लेता हूँ कि प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो प्राइम है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो या फिर तो मैं एक लूप लगा के प्राइम पता करूं, और या फिर तो मैं सीव बना लूं। तो सीव बनाऊंगा, वो मेरे को बिग ऑफ वन टाइम में बता देगा कि ये प्राइम है कि नहीं ये नंबर। ये मेरा एक लॉजिक था जहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड हो गई। अब मैं दूसरा लॉजिक सोच रहा हूँ कि मैं इसमें करूंगा क्या। हाँ। तो अब मैं क्या करूँ? मैं एन बाई टू तक, वो कह रहा है कि एन बाई टू तक जाऊं। वेट, मेरा कोई, वेट, और एक फैक्टर, फैक्टर तो निकलेगा, ये तो फैक्टर है। और अगर ओ या गो थ्रू अंडर रूट ऑफ दैट वैल्यू, अंडर रूट आई दिस वन, टू अंडर रूट ऑफ टू। ओके, आई हैव टू पुट here rather than writing the primes, I have to write n here, equals to uh, it's a run time. uh, okay, okay, I have to start it from 2. Yeah, will be wrong. So I will start and I will do n modulus I is equals to 0, answer dot pushback I, and n is equals to n modulo, sorry, n divided by I. So मैं क्या करूँ कि एक नंबर, एक फैक्ट, एक कोई भी एलिमेंट पकड़ूं, पहले देख लूं क्या ये दो से जैसे मान लो 18 आया, ठीक है। सोचूं अगर मैं 18 के बारे में, तो 18 आया और
यार 18 दिया है। ठीक है भाई 18। वो 18 का पहले तो फैक्टर क्या क्या है। एक तो एक है स्क्वायर रूट एन आई प्लस प्लस। या आई ऑलरेडी डू दिस। वेट, स्क्वायर रूट एन from I is equals to 2 till square root of n I plus plus, and I will perform this and my test case will fail. Wrong answer. So I have to do something else. I know that what all are the factors of 18. So 1 is the factor. Now 2 is also the factor. 3 is the factor. Okay, yeah. Mm, there's something wrong that I'm not able to think. So 3 is their factor and 9 1 is there and 18. So I've seen that, okay, I am on 1. Fine. And now I know that the factor is still 3 only. Okay, so when I am on 1, I will see that, okay, 1 is there. I will see, okay, uh, I will not consider this because I will start it from 2. I will see that, okay, 18 has factor 2, so I will write down, okay, 2 is there and I will divide it by divided by 2. So I will see that, okay, yeah, I will divide it by 2, I will get 9. Fine, I get 9. After that, when I get 9, I will see that, okay, 3 is there. Fine, 3 is there. So if 3 is there, what I will do, okay, I have 9 left, and then I will see that, okay, 2 is not divisible by 9 is not divisible by 2, so I will jump up to 3. So I will divide it by 3 and I will see, okay, I will get one more answer. So I will put it inside the answer and then after that I will left with 3. So when I left with 3, again I will divide it by 3. I will see that, okay, this will be 0. So I will again put 3. So the logic is fine, but there is little bit error. Let me think. Okay, so I've seen here is okay, 51 is there, and then I want only 3, not 17. So if I find the square root of 51, so it will be between 7 to 8. So it will never reach up to 17. Never reach till 70. It's time limit exceed. Uh, because of while this. So I have to, no, I have to do this same thing again and again. And hmm, into values is to n. मैं अगर इसी पे कर देता हूँ, मेरे को क्या करना है यार, एन की वैल्यू तो यार मुझे चाहिए ही कम कर। हाँ वही, उससे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। आह, एक कन यार, सोचने दे। स्क्वायर रूट ऑफ एन जब मैं करता हूँ तो प्रॉब्लम ये है कि 17 तो आएगा ही नहीं इसमें कभी। ओह वेट, फिफ्थ, मेरे को अबे हाँ, मेरे को ये चेक करना पड़ेगा जब मैं मान ले, ऐसा हो सकता है कि मैं मारे जा रहा हूँ, फैक्टर करे जा रहा हूँ
और फैक्टर करने के बाद मेरा n बच गई कोई वैल्यू। तो अगर वो कोई वैल्यू बच गई तो मुझे ये देखना पड़ेगा क्या ये प्राइम है। अगर वो सिर्फ प्राइम होगा। बाय बड़ी बाय। सो ओके। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू बच रही है अगर कुछ बच गई। ऐसा होता है कि n कुछ बच गया तो मैं आंसर के अंदर पुश बैक कर दूंगा। n मतलब n बच गया तो जीरो के अलावा कुछ भी हो डाल दूंगा उठा के। नहीं यार वन नहीं डालेंगे। एंड n n is there and n is not equals to 1। You are going in right direction but only if n is greater than 1। It's done। It's done। Ah, so I have right two condition, I don't know why, when n is there and n is not equals to 1। अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने यप यप एक चीज जो सोचने वाली थी। बाय बाय और गुड नाइट। गुड नाइट। सो भाई मैंने यहाँ एक प्राइम बचे ठीक है। अब यहाँ पे एक डिस्कशन की चीज ये है कि सिर्फ प्राइम क्यों बचेगा। ये बता। हम्म। 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 समझ गया समझ गया समझ गया। हम्म। हम्म। समझ गया समझ गया समझ गया। नो बडी आई एम नॉट अ फ्रेशर आई एम इन फोर्थ ईयर। फ्रेशर कहाँ से लग रहा हूँ यार। अरे कितने लोग का पानी हो गया है। हैं? हाँ। वो पूरे टाइम बॉयड ही रहते हैं क्या और कुछ नहीं करते हैं। ओ। अरे यार इतना पैसा कमा के क्या फायदा। पूरा पैसा तो उनका बीमारी में चला गया है। कुछ ज्यादा इंजर्ड हो गए। तो कुछ ज्यादा ही बीमारी है उनकी। ओ वो बात तो है। पैसा है लेकिन सारा पैसा तो उनका बीमारी में ही चला गया है। हाँ। हम्म। हाँ। तो बेवकूफ नहीं भाई। ये सब नहीं। ये सब नहीं। ये सब नहीं करने का। नो बिग फैन। क्या दिया।
सारे नहीं आता। नहीं हमको एगो वैसे बचपन में खेलने के लिए वो मुंह में पैसवा लगा के नहीं देता था, फूकने पर वो गुब्बारा नहीं फूटता था, बॉल वाला तुम लोग खेले हो? आ, वो एटीएम में दे देगा, गोलसा में फूकेंगे लोग तो बॉल वाला टुक 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 हाँ टुक होता बबल्स जो आता था, था। हाँ। बॉक्स वाला नहीं, तो बॉल का आता था। बॉल वाला भी वो खिलौना पता नहीं। टाइप था, ऐसे फूकेंगे ना हाँ, तो यहाँ आगे गोल सा रखेगा, उसमें बॉल रहेगा। अब अच्छा नहीं छोटा वो सा नहीं खेला। आप फूकेंगे लोग ना तो बॉल ऊपर हुआ उड़ेगा, आप हम्म, कुछ कुछ फिर उसी में आ जाएगा, फूकेंगे लोग। उसमें क्या होता था कि ऐसे जोर से फूकने पर सांस लेने में प्रेशर पड़ता है। हाँ तो वो दिया है उनको खेलने के पानी निकल आएगा, है। पानी निकल आएगा लॉन्ग में। नहीं, वो दिया है लेकिन जोर से सांस लेने ना, सांस हाँ लेने में दिक्कत हो रहा है ना, तो वो पढ़ने से वो सांस लेने में वो होता है, जोर पड़ेगा। भाई फुल स्टैक बनना है, मैं फ्रंट एंड डेवलपर। अच्छा अच्छा भाई, डेवॉप्स सीख लो भाई, डेवॉप्स डेवॉप्स जेन एआई सिस्टम डिजाइन सब सीख डाल, बन जाएगा फुल स्टैक डेवलपर। जो लैंग्वेज फुल स्टैक ये तूने एक एक लैंग्वेज करी हुई ना, सब कर डालो, गोलैंग, जेंगो, जावा, रूबी ऑन रेल्स, नोड जेएस, देन यू बिकम फुल स्टैक डेवलपर। कहीं पे भी जॉब लग जाएगी। यही तरीका है। हाँ रस्ट रह गई, रस्ट भी कर लेना। भाई और कुछ बच रहा है? और नहीं, नहीं बाकी सब तो हो गया। हाँ ये फ्लास्क और फास्टिफाई वगैरह भी है, ये सब भी। भाई मैं डार्क वेब पे लाइव हूँ, देखेगा? नहीं भाई, बिल्कुल भाई रहो, डार्क वेब पे लाइव रहो बिल्कुल, वहीं पे स्ट्रीमिंग करो। हाँ प्रोडक्ट मंगाओ वहां पे, वहां पे शॉपिंग करो, शॉपिंग। हाँ, अरे भाई खतरनाक, खतरनाक खतरनाक लोग आ गए हैं भाई, तो मेरी स्ट्रीम पे डार्क वेब वगैरह चल रहा है भाई, डार्क वेब वगैरह चल रहा है इधर तो। वीपीएन से आगे कुछ नहीं होगा, आजा कुछ नहीं होगा। अरे तो मैं करूंगा क्या वहां पे आगे? मुझे खरीदना ही नहीं है कुछ भी। तो रहो भाई, सामान वामान खरीदो, मुझे ही भेजना है। बकवास कर रहा है, और ये नहीं तुम्हें अरे वो बकवास है, अबे कोई जान पहचान का ही है, वो पता है हमको यार, और मेरे को नाम याद नहीं है कौन है वो। बकवासबाजी चल रही है फालतू की। क्या करना है, ऑल डिवाइसर्स ऑफ द वर्ल्ड। बस एक अच्छा व्यक्ति मिला है, मजे हैं, आजा देख ले। अरे भाई, अरे भाई अभी पढ़ाई चल रही है, अभी कुछ नहीं देख सकता। पढ़ाई के बीच में नो बकवास, नो बकवास। सो वेक्टर इंट आंसर, और मेरे को ये करना है कि एन मॉडुलस आई इक्वल टू तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि आई इक्वल आई मल्टीप्लाई आई अगर एन के बराबर है, एल्स तो मैं टू से डिवाइजर्स देखूंगा कि इसके सारे डिवाइजर्स। भाई एक यूट्यूब चैनल बंद
कराना है तो कैसे करे भाई? भाई एक यूट्यूब चैनल बंद कर, तो ये पता है क्या? मुझे क्या पता भाई? मुझे क्या लेना देना है? मैं दूसरे दूसरे का यूट्यूब चैनल है भाई, मेहनत लगती है खोलने में, उसका बंद क्यों कराऊंगा? फिनटेल, अच्छा। अरे भगवान, भाई देख भाई, उपाय उपाय देख कैसे बंद होता है। मैं तो दूसरों का पॉइजन वो नहीं करता भाई, खराब। मेरे को साला ये डिवाइसेस करना है। So if I modulus और n modulus I, n modulus I इक्वल इक्वल्स टू 0 है। ये एक डिवाइजर है। कुछ कोड ही बता दे यार। किस चीज का कोड? इस चीज का कोड बता दो चाचा। ये बताओ किस चीज का कोड बताऊं? n डिवाइडेड बाई आई, ये डाल दूंगा। और एल्स, अरे यार इसी एल्स वेल्स में नहीं लिखूंगा, इसी में देख लूंगा कि if अगर ऐसा होता है कि i इंटू आई इक्वल इक्वल्स टू n हुआ, तो सिर्फ एल्स रिटर्न आंसर। दो दस चार पाँच, एक से चालू करता हूँ। एक दो दस, एक बीस, एक दो चार पाँच दस बीस, आ तो ऐसे यार, क्या फर्क ये वाला। फाड़ा पे ऑर्डर कैसे चेंज हो गया बे? सॉर्ट कर देता हूँ। लोग उसको देखो क्या गड़बड़ हो रही है। वो तो गया बट ऑर्डर ऑर्डर पे। हेलो ब्रदर, हेलो बडी, हेलो, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? अबे ऑर्डर कैसे चेंज हो गया लेकिन इसका? अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ऑर्डर तो चेंज हो जाएगा, एन बाई आई भी डाल दिए। एन बाई आई डाल दिया ना, हाँ। शॉर्टिंग तो करनी पड़ेगी, कर दी शॉर्टिंग, हो गया खेल लगा। आज मैंने निपटाया है मैथ, मैथ निपटा दिया आज मैंने, बेसिक्स ऑफ मैथ। एक और बड़ी मस्त, अबे वो वाले क्वेश्चन का एक तगड़ा लॉजिक मेरे को समझ में आया, जो हम वो कर रहे थे उस टाइम पे। वो नहीं निकाल रहे थे कि एक हमें सीरीज निकालनी थी, तो सीरीज निकालनी थी। उसमें बोला गया है कि भाई तुझे सुपर सेट कैसे भेजूं, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। भाई मैं, एक चैनल ग्रो हो जाएगा तो अपने आप पैसा आ जाएगा, सुपर सेट की जरूरत नहीं है, अपने पास रखो भाई पैसे। सुपर सेट वगैरह की जरूरत नहीं है मुझे भाई। हाँ तो मैंने उसमें क्या सोचा कि देख, सबसे पहले उसका जब कोड लिखने जाते हैं, उस क्वेश्चन को वापस डिस्कस करते हैं, मजेदार क्वेश्चन था, भूल गया। अब मैं तेरे को भी समझाता हूँ कि कैसे कैसे है। ठीक है भाई चलो, काम धंधा चालू करा जाए।
तो पहले एन ले लूंगा। चलो एन तो कुछ भी ले सकता हूँ, हाँ। चलो भाई देखना भाई, वो मौज मस्ती बंद। क्वेश्चन देखना ढंग से, बताना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी बता देना। तो बेसिकली मेरे को solved 8 code forces today, two of them from 900 and 1000. I wrote 5 of the answer in my notebook and will submit them on day when I will be so busy. Oh, that's good, buddy. Keep it up. Keep it up. Keep it up. हाँ। सो मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है कि n एक मान लो कि कोई वैल्यू दी है 15। तो मेरे को क्या करना है कि ये बताना है कि कितने सीक्वेंस हैं जिसमें मैं सीक्वेंस को कॉन्जिक्यूटिव पकड़ूं, ठीक है, और उनका सम करूं तो n इक्वल्स टू 15 आ जाए। तो मेरे को क्या समझ में आया कि ठीक है भाई, एक काम करता हूँ, अरे यार। हम्म, तो मेरे को दिया है कि जैसे मैं 1 लेता हूँ, 1 + 2 + 3 6 हो गया, +4 10 हो गया, और +5 15 हो गया। तो एक सीरीज हो गई ये वाली, कि ठीक है, ये वाली सीरीज में पकड़ लेता हूँ, तो मेरा सम आ गया। ठीक है। अब मेरे पास आता है कि ऐसे ही करके मल्टीपल सीरीज जनरेट होगी। ठीक है, जैसे एक सीरीज जनरेट होगी ये वाली, 4 5 और 6। ठीक है, तो ये 4 5 और 6 मिलके भी 15 देंगे। ठीक है, तो ये दूसरी सीरीज होगी। ठीक है, और एक और सीरीज इसमें और क्या बन सकती है, और सीरीज क्या बन सकती है, मैं क्या ले लूँ, रुक जा। और क्या बना सकता हूँ, 9 और 6 ले लूँ। ठीक है, तो ये 9 और 6 मिलके भी 15 दे देंगे। भाई आई, हाँ क्या, हाँ कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, तो ये नहीं बन पाएगी। तो बेसिकली मेरे को देखा कि अभी दो सीरीज बन पा रही है, और भी सीरीज बन पाएंगी। तो मेरे को ये बताना है कितनी सीरीज बनी। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच। हाँ भाई, मैं आई एम इन फोर्थ ईयर बड़ी। हाँ। सो मेरे को यहाँ पे क्या समझ में आया कि ठीक है, मेरे को 15 दिया हुआ है, तो मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या सोच, ठीक है, कि मैं एक फॉर लूप चलाऊं, दो लूप। ठीक है, और हर बार स्टार्टिंग वैल्यू बदलते रहूं, और उस स्टार्टिंग वैल्यू से जैसे मान ले कि आई इक्वल्स टू मैं 0 से चालू करता हूँ। ठीक है, और आई इक्वल्स टू 0 से लेकर किसी एन पॉइंट तक जाता हूँ। ठीक है, और उस एन पॉइंट तक जाने के बाद, या 0 से चालू कर सकता हूँ या 1 से चालू कर सकता हूँ, कहीं से भी। और 1 से चालू करूंगा और एन तक जाऊंगा। ठीक है, और फिर एक दूसरा लूप चलाऊंगा, जो वही फॉर लूप ही होगा, और वो जे इक्वल्स टू आई से चलेगा। ठीक है, वो आई से लेकर एन तक चलेगा, आई इज लेस देन एन जो भी है। ठीक है, और अरे यार रुक जा, एक कॉपी बंद करने दे, इसी में दिक्कत हो रही है। हाँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ये एक दूसरा लूप चलाऊंगा, और दूसरा लूप चलाऊंगा तो बेसिकली ये वाला लूप चलेगा, मान ले पहले बारी में आई 1 आया, तो 1 से लेकर मैं क्या करूँगा कि हर बार सम कैलकुलेट करते रहूंगा। ठीक है, कि अभी तक का सम कितना आ चुका है। तो जैसे कि 1 आया होगा, ठीक है, 1 आया, फिर 2 आया, फिर उसके बाद 3 आया। तो ये सारी सीरीज जो है ये 1 से जनरेट हुई है, 1 1 से स्टार्ट हुई है मतलब। ठीक है, तो जैसे ही मैं सम निकालूंगा, सम निकालते ही मैं ये भी देखूंगा साथ में कि अगर ये सम मेरा एन से बड़ा हो गया, ठीक है, तो मैं कभी एन तक पहुंच ही नहीं सकता। तो सम जैसे ही एन से बड़ा हो जाता है तो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही मेरा सम एन के बराबर हो जाता है, ठीक है, भाई फेस कम बंद हो गया, हाँ भाई वो टैब भी बंद हो गया। करता हूँ चालू। हाँ, क्या ही करोगे थोड़ा देख के। हाँ, अरे भगवान। सो जैसे ही मेरा देखा कि हाँ भाई सम जो है वो मेरा एन के बराबर हो गया, तो यानी कि मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा कि ये एक पॉसिबल सीरीज है। ठीक है, तो एक पॉसिबल सीरीज मिल गई, अब इसके बाद आगे कोई पॉसिबल सीरीज नहीं आ सकती, तो मैं यहाँ पे सम को ब्रेक कर दूंगा, मतलब वो जो लूप में काम कर रहा हूँ ब्रेक कर दूंगा। दोनों में ब्रेक लगा सकता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा तो अब मुझे जितना सम चाहिए उतना मिल गया।